Chasing after waves, a taste of berries on my tongue. Sipping on a feeling, sun has got me healing. Vibing out to your guitar. I don't wanna go yet, watch another sunset, wishing on a shooting star. Ooh, I know that it has to end. Ooh, maybe we could just pretend. Just pretend. I know that it has to end. Maybe we could just pretend. Don't stop the party, don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Don't stop the party, don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Rave, 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 rave. Now everybody from the front to the back go. Now everybody from the front to the back go. Go, 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 now everybody from the front to the back go. Don't stop the party. Don't stop the rave. 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 Can't feel my body, but don't stop the rave. Don't stop the party. Don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Rave, 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 now everybody from the front to the back go. Everybody from the front to the back, go, 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 go,
stop the rave.
rhythm, it's a sound. Everybody get down. Everybody come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down when we give it to you. The rhythm is a sound, the rhythm is round with the rhythm is a sound, the rhythm is rhythm. Get down, come on, get down. 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 Everybody come around with the rhythm is a sound, everybody get down. Everybody come around with the rhythm is a sound, everybody get down when we give it to you. Everybody come around with the rhythm is a sound, everybody get down. Everybody come around with the rhythm is a sound, everybody get down when we give it to you. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body. Take the boy inside, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body, move my body, body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body. Take the boy inside, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body, move my body, body. Feeling it in my body. My dance moves fire away. When you see
6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद to the Arena Esports tournament powered by Etisalat and AD Gaming. इसके strategic partner हैं and Platonia Esports are the broadcast partners. My name is Aziz और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेट्रिस तलहा. कैसे हैं आप? आई थिंक पहली दफ़ा हम एक डोटा का टूर्नामेंट साथ ब्रॉडकास्ट करने को जा रहे हैं. क्या एक्साइटमेंट लेवल पे? मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ पर. एक तो पहली दफ़ा हम वापस डोटा को देखते हुए आ रहे हैं ऑन द राइज वापस से. इससे पहले तो मेरे ख्याल में इतने इवेंट्स नहीं हुए हैं, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है. मतलब एक साल पहले मैंने एक बड़ा इवेंट पास किया था जिसका प्राइस को इतना ज़्यादा हो. लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि डोटा वापस से अब आ रहा है और आना भी चाहिए. जब से 2011 में डोटा लॉन्च हुआ है, पूरी दुनिया में डोटा हमेशा टॉप कर रहा है प्राइस पूल वाइज और खिलाड़ियों वाइज, और जितने लोग देखते हैं उस गेम को. और मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को दोबारा से वापस ऊपर आ रहा है. बिल्कुल तला, डोटा के फैंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान, इधर मीना रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया, सारी एक ऐसी रीजन है जहाँ पे डोटा एक ऐसी गेम है जो कि हमेशा से हमारे दिलों के बहुत करीब रही है. चाहे आप इसे गेमिंग जोन में खेलते हुए देखें, जिस पर पूरे 5 मैन स्टैक्स बैठे होते हैं वहाँ पे, और बस क्या बोला जाए इस गेम के बारे में कि एक ऐसी गेम जो कि इस रीजन में बड़ी इंजॉय की जाती है, बल्कि आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड गेम की पॉपुलैरिटी इज अ टेस्टमेंट टू हाउ मच इट्स लव्ड बाय द ऑडियंस इटसेल्फ, राइट. लेकिन ये अब हमारे पास टूर्नामेंट जो चल रहा है अरीना ई स्पोर्ट्स की तरफ से, यहाँ पे हमारे पास दो टीम्स आपस में कम्पीट करते हुए नजर आएंगी, जो कि आज है ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम. थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ रही है नामों के अंदर इन टीम्स की तरफ से, जो कि कम्पीट करेंगे. इन्विटेशनल क्वालिफायर यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा. तो तला, इस पैच के अंदर जिस तरीके से मेटा डेवलप हो रहा है, और मेरे ख्याल से तो कंपेटिटिव सीन के अंदर हम देख चुके हैं पैच वगैरह चलते हुए, मैप सारे चेंजेस, लेकिन वही बात है कि कंपेटिटिव लैंडस्केप की तरफ हम बहुत अरसे बाद वापस लौटते हुए आ रहे हैं. तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं, मेटा चेंज हो गया, प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज वगैरह चेंज है. तो खैर, आप कोई चीज़ है दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन पर्टिकुलर? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मेटा को देखते हुए, डोटा के एक तो ये होता है कि हर पैच से, हर अपडेट से मेटा इतना ज़्यादा बदल जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं. लेकिन हम अब वापस उस तरफ आ गए हैं जहाँ पे टीम फाइट्स और लड़ाइयाँ और 5-on-5s और गैंकिंग एंड जिसको कहते हैं ना हम ट्रेडिशनल डोटा, तो जो कि हमारे पास होता था अर्ली डेज़ में TI3 TI4 के ज़माने वाली डोटा. अब वो चीज़ वापस आ रही है. ज़रूर मैप को ज़्यादा बड़ा कर चुके हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैप बड़े करने से उन्होंने वही स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं जिसमें फ़ाइट्स और लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं. जैसे कि आपके पास लोटस पूल है, लोटस पूल का कंट्रोल लेना, इन्हें आउटपोस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं. तो मैप कंट्रोल जो कि टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना, उस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस है. अब आप देखेंगे कि जिन हीरोज़ को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर कर दिया है इन्होंने, वो सारे हीरोज़ फाइटिंग हीरोज़ हैं. जैसे कि ट्रोल वॉरलॉर्ड हो गया, फैंटम असैसिन, जो आजकल बहुत कम्पिटिटिव लैंडस्केप में और गेम के अंदर पब्स में भी, आपके पब्स में भी वो पीए काफ़ी फेवरेट चल रही है. स्वेन हो गया. तो तमाम जो कैरीज़ हैं वो अब काफ़ी लड़ाई फेवरेट कैरीज़ हैं. नॉट ओनली दैट, मतलब सिर्फ उसके अलावा भी हम बात करें तो सपोर्ट भी अब जो सपोर्ट्स हमारे पास हैं वो फाइटिंग ओरिएंटेड सपोर्ट्स हैं. जैसे कि, और वो सपोर्ट्स जो कि पहले मैं कहूँ कि फाइटिंग सपोर्ट्स नहीं होते थे. जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, नेचर्स प्रॉफिट अभी तकरीबन वन ऑफ द मोस्ट सबसे ताकतवर सपोर्ट आज गेम में चल रही है, बिकॉज उसका जो स्प्राउट था उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो लेवल 3 पे उससे उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता अभी. तो ओवरऑल पूरी की पूरी गेम फाइटिंग की तरफ लेकर जा चुकी है, और आई थिंक बोथ जो देखने वाले भी होंगे वो भी इस चीज़ से खुश होंगे, और मैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ. बिल्कुल. खैर, टूर्नामेंट के मेटा के बारे में और डोटा के मेटा के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन टूर्नामेंट के प्राइस पूल की तरफ ज़रा अगर हम नज़रें बढ़ाएं अपने, देखेंगे कि टीम्स कितने पैसों के लिए कम्पीट कर रही हैं, तो यहाँ पे $1200 शो हो रहे हैं. मेरे ख्याल से शायद ये डिनार में था,
सो करेंसी माइट बी लिटिल मिक्स्ड अप, लेकिन फर्स्ट प्लेस को आने वाले तला $650 मिलेंगे और इसी तरीके से सब्सिक्वेंट पैसे हैं। टीम्स की अगर बात की जाए जो कि आज आपस में compete करते हुए नजर आएंगी, टीम नंबर 1 इज ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स और दूसरी साइड पे टीम है। ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स का लोगो तला बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई आर यू एबल टू मेक आउट व्हाट शेप दैट इज? यार I have no idea, but it Tala, looks I like know, a I know, I combination. put you मतलब on a very tough spot. like it look मतलब ऐसा तो लग रहा है कि एक एनर्जी ड्रिंक भी हो सकती है, फिर ये ईगल भी हो सकती है, Tala, मतलब let's be कुछ भी हो careful about सकता the है ये तो. sponsors, right? Yeah, I mean बिल्कुल, that's या why, you know, लोगो ऐसे मैंने no specific brand. तो लेट्स ऑलवेज लवली कास्टिंग दीज गेम्स विद यू। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तला मेटा के बारे में और टीम्स के बारे में, डोटा के बारे में इन जनरल, मेरे ख्याल से तो अब इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स गेम के अंदर ऐड हो गए, जिस तरीके से वो एक्सपी रून्स हैं, लोटस पूल्स हैं। ऑल्दो लोटस पूल एक तरीके से ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स प्रिटी लेन लूजिंग अगर आप लोटस पूल को इग्नोर कर दें, राइट? एनिमी बिल्कुल. कैरी को मिल जाए या आपके ऑफ लेनर को मिल जाए, तो वहाँ पे कम्पीट करना, कंटेस्ट करना उतना ही ज़रूरी बनता जा रहा है। हम मेटा के बारे में थोड़ी सी और गपशप भी लगाएंगे, लेकिन तला हम बात कर रहे थे कि डोटा एक ऐसी गेम है जो कि एवर इवॉल्विंग है, एवर चेंजिंग है। हर पैच के साथ मेटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आज के दिन भी एक पैच रिलीज़ हुआ है, मेरे ख्याल से 7.34D बिल्कुल. शायद रिलीज़ हुआ था आज। हाँ, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार 7.34D में तो इतनी ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं है, आई वुड से. मतलब मैं जहाँ तक कहूँगा उसमें रीवर्किंग ज़्यादा हुई है. मतलब जो आइटम ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेड मेल हो गया, उसको ज़रा सा हल्का कर दिया है उनने. बाकी न्यूट्रल आइटम को चेंजेस किए हैं. जो ऑकल्ट ब्रेसलेट होती है उसका मैना रीजनरेशन कम की है. तो आई वुड से ओवरऑल जो 7.34D का पैच आया है वो बैलेंसिंग की तरफ उन्होंने ज़्यादा रखा है. बट जैसे कि आपने कहा, ऑब्जेक्टिव गेमिंग इज मतलब की हो चुका है इस चीज़ में. अब अभी जो मेटा चल रहा है ना, उसमें ये है कि आपको अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने पड़ेंगे. और आप जो पहले होता था ना कि आप दूसरी टीम को कम्प्लीटली डोमिनेट करके और मेक श्योर करें कि वो अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पा रहे, तो एक ये तरीका होता था जीतने का. लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कितने ज़्यादा न्यूट्रल कैंप्स आ गए हैं. तो एनिमी कैरी को शट डाउन करना उस तरह अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली कि अगर हम बात करें कि किसी हीरो लाइक फैंटम असैसिन की, जिसके पास अपनी ब्लर एबिलिटी होती है, उसी की सेफ लेन के बराबर 4 से 5 न्यूट्रल कैंप्स हैं, तो उसको नाम मैप पे वो नज़र आएगी वो हीरो, तो उसको शट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल है. सिमिलरली स्वेन को, वो न्यूट्रल कैंप्स ऐसी जगह बनाए हुए हैं जहाँ पे आप एक पूरी रोटेशन लेकर जाएं, तो आपका उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. आपने बाकी पूरा मैप पूरा खुला छोड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए. तो आप आई थिंक इस मेटा में अपनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पूरी टीम को पूरे करना इज़ मोर रेलिवेंट, मोर ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एज़ कम्पेयर्ड टू ब्लॉकिंग आउट दी अदर अपोनेंट्स ऑब्जेक्टिव्स. बिल्कुल तला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, जिस तरीके से मैप का साइज़ है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। तो पहले तो आई थिंक यूजुअली यही होता है हमारे पास, अगर जो टीम लेन डोमिनेट करके निकलती है, वो थोड़ा सा स्नोबॉल करने की कोशिश करती है, 5 मैन होकर या 4 मैन होकर एटलीस्ट अगली टीम में प्रेशर करते हैं जब तक उनके कैरी साथ फार्म कर रहे होते हैं, और जब कैरी फार्म होकर एक अदद आइटम के साथ रेडी हो जाते हैं, तो फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट या एक डेथ थ्रो इफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब दूसरी टीम को शट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आपके पास मैप की विड्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उन न्यूट्रल कैंप्स पे जो बिल्कुल ही कोनों में एजेस ऑफ द मैप पे होती है, तो वहाँ पे कैरी कुछ ना कुछ हद तक फार्म कर लेते हैं और कुछ ना कुछ फार्म वहाँ पे ले आते हैं। तो और थोड़ा सा मेटा भी जहाँ तक मुझे देखने को मिला है, जहाँ तक मेरी 4K सॉरी थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी, 2K गेम्स से जो चल रहा होता है उससे, बट खैर थोड़ा सा फार्म हैवी है, फार्म इंटेंसिव मेटा आपको नज़र आ रहा है, इन द सेंस कि जो कैरीज दैट आर एबल टू फार्म क्वाइट अ लॉट, वो थोड़ा सा आपको स्ट्राइव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई किस तरीके से ये टीम्स अडेप्ट करती हैं, और क्या आज का पैच जो कि इतना इम्पैक्टफुल तो नहीं होना चाहिए, था भी एक माइक्रो पैच इन दैट सेंस, लेकिन उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर प्रोपेगेट होते हुए नज़र आएंगे। टीम्स की स्ट्रेटजीज शायद शेकअप हो सकती हैं, तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों टीम में से कौन बेहतर तरीके से आज अडेप्ट कर लेती है इस नए पैच पे।
जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली इस चीज़ को नज़रअंदाज़ रखना होगा कि मैप में कितने सारे चेंजेस हैं, और इस चीज़ को भी ज़हन में रखना होगा कि डोटा जो है एट दी मतलब आखिर में तो बात तो वही आ जाती है, राइट? कि दूसरी अपोनेंट के एंशिएंट को तबाह करना होता है, तो हाउ यू अचीव दैट, वो लेस मतलब कम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट डेफिनेटली अडेप्टेशन तो टीम को हर स्टेज पे करनी होती है। डोटा में जैसे अगर आप बोलें कि अगर आप गेम को डिवाइड करें तो उसमें 4 फेज़ आपको नज़र आएंगे। एक अर्ली गेम हो गया, फिर मिड गेम, फिर लेट गेम, और देन माइनॉरिटी या बहुत कम ओकेजनली होता है कि अगर गेम 50 मिनट्स ऑनवर्ड्स जा रही है तो वो अल्ट्रा लेट गेम पे जाएगी, क्योंकि अभी आजकल तो जो हीरोज़ पिक हो रहे हैं उनमें से कोई भी अल्ट्रा लेट गेम हीरो तो मैं नहीं बोलूँगा, जैसे कोई एक मेड्यूसा हो गई या एंटी मेज हो गया, तो उसमें तो आजकल नहीं नज़र आता। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये टीम्स कैसे चूज़ करती हैं आगे बढ़ना, कैसे चूज़ करती हैं मेटा को रोटेट करना अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, आई थिंक हमारे पास बिग बैन फेज लाइव हो चुका है, तो तला वी आर इन द गेम और अबाउट टू बी इन द गेम एटलीस्ट। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने एंटी मेज मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले। एंटी मेज को भी आज एक काफ़ी सिग्निफिकेंट किस्म का बफ मिला था, उनकी मैना कॉस्ट रिड्यूस हुई थी उनके अल्टीमेट पे, और मेरे ख्याल से उनका आर्मर इंक्रीज हुआ था या अटैक स्पीड इंक्रीज हुई थी, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। लेकिन तला, लेट्स टॉक अबाउट द पिक एंड बैन फेज हैपनिंग राइट नाउ। डॉन ब्रेकर काफ़ी एक अनोइंग हीरो इस वक्त हुआ है। एटलीस्ट ग्लोबल प्रेजेंस जो होती है मेरे ख्याल से वो भी इस पैच में काफ़ी ज़रूरी हुई हुई आजकल। डेफिनेटली, और मतलब जहाँ तक बात है कि आप अपने हीरो को बचाने की बात है, तो डॉन ब्रेकर की अल्टीमेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें, डॉन ब्रेकर तो एक ऐसा हीरो है तो आपको एक सॉर्ट ऑफ डबल इनिशिएशन एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आपने किसी हीरो के साथ इनिशिएट किया, फिर उसके ऊपर से डॉन ब्रेकर ने अपनी अल्टीमेट भी चला दी, तो वो काफ़ी डिज़ास्टर्स होता है एक टीम फाइट के लिए। उसके अलावा आपके पास एक री इनिशिएशन एबिलिटी, या फिर आप बोलें कि फ़ाइट को टर्न अराउंड करने की एबिलिटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम अगर देखें तो पहली फुर्सत में टीम ने पीए को बैन कर दिया। आई थिंक इनको टीम स्क्वायर बोलना चाहिए टू मेक, हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिटिल सिंपलर है ना। बिल्कुल, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ है तला, गुड अप्रोच। तो खैर, जिस तरीके से आप कह रहे थे, ट्रेन प्रोटेक्टर नहीं, सॉरी, नेचर्स प्रॉफिट और ट्रेन प्रोटेक्टर दोनों को बैन कर दिया गया है, और ब्रू मास्टर पहली पिक आती है टीम टीम की तरफ से। ब्रू आई थिंक मास्टर भी तला सेफ काफ़ी टू से कि काफ़ी ये ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग है। ऑफलाइन पिक। जी जी। ब्रू यार आजकल तो ब्रू मास्टर को मिड लेन पे भी खेला जा रहा है, क्योंकि ब्रू मास्टर को जितने अच्छा। सिग्निफिकेंट बफ्स मिले हैं अभी इसकी अल्टीमेट में, जो अर्थलिंग ब्रू मास्टर होता है, तो वो टावर को बहुत हम्म। ज़्यादा डैमेज करता है, और इसकी अल्टीमेट जो है उसको अब आप स्पैम कर सकते हो। तो आजकल की जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना, वो बस ये है कि आप टावर के पास, मतलब जब आपको हाई ग्राउंड जाना है, ब्रू मास्टर ने बस अपनी अल्टीमेट खोली और अपनी अर्थलिंग को भेज दिया टावर की तरफ। वो आई थिंक 210 डैमेज होता है उसका लेवल 3 अल्टीमेट पे, तो वो टावर को तकरीबन अपने ओह। एक लाइफ स्पैन में हाफ एचपी तकरीबन कर देता है। तो आप बस उसको स्पैम करते जाओ, उसको भेजते जाओ, तो ये एक काफ़ी अच्छा बफ है ब्रू मास्टर का। तो तला, ये तो 5th मिनट कैटापुल्ट वेव के साथ अगर ब्रू मास्टर मिड पे हो तो आई थिंक लेवल 6 तो यूजुअली हो जाता है। तो कैटापुल्ट वेव के बेसिकली साथ अगर आप इस चीज़ का, हाँ, इस चीज़ की अगर आप एडवांटेज लें तो मेरे ख्याल से तो आपका अगला मिड टावर आप गिरा सकते हैं विद इन द फर्स्ट 5 to 6 डेफिनेटली, मिनट्स, है ना। जैसे कि पहले ज़माने में ड्रैगन नाइट होता था ना, जिसमें ग्रीन ड्रैगन से आपके पास करोसिव ब्रेथ की एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए आप टावर को, मतलब लेवल 6 पे ही आप पहला टावर लेते थे ड्रैगन नाइट सोलो करके। बिल्कुल। वैसे ही ब्रू मास्टर अभी आजकल चल रहा है। बेहतरीन, दैट्स अ गुड वे टू से इट। टीम टीम तलहा थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कैरीज को बैन करना। पीए, स्वेन, स्लार्क, तीनों हीरोज़ को बैन करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफलाइनर को भी बैन कर दिया। कुछ सपोर्ट्स वगैरह के अराउंड या कुछ उनका एम्फोसिस नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हम्म, किस तरीके से मुझे मेरे ख्याल लगता से है यहाँ कि पे चलना, शायद पहले कोर्स पे करना चाह रहे हैं। इससे शायद, हाँ। हाँ, इससे शायद ये पता लग रहा है कि जो टीम है वो अपने कैरी को इस तरह शायद पोजीशन करेंगे, या फिर शायद वो देख रहे होंगे कि दूसरी अपोनेंट्स की जो टीम है उनमें शायद कोई जो कैरी प्लेयर है वो
इनके स्पेशलाइज्ड हीरो खेलता हो जिससे वो अफ्रेड हों। कुछ भी हो सकता है क्योंकि हाँ। आप अगर देखें कि दूसरी जो टीम है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट कर रही है, वो सपोर्ट्स को बैन आउट कर रही है। ट्री एंड प्रोटेक्टर हो गया, फ्यूडियन हो गया, जिसको नेचर्स प्रॉफिट कहते हैं अब और विसेज हो गया। तो ये सारे कंट्रोल हीरोज़, ये सारे सपोर्ट हीरोज़ ज़्यादातर हैं। तो काफ़ी ऑपोजिट प्लेज नज़र आ रहे हैं दोनों टीम की तरफ से। बिल्कुल थोड़े से पिक बैन फेज में स्ट्रेटजी का फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से दोनों टीम्स की तरफ से। और अब बैन करते हुए स्काई रात को नज़र आए, लेकिन तला मेरे ख्याल से शायद यही चीज़ हो सकती है टीम टीम की तरफ से कि वो अपने कैरी को एक बेहतर मैचअप में सेटअप करना चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक कोर्स, लेकिन आई थिंक काफ़ी रेंज ऑफ कोर्स उन्होंने बैन कर दी उस साइड पे। अर्थ स्पिरिट पिक होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। अर्थ स्पिरिट तला, यू नो दैट फ्लैशी हीरो, आप प्लेस कर सकते हैं इस हीरो के ऊपर, और अगेन वही हीरो है जो कि डिफरेंट रोल्स के ऊपर डायनामिकली खेला जा सकता है। डेफिनेटली ग्रिमस्ट्रोक के साथ भी काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है ग्रिमस्ट्रोक के स्टन के साथ, जिसको दोबारा एक बफ मिला है कि अब ग्रिमस्ट्रोक का जो इंक स्वेल है उसको एट विल आप कैंसिल कर सकते हो। इफेक्ट सेम रहता है कि जितनी देर तक आप उसके इफेक्ट के अंदर होगे उतना ज़्यादा डैमेज होगा, उतना ज़्यादा स्टन अपोनेंट्स को रिसीव होगा, लेकिन अब ग्रिमस्ट्रोक खुद ही से कैंसिल कर सकता है। सो आप अगर कंबाइन करो इंक स्वेल को अर्थ स्पिरिट के रोल डाउन से, बोल्टेड रोल से, तो एक काफ़ी पोटेंट इनिशिएशन एबिलिटी आपके पास आ जाती है। बट उसी को नज़र में रखते हुए उनने टीम ने एक वेंचफुल स्पिरिट पिक किया है, देखते हुए कि उन दूसरी टीम के पास इतनी ज़्यादा इनिशिएशन एबिलिटी है, तो एट द एंड वो ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जिस पर इनिशिएट हो वो हीरो सेफ एंड सिक्योर रहे। बिल्कुल, वेंजी का जो सेव है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंटी इनिशिएशंस इन द गेम, एटलीस्ट आफ्टर जो हीरोज बैन हो चुके हैं, राइट? आप एक आपका एक प्लेयर जो आपका एक टीममेट जो बिल्कुल ही पोजीशन आउट हुआ हो उसको आप अपनी पोजीशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव है वहाँ पे। तो मतलब वॉरलॉक पिक हुआ है मेरे ख्याल से, नो सरप्राइजेस राइट नाउ। काफ़ी हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस मेटा में। वॉरलॉक के मुझे मुझे पता है, हमेशा से ये लगता था कि वॉरलॉक का जो अपहीवल की एबिलिटी है ना, वो इंतहाई यूजलेस एबिलिटी थी इस बफ से पहले। मतलब वो किसी बिल्कुल। काम की नहीं थी, लेकिन अब उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है कि अब जो वॉरलॉक की स्ट्रैटेजी होती है वो 404 स्ट्रैटेजी होती है। मतलब आप वॉरलॉक का हील बिल्कुल ही लेवल करते ही नहीं हो, बिकॉज उसके अपहीवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो उसके इम्पलिंग्स जो फॉर्म होते हैं वो उससे आप जोन आउट कम्प्लीटली हो जाते हो। और वॉरलॉक अब ऐसा हीरो बन गया है कि जो आप अगर वॉरलॉक के अगेंस्ट फेस करो तो आप पहली फुर्सत में आपको वॉरलॉक को निकालना होता है टीम फाइट से। बट ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये एक्चुअली मुझे वेंचफुल स्पिरिट की पिक ना काफ़ी अच्छी लगी है, बिकॉज ग्रिमस्ट्रोक वेंचफुल स्पिरिट के साथ वन ऑफ द बेस्ट हीरोज़ होता है, क्योंकि वेंचफुल स्पिरिट का जो शार्ड एबिलिटी होती है तो उससे उसका स्टन बाउंस करता है बेसिकली ना, एक हीरो से दूसरे हीरो पे जाके लगता है। तो जो ग्रिमस्ट्रोक की अल्टीमेट है, तो जब वो आप लगाते हैं किसी एनिमी पे तो वेंचफुल स्पिरिट का जो स्टन होता है वो कुल मिला के 4 हीरोज़ पे जाके लगता है अगर ग्रिमस्ट्रोक की अल्टीमेट ओह लगी हुई हो। तो ये एक अच्छी बिल्कुल, ये तो उन्होंने वेंचुर स्पिरिट को चुना है उनके अगेंस्ट। बिल्कुल एक पिक भी कर लिया उन्होंने उसके थ्रू, और साथ ही एक स्ट्रैटेजी को भी काउंटर कर लिया, तो दैट्स ग्रेट पिकिंग कमिंग आउट फ्रॉम टीम। और दूसरी साइड पे डूम का इंतखाब हो गया। मतलब डूम एक ऐसा हीरो है जो कि मेरे ख्याल से अब उस पैच के बाद मुझे लगा कि उसके डूम की एबिलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है, आइटम्स म्यूट नहीं करती, लेकिन ग्रिम स्ट्रोक के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। डबल हीरो को डूम करना एक टीम फाइट के अंदर इफेक्टिवली उनको कुछ टाइम के लिए फाइट से निकाल देता है। डेफिनेटली, और डूम हमेशा से एक ऐसा हीरो है जो ब्रू मास्टर को काउंटर करने में बहुत काम की चीज़ होता है, बिकॉज ब्रू मास्टर फिर कम्प्लीटली अगर आप उस पर डूम लगा दो फाइट स्टार्ट होने से पहले, तो मतलब इफेक्टिवली ब्रू मास्टर अपनी अल्टीमेट के बगैर तो टीम फाइटिंग हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है। लेकिन फिर अब इस गेम में ना जब इतनी पिक्स हो गई हैं, 3 से 4 पिक्स हो गई हैं दोनों टीम की तरफ से, तो अब हमें जो जैसे हम कहें कि टीम फाइट विनिंग सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें
मैं ये बोलूँगा टीम के लिए कि उनको जो ब्रू मास्टर है उसको अपनी अल्टीमेट निकालनी पड़ेगी, और जो ओपीटी हैं ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स जो हैं उनको ये मेक श्योर करना है कि वो डूम ब्रू मास्टर पे लगा सकें। अगर जो टीम ये नहीं कर पाएगी वो अल्टीमेटली टीम फाइट हार रही होगी। बिल्कुल तला, ये तो उनकी आई थिंक विन कंडीशंस टीम फाइट्स के लिए काफ़ी क्लियर हो गई जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन यहाँ पे शैडो फिend का इंतखाब होता है मिड के ऊपर, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखने को होगा कि किस किस्म की शैडो फिend के ऊपर बिल्ड आती है। हमें पता है कि मैजिकल शैडो फिend की ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल डैमेज शैडो फिend की ऑप्शन भी हमेशा से होती है। तो शैडो फिend हमेशा से एक आई थिंक कम्युनिटी फेवरेट रहा है इस तरीके से कि आपको काफ़ी डायनामिक ऑप्शंस होती हैं कि यू कैन प्ले द हीरो जिस तरीके से भी आप चाहें। लेकिन तला थोड़ा सा हमें मेटा के बारे में बताएं, आजकल टीम्स के बारे में बताएं कि वो किस तरीके से शैडो फिend को खेलनी है। शैडो फिend वैसे तो यार शैडो फिend इतना ज़्यादा पिक नहीं हो रहा आजकल, जहाँ तक जितने गेम जहाँ तक मैंने देखे हैं, बिकॉज शैडो फिend थोड़ा सा अभी आजकल अनरिलायबल चल रहा है। मैजिक तो मैं बोलूँगा मैजिक तो काफ़ी हद तक फेज आउट हो चुका है। कुछ टीम्स खेलती हैं डेफिनेटली मैजिक, लेकिन अगर मैं बोलूँ इस सिनेरियो में तो ऑप्टिमम के पास अभी जितने हीरोज उन्होंने पिक किए हैं तो उनके पास उनका फिजिकल डैमेज काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। अभी तक तो सिर्फ इनका प्योर मैजिकल डैमेज चल रहा है। तो आई होप, उम्मीद तो मेरी यही है, या प्रिडिक्शन जिसको मैं बोलूँ, कि ये तो एक फ़िज़िकल डीपीएस शैडो फिend है। बट मुझे जो मसला लग रहा है ना इस शैडो फिend पिक से, कि इनके अगेंस्ट तो एक वेंचफुल स्पिरिट ब्रू मास्टर है। ब्रू मास्टर ने अगर अपनी अल्टीमेट निकाल ली तो जो विंड ब्रूलिंग होगा वो तो शैडो फिend को सीधा हवा में फेंकेगा, और शैडो फिend के बगैर ऑप्टिमम कैसे टीम फाइट जीतेगी। तो ये मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल अभी आ रहा है। बिल्कुल ताला, और कहरी शो कर दिया जाता है दूसरी साइड पे। टीम टीम एक थोड़ा सा मेटा में स्पेक्टर पिक तो हो रहा है, ये तो चीज़ मैंने देखी, लेकिन कितना इफेक्टिव है स्पेक्टर इस वक्त, वही बात है। एक अल्ट्रा लेट गेम हीरो हम हमेशा से स्पेक्टर कन्वेंशनली समझा गया है, क्योंकि बट खैर तला, डू यू थिंक कि स्पेक्टर विद द एक्स चेंज राइट, आप इसे थोड़ा सा रिलेटिवली मिड गेम पे भी ये ऑन हो जाता है एंड एज रिलायबल कैरी चलाया जा सकता है? डेफिनेटली आई थिंक स्पेक्टर को ना पहले, जैसे मैं अल्ट्रा लेट गेम की बात कर रहा था, स्पेक्टर भी उनमें से एक हीरो था जो शामिल था उसमें। लेकिन अब स्पेक्टर आई वुड से उससे हटकर अब मिड टू लेट गेम हीरो बन चुका है, क्योंकि उसके आइटम्स भी अब काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। अब आप वो रेडियंस वाली बिल्ड नहीं जाते। अब क्या कहते हैं, आप मिड गेम इवन आई वुड से एक ऑर्किड मेडवोलेंस उसकी तरफ जाते हो। नॉट टू मेंशन स्पेक्टर का जो शार्ड एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी 100% डैमेज रिफ्लेक्शन उसको मिलता है फॉर 6 सेकेंड बहुत ज़्यादा होते हैं एक टीम फाइट के लिए। और अगर आप नोटिस करें तो टीम ऑप्टिमम के पास तो ज़्यादातर एबिलिटीज तो AOE ही हैं। इवन ग्रिमस्ट्रोक की एबिलिटी, अर्थ स्पिरिट की एबिलिटी, डूम की एक सिंगल टारगेट एबिलिटी है, बट अदर एबिलिटीज़ तो उसकी मैजिकल ही हैं। और शैडो फिend ऑब्वियसली चाहे फिजिकल हो चाहे मैजिकल हो, शैडो फिend हैज़ काफ़ी ज़्यादा मैजिकल आउटपुट। तो स्पेक्टर की डैमेज रिफ्लेक्शन तो बहुत ज़्यादा काम आएगी, पर्टिकुलरली जितना कंट्रोल है टीम के पास। तो ये स्पेक्टर पिक तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ओ डी पिक होता है। ओडी की पिक थोड़ी सी टीम टीम की तरफ से तला मुझे जिस तरीके से समझ आ रही है ना, ऑफ कोर्स यू नो यू आर द एनालिस्ट, तो बट लाइक थोड़ा सा कंट्रोल मुझे लैकिंग फील हो रहा था ऑन टीम साइड। तो शायद ओडी के इस्तेमाल से आप वो डूम को ऑफसेट कर सकते हैं, डूम की इनिशिएशन को रोका जा सकता है, और टीममेट्स के सेव के लिए भी काफ़ी अच्छी एबिलिटी है तब तक वेंजफुल डजंट कम इनटू पोजीशन टू सेव द हीरो। डेफिनेटली आई थिंक ओडी नॉट ओनली टीम फाइट कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा काम आएगा, बट ऑल्सो हीरो को सेव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। मीनवाइल अगर हम बात करें तो ये एक शैडो फिend डेफिनेटली फिजिकल, एक तो ये है कि फिजिकल डैमेज शैडो कैरी फिend है, शैडो फिend। दूसरी चीज़ कैरी शैडो फिend है ये। लेकिन कैरी कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि वो उस एक ब्रू मास्टर के अगेंस्ट ही होगा। होपफुली वो वर्कआउट करे। लेकिन शैडो फिend कैरी जहाँ तक मुझे पता है उसमें आप रेजेस को लेवल अप नहीं करते, उसमें आप सिर्फ अपनी सोल गैदरिंग
और अपनी आर्मर रिडक्शन पे ही फोकस करते हो, तो वो एक ब्रू मास्टर के अगेंस्ट कितना सक्सेसफुल रहे डिपेंडिंग के वो एक अपने ऑफ लेन में किस सपोर्ट को भेजें, तो डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक मैजिकल आउटपुट की बात की जाए तो ऑप्टिमम प्राइम ने तो एक तरह से ऑल इन कर चुके हैं अपनी मैजिकल आउटपुट में विद दैट क्वीन ऑफ पेन, पर्टिकुलरली जब क्वीन ऑफ पेन का सेप्टर बनेगा तो सेप्टर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज बाहर आ रहा होता है, तो डेफिनेटली लेनिंग फेज से भी बिल्कुल तला काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। दोनों टीम्स के ड्राफ्ट्स हमारे पास आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा फेवर्ड हम देख लेते हैं कि एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी टीम आपको इस वक्त अपने लाइनअप के ऊपर ज़्यादा फेवर्ड नज़र आ रही है इस मैचअप में। लाइनअप के ऊपर यार मैं तो बोलूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शैडो फीन। शैडो फीन ने अपना अगर फार्म निकाल लिया, प्लस अगर शैडो फीन ज़िंदा रह गया टीम फाइट्स में या उसकी टीम उसको ज़िंदा रख पाए, तो फिर आई वुड से कि जो ऑप्टिमम है उनकी लाइनअप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें अर्ली गेम पे या जहाँ तक हम बात करें सिर्फ ड्राफ्ट पे कौन ज़्यादा कामयाब रहेगा, तो उस लिहाज से मैं बोलूँगा कि टीम काफ़ी ज़्यादा अहेड है, लाइक काफ़ी डिसेंट मार्जिन से। लाइक अर्ली गेम तो मैं बोलूँगा कि टीम या मिड गेम में बोलूँगा कि उनकी लाइनअप जो है वो फार्मिंग में भी ज़्यादा आसानी होगी उनको, और फाइट्स जीतने में भी उनको ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो आई थिंक स्पेक्टर की तरफ से ग्लोबल प्रेजेंस, वॉरलॉक की अल्टीमेट, आपके पास ब्रू मास्टर की अल्टीमेट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा टीम फाइट्स में कंट्रोल देती हैं, और बेसिकली इनिशिएशन और ये सारी चीज़ें आई थिंक काफ़ी अच्छी लग रही है टीम के ऊपर। लेकिन दूसरी साइड पे ऑप्टिमम इज़ मोर ऑफ अ एग्जीक्यूशन हैवी ड्राफ्ट, राइट तला? जिस तरीके से सारा मैजिकल डैमेज उनके पास है, बीकेबीज एक काफ़ी मेजर मसला होगा टीम ऑप्टिमम के लिए जब टीम इज़ एबल टू गेट दोस अप। दोनों टीम अभी क्रैश करने वाली हैं रिवर पे। बिल्कुल, और वार्ड भी डिवॉर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रूलिंग पुश करते हुए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे ग्रिमस्ट्रोक मौजूद है और उनको बेहतरीन तरीके से पुश बैक कर दिया जाता है, और यही तरह वो एबिलिटीज़ का इस्तेमाल नज़र आ रहा है दोनों साइड से जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा HP ट्रेड की जाती है दोनों साइडों पे, ग्रिमस्ट्रोक वॉज अबाउट टू डाई, लेकिन उनको अर्थ सॉरी अर्थ स्पिरिट की तरफ से सेव आ जाता है जो कि उनको बेहतर कर लेता है। तो अगर लेन सेटअप के बारे में बात की जाए, ग्रिमस्ट्रोक प्लस शैडो फील्ड है, एंड आई थिंक ये दिस इज गोइंग अप अगेंस्ट द ब्रू मास्टर और साथ वेंचफुल स्पिरिट। कौन आपको लेन्स में ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रहे हैं? मुझे जहाँ तक लगता है तो ये ब्रू मास्टर और वेंचफुल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और ये चीज़ मैं दोनों लेन्स के बारे में बोल सकता हूँ। आई थिंक ऑफ लेन्स जो हैं दोनों टीम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कंपेयर टू दोनों टीम की सेफ लेन्स, क्योंकि ग्रिमस्ट्रोक शैडोफिन को बचा नहीं सकता। इंक्सवेल से ज़रूर आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि अगर आपके ऊपर एक पांडा जंप किया हुआ है, क्योंकि उसकी मूवमेंट स्लो बहुत ही ज़्यादा होती है, प्लस आपके बिल्कुल, ऊपर एक स्टन भी आएगा। और ऊपर से वही बात है कि शैडो फीन को जो लेन डोमिनेशन जिस एबिलिटी रेज के थ्रू यानी कि होती है उनकी, वो तो यहाँ पे हमें शायद कम ही नज़र आए, बिकॉज वही बात है कि कैरी शैडो फील्ड है, आर्मर के अंदर और सोल के अंदर आपको लेवल्स लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा लेन सेटअप इधर ऑप्टिमम की तरफ से टॉप के ऊपर वीकर नज़र आ रहा है, और यही एग्रेशन का मुजाहिरा आ जाता है यहाँ पे बिल्कुल ही शुरू में, और ये एक फर्स्ट ब्लड यहाँ पे हो सकता है। लेकिन शैडो फीन रेजेस के अंदर लेवल लेते हुए, और ये थर्ड रेज अगर कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वेंजी के ऊपर ट्रेड भी आ जाती है, कोरियर ही दोनों मार साइडों देता पे यार ट्रेड हो वो। जाती है। कोरियर वैसे आई हाँ, थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ज़िंदा निकल जाएगा, लेकिन अगर कोरियर मारता तो वो एक काफ़ी ज़्यादा लॉस होता, इवन अगर वो मर जाता वहाँ पे। तो आई वुड से कि फर्स्ट ब्लड प्लस गेटिंग द शैडोफिन कोरियर 6 या 5 से 6 मिनट को उस कोरियर को निकाल दो आप गेम से, तो शैडोफिन के पास हाँ, रीजनरेशन के लिए मंगवाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहे। बिल्कुल, और बड़ी मुश्किल लेन हो जाती है शैडो फीन के लिए, ऑल्दो पहले ही काफ़ी मुश्किल लेन है। लेकिन चला अगर मिड की तरफ देखा जाए तो कॉप आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज हीरोज जो कि आपको बहुत फेमिलियरिटी है, बहुत आपके पास में खेलते हुए मैंने देखा है। क्या ओडी के अगेंस्ट कैसा मैचअप होता है कॉप के लिए? ओडी के अगेंस्ट इट काफ़ी ज़्यादा। ओ मीनवाइल ये डूम ब्रिंगर शायद मर जाएगा, बॉटम पे नहीं उसके पास स्टिक, हाँ स्टिक है उसके पास, बॉन्ड है। मिड लेन की अगर हम बात की जाए क्वीन ऑफ पेन वर्सेस आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर, तो
क्वीन ऑफ पेन ज़रूर शुरू में तो अहेड ही होगी, लेकिन थैंक्स टू हर शैडो स्ट्राइक एबिलिटी, लेकिन वंस द ओडी मेक्स द मीटियोर हैमर, तो वो चीज़ कॉप हम्म। के अगेंस्ट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये कॉप फिर जब उसका मीटियोर हैमर बनेगा तो कॉप रोटेशन करना शुरू कर देगी, बिकॉज जो टीम के पास हैं इतनी ज़्यादा हीरोज़ नहीं हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एच पी है, पर्टिकुलरली स्पेक्टर। आप एक क्वीन ऑफ पेन की अल्टीमेट उसके ऊपर लगाएं तो स्पेक्टर विल बी डाइंग, पर्टिकुलरली जब आपका डूम भी ऑनलाइन आ जाएगा। बिल्कुल तला, मेरे ख्याल से वो तकरीबन 7 to 8 मिनट मार्क के अराउंड ये चीज़ें होना शुरू होंगी जब दोनों साइड पे एटलीस्ट डूम आपके पास ऑनलाइन हो जाएगा और आपकी मिड भी रोटेट करने के काबिल होंगे वहाँ पे। तो स्पेक्टर की एक लेन है, हमें देखनी पड़ेगी। अभी लास्ट रेट और डिनाइस पे अगर बात की जाए तो कॉप मिड पे डोमिनेट करते हुए नज़र आ रही है 19 लास्ट रेट के साथ, और शैडो फिन की लेन भी इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रेजिस को लेवल अप किया हुआ है आई गेस लेनिंग फेज के लिए कम अज़ कम, तो उस तरीके से तो ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होती है। डेफिनेटली लेनिंग फेज में तो इसको ये हेल्प होगा, पर्टिकुलरली कि अगर आपको ब्रू मास्टर को स्लो डाउन करना है तो ये एक अच्छा डिसीजन है, आई से लास्ट मिनट डिसीजन कि ब्रू मास्टर अगर आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है तो आप उसको 2 रेज लगा सकते हो, और 2 रेज से उसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ शैडो फिन को थोड़ा सा अफेक्ट करेगी, तो जब उसकी फार्मिंग का टाइम आएगा जो प्रॉपरली लेवल 7 के बाद वो उससे फार्म करना शुरू होगा। बट जहाँ ओ तक हम बात कर रहे थे कि ऑफ हम्म। लेन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल, कोरियर काफ़ी और जगह से गुजरते हुए जा रहे थे और यहाँ पे फाइट होती है बॉटम पे, दोनों तरफ से ट्रेड किया जाता है, लेकिन आई थिंक स्पेक्टर क्लियरली केम आउट द विनर देयर, किल लेने में कामयाब होते हैं जिस वजह से उन्हें एचपी मिलेगा। और अगर टॉप के ऊपर देखा जाए तो एग्रेशन शैडो फिन के ऊपर एक बार फिर से जाते हुए, लेकिन ग्रीन स्ट्रोक की तरफ से बेहतरीन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल शैडो फिन को एंड के ऊपर बचाते हुए, और वेंचफुल स्पिरिट के ऊपर किल भी ट्रेड आउट करने में कामयाब होते हैं। पहला ये वेंचफुल बेंच स्पिरिट तो अपने कैरी शैडो फिन को बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक वेंचुरल स्पिरिट की पोजीशनिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है एज अपोज टू अगर वो राइट साइड से जाने के बजाय अगर वो लेफ्ट साइड से दरख्तों के जरिए जाए, बिकॉज स्टन तो शैडोफिन को लगने वाला था, चाहे आप राइट से जाएं चाहे आप लेफ्ट से जाएं। तो वेंचुरल स्पिरिट को अपने आप को थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत होगा, बिकॉज जो दूसरी टीम है उनको ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है कि वो ब्रू मास्टर को तो किसी भी सूरत हाल में नहीं मार सकते। 20 वॉन्ड चार्जेस, 1000 HP, इस स्टेज पे आप उसे 3 रेज लगा भी दो, ग्रिम स्ट्रोक के सारे एबिलिटीज़ लगा भी दो, लेकिन वो मुश्किल से 400-500 डैमेज होगा इस स्टेज पे। तो वेंचफुल स्पिरिट थोड़ा सा बेहतर पोजीशनिंग की ज़रूरत होगी। मीनवाइल मैं जैसे ही कह रहा था कि वेंचफुल स्पिरिट अब वापस तीसरी दफ़ा जाने वाली है दुनिया से। दुनिया से तला तो जा चुकी है, लेकिन आई होप रिस्पॉन होकर वापस आ जाएगी इस गेम के अंदर क्योंकि लेकिन मिड पे काफ़ी मज़े का एग्रेशन इस वक्त चल रहा है दोनों साइडों से। 2-5 जा रही है गेम की इस वक्त जो स्कोर लाइन है, और आई थिंक थोड़ा सा टीम को अब बेहतर खेलना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज दे डू हैव द स्पेक्टर राइट। तो स्पेक्टर अगर आपके पास है, आपकी अर्ली गेम वैसे ही वीक होगी, तो उसके साथ साथ इफ़ यू एट अ डिसएडवांटेज तो थोड़ा सा रिकवर करना पोटेंशियली मुश्किल हो सकता है। दिल हैव टू सी ओडी मिड के इन ऊपर ट्रबल। एग्रेशन आती है, ओडी को कैच कर दिया गया और आई थिंक एस्ट्रल इस्तेमाल है, मैना भी नहीं यहाँ पे मौजूद उसके लिए, और कॉप की तरफ से क्या अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाता है राइट बिफोर शी वाज एस्ट्रल इम्प्रिजन्ड, और ये ओडी के ऊपर किल सिक्योर करने में कामयाब होते हैं। डेफिनेटली एक लूजिंग सिनेरियो था ओडी के पास, वो ऐसे ही मर जाए चाहे या फिर वो अपनी एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट का को बचा के रखे। आई थिंक आइडिया अच्छा था उसका, क्योंकि अब क्वीन ऑफ पेन का जो अल्टीमेट चेंज हुई है वो डैमेज अब एकदम से नहीं होता, वो हल्का हल्का करके पूरा डैमेज डिस्पर्स होता है। तो अगर आप एस्ट्रल इम्प्रिजन कर दो अपने आप को उस ड्यूरेशन के दौरान तो आप सारा का सारा डैमेज अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उस सूरत हाल में ओडी का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था अगर वो एस्ट्रल इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल तरह, और एक्सपी रून स्पॉन हो चुकी हैं। रेडिएंट साइड आई थिंक अपनी रून सिक्योर करने में कामयाब होगी, लेकिन डायर में अभी अभी रून को पिक किया गया है, तो ये
वही तरह जिस तरीके से हम मेटा गेम की बात कर रहे थे, इन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो कि अब बीच में लाए जा चुके हैं, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से एग्रेशन किया जा रहा है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए वापस आ जाते हैं अर्थ, फिर बेहतरीन रोल इन और ये ओह स्पेक्टर की तरफ से अल्टीमेट का इस्तेमाल आ जाता है और बेहतरीन गेम प्ले नजर आया यहाँ पे टीम टीम की तरफ से। तलब बिल्कुल इसी टाइमिंग का वेट कर रहे थे और सेटअप था ब्रू मास्टर की अल्टीमेट, लेट्स गो वी रेडी, और साथ ही साथ स्पेक्टर भी आ जाती है अपनी अल्टी के साथ। डेफिनेटली इसी की हम बात कर रहे थे कि ब्रू मास्टर ने अगर एक दफ़ा अपनी अल्टीमेट खोल दी तो देन इट्स टीम फाइट ओवर फॉर ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स। और जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रू मास्टर की अल्टीमेट की अर्थ ब्रूलिंग के बारे में, जैसे ही उसने लेवल 6 हिट किया वैसे ही उनका ऑप्टिमम का टीयर 1 टावर फॉल कर चुका है। तो अब मैप काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है फॉर टीम टीम अपनी रोटेशंस क्रिएट करने का। जैसे कि पहले ऑप्टिमम अब भी सारी रोटेशन कर रहे थे, अब आई थिंक वेंचफुल सीरीज ज़्यादा मूव करेगी। अब आई थिंक ब्रू मास्टर के पास एक खुला मैप है टॉप साइड की तरफ अपना पूरा फार्म लेने का और ये सब करने का। बिल्कुल तरह, और एग्रेशन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुक रही दूसरी साइड से भी। ऑप्टिमम अब पुश करते हुए आ गई हैं मिड पे और ओडी को एक दफ़ा फिर से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक किया जा सकता है? वॉरलॉक अल्टीमेट और साथ ही साथ स्पेक्टर के साथ बिल्कुल टीम फाइट का पासा पलट दिया जाता है और ऑप्टिमम यहाँ पे फिर से 3 हीरोज लूज करते हुए चला, एंड आई थिंक ये मिड टावर भी उनका गिरता हुआ नजर आएगा। ये मिड टावर बिल्कुल ही जा चुका है क्योंकि क्वीन ऑफ पेन ने अपनी अल्टीमेट इस्तेमाल कर दी है। ओडी को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन जैसे कहें हम एट व्हाट कॉस्ट, बिकॉज अब उनका मिड टावर भी चले गया है। थर्ड टावर लेने के लिए ब्रू मास्टर की अल्टीमेट भी ऑनलाइन आ जाएगी, वेंचफुल स्पिरिट भी लेवल 6 हो जाएगा। तो अब जो टीम टीम का स्टॉम्पिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। पर्टिकुलरली जब आप देखें क्वीन ऑफ पेन ने इतना ज़्यादा डैमेज दूसरे अपोनेंट के टावर को नहीं किया होगा। शैडो फिन का एक मास्क ऑफ डेथ आया हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा फार्म की अभी ज़रूरत है, और उसको कोई फार्म करने नहीं देगा अभी, क्योंकि ये जो वुड में शैडो फिन खड़ा हुआ है तो ये लोग इसे कॉन्स्टेंटली हरास करेंगे, कॉन्स्टेंटली इसको पुश आउट करते रहेंगे। बिल्कुल पुश आउट करते रहेंगे। मिड टावर के गिराने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि आपको दूसरी टीम के जंगल का एक्सेस मिल जाता है। मैं ख्याल से शैडो फिन तो यहाँ पे हमें मरते हुए ही नजर आएगा। पहला गो 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 का सीन है यहाँ पे टीम टीम की तरफ से, जैसे ही उनके पास स्पेक्टर की अल्टीमेट ऑनलाइन आती है। साथ ही साथ ब्लेड मेल भी स्पेक्टर पिक अप कर चुके हैं, जो कि अर्ली गेम में स्पेक्टर के लिए काफ़ी ह्यूज पावर स्पाइक होता है और इस तरीके से उस चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। गेम ऑप्टिमम के लिए काफ़ी रफ अब लग रही है मेरे ख्याल से, एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेजेस, राइट? जिस तरीके से शैडो फील्ड मारे गए हैं, मिड टावर लूज हो चुका है और मेरा नहीं ख्याल किसी भी लेन में वो टावर लेने में कामयाब हुए। वेल आई से दैट, और साथ ही वो बॉटम टावर ले लेते हैं। बॉटम टावर तो वो ले लेंगे, लेकिन उससे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जहाँ पे भी टीम टीम रोटेट करेगी वहाँ पर वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेन का विच ब्लेड नहीं बनने वाला एज अपोज टू टीम टीम का मीटियोर हैमर अभी बन जाएगा। ब्रू मास्टर की अल्टीमेट स्पेक्टर, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको 2 हीरोज़ फेस करने हैं, आप चाहे आप जिस पे भी जाओगे वो एक स्पेक्टर भी साथ साथ उन अपोनेंट्स के पास आएगा, पर्टिकुलरली एक ब्लेड में वाला स्पेक्टर। तो आपकी जब इतनी ज़्यादा एओई एबिलिटीज़ हैं, क्वीन ऑफ पेन इंटायरली एओई है अभी, स्क्रीम ऑफ पेन प्लस अब उसकी अल्टीमेट अर्थ स्पिरिट हो गया, ग्रिम स्ट्रोक हो गया, आई वुड से इवन डूम एक लार्ज एक्सटेंट तक। तो जब आप ब्लेड मेल को काउंटर कर रहे होगे, क्वीन ऑफ पेन अपनी अल्टीमेट ऐसे नहीं खोल सकती, स्पेशली एक ब्लेड मेल के ऊपर। बट मीनवाइल ऑप्टिमम को एक तो किल मिलेगी इस वॉरलॉक के ऊपर। बिल्कुल तरह एक रैंडम वॉरलॉक जंगल में नज़र आ गया, फिर उसको पकड़ के ख़त्म करके गया। लेकिन यहाँ पे तला धूम के ऊपर क्या पावर स्पाइक? आपको लग रहा है कि ये ब्लिंक टैगर तक धूम डूम को तो वेट करना पड़ेगा? माइडस उनका रेडी है। माइडस अब तो बना लिया है अली उसने ये तो अब तो हो गया है, नाउ यू कैन नॉट टेक बैक द माइडस। यू नो तो चला अब माइडस शैडो हमेशा से फील्ड डोटा कम्युनिटी में और और पब गेम्स में एक हाँ कंट्रोवर्शियल अब आइटम होता है, टू से शैडो द फील्ड लीस्ट। फॉको फार्म मिले या ना मिले वो शैडो फील्ड जाने सही और टीम जाने।
तला डू यू थिंक थोड़ा सा ग्रीफ माइनस है ये जिस तरीके से गेम चल रही है नहीं नहीं, या ग्रीफ माइनस नहीं होगा। आई थिंक इनको इनने अपनी टाइमिंग रियलाइज़ की होगी। आई थिंक इन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि जब तक शैडो फिन पे अच्छा खासा फार्म ना हो तो ये टीम फाइट तो अभी नहीं जीतने वाले। तो आई थिंक इसीलिए माइडस का इस माइडस बनाया गया है। नॉट टू मेंशन माइडस आजकल ऑफ लेनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इंक्रीज फार्मिंग पोटेंशियल मिलता है आपको उससे, क्योंकि उसके 2 चार्जेस अब होते हैं। तो आपको अब ज़्यादा जल्दी लेवल अप, अब ज़्यादा जल्दी वो गोल्ड को एक्वायर करते हो। तो उसका जो ब्रेक इवन कॉस्ट है माइडस की, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। बट मुझे जो चीज़ ट्रबल कर रही है वो ये स्पेक्टर है और वो ये ब्रू मास्टर है। बिकॉज स्पेक्टर और ब्रू मास्टर को कंट्रोल करने के लिए टीम ऑप्टिमम के पास अभी कुछ भी नहीं है। आई वुड से 30 मिनट्स तक उनके पास कुछ भी नहीं होगा स्पेक्टर को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल तला, और ये काफ़ी ट्रबलिंग सिचुएशन यहाँ पे लग रही है टीम ऑप्टिमम के लिए। स्पेक्टर और ब्रू मास्टर अगेन दो एक ऐसे कोर्स हैं कि एक तो आपको उनको फार्म शट डाउन करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अगर वैसे थोड़े से स्लो फार्मर्स हैं उस तरीके से, लेकिन अगर आप उनको फार्म शट डाउन नहीं करते, ऊपर से उन्हें मोमेंटम मिल रही है किल्स के साथ साथ, तो फिर ये एक काफ़ी ट्रबलिंग सिचुएशन बन जाती है आपकी ओवरऑल गेम के लिए। लेकिन वॉरलॉक इस वक्त काफ़ी अच्छा मिड के ऊपर वार्ड लगाते हुए, और जो एग्रेशन है यहाँ पे टीम ऑप्टिमम की तरफ से उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओडी और वेंचफुल स्पिरिट यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, और आई थिंक टावर को सैक्रिफाइस कर दिया गया है, लेकिन क्या कॉप को यहाँ पे पनिश किया जा सकेगा ये चीज़ अब देखनी पड़ेगी। लेकिन एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट की जाती है और वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन मीटियर को चैनलिंग से रोक नहीं पाते हैं। ओडी ये किल ले लेंगे अर्थ स्पिरिट की तरफ, और साथ ही साथ मार दिया जाएगा वहाँ पे दूसरे हीरो को भी। थोड़ा सा टीम ऑप्टिमम की तरफ से मैं कहूँगा कि अजीब इंगेजमेंट थी वहाँ पे। दे गॉट द टावर, कॉक को काफ़ी बचाने के चक्रों में 3 हीरोज लूज। काफ़ी एम्बिशियस प्ले था कि ग्रिमस्ट्रोक अपना इंक्सपल लगाएगा अर्थ स्पिरिट पे और फिर वो मीटियोर हैमर को रोक देंगे। लेकिन आई थिंक उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किए कर पाए वो कि मीटियोर हैमर जिसे कहना चेरी ऑन टॉप, वो एक ऐसी एबिलिटी है टीम के लिए, क्योंकि उनके पास उनकी जो बाकी एबिलिटीज़ हैं वो अभी इस वक्त गेम में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको हैंडल करना, उनका डैमेज सोक करना अभी तो कोई भी नहीं कर सकता। बट मीनवाइल अभी स्मोक ऑफ डिसीट आई है दोनों टीम की तरफ से इनफैक्ट, तो वो किस पर जाते हैं। और डूम अगर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर दी तो शायद ये इनके पास एक बेहतरीन मौका है कि गेम को टर्न अराउंड करने के लिए। बिल्कुल, दोनों टीम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रही है मेरे ख्याल से। स्मोक के साथ टीम शैडो फील्ड को ढूंढ रही है बॉटम पे। मेरे ख्याल से शायद शैडो फील्ड उनको वहाँ पे मिल भी चुके हैं, और शैडो फील्ड शायद मरने के भी करीब है यहाँ पे, और बिल्कुल यही होता है, शैडो फील्ड को टेक आउट कर लेते हैं। तो टीम की तरफ से स्मोक यूटिलाइज होता है। यहाँ पे ओडी भी नज़र आ जाते हैं दूसरी साइड पे। ओडी शैडो एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट करके शायद भाग जाए, लेकिन अर्थ स्पिरिट उनकी परसूट में है, रोल किए जाता है लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं ओडी को। तो आई थिंक इस स्मोक का भी हमारे पास एक क्लियर विनर है, और वो टीम यहाँ पे नजर आती है जो कि शैडो फिन को एलिमिनेट करने में कामयाब है। सरप्राइजिंगली उन्होंने वार्ड नहीं लगाया, बट इनको वेंचुरल स्पिरिट तो मिलता है। वेंचुरल स्पिरिट विल डाई फ्रॉम दिस, लेकिन स्पेक्टर भी अब टीम फाइट के अंदर आ गया और एक्चुअली क्वीन ऑफ पेन टर्नर हो गया और वेंचुरल स्पिरिट को डिनाई कर दिया गया है। अब डूम तो उसने लगा दिया है आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर पे, सिंगल टारगेट डूम लगा है, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी हेफ्टी है कि उनके मिड डिनर को टेक आउट हो गया है। उनको एक अर्थ स्पिरिट भी मिल जाएगा फाइट में, बट इतना ज़्यादा लॉस फेस करना तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है उनके लिए। बिल्कुल तरह मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक ये गेम का पहला डूम डेफिनेटली। अब डूम शायद अब यहाँ पे मर जाए, बिकॉज वॉरलॉक की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है। मीटियोर हैमर लग पाए या ना लग पाए, वो थैंक्स टू द ब्रू मास्टर स्लो डाउन तो वो लगेगा। मीनवाइल शैडो फील्ड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एक बहुत अच्छा रेक्वियम का इस्तेमाल करते हुए वो मर गए। डूम मेरे ख्याल से बच जाएगा यहाँ पे और पांडा निकल जाएगा। ओ नेवर माइंड, पांडा निकल भागने नहीं की पाया तो और डूम भी कोशिश इनफैक्ट करते हैं वहाँ पे, लेकिन कॉप और ग्रिमस्ट्रोक का कॉम्बिनेशन उनको वहाँ पे पकड़ लेता है, और इस तरीके से फ़ौरन गेम को कुछ हद तक टीम ऑप्टिमम ने टर्न अराउंड कर दिया। 3 हीरोज एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं दूसरी साइड पे। और तला नेटवर्थ तो आपस में बाउंस बैक कर ही रही है, लेकिन ये स्पेक्टर जो कि 8 in 1 है इस वक्त,
ज़रूर टीम ऑप्टिमम की ख्वाब इसको ख़राब करके बैठी होगी इस गेम को जीतने के। बिकॉज़ मुझे वही बात है, अनलेस कोई ब्रेक का मैकेनिक आता है जो कि आई थिंक शैडो फील्ड ही प्रॉब्ली बनाते हुए नज़र आएंगे कुछ टाइम बाद, तो उस ब्रेक के मैकेनिक से पहले स्पेक्टर के साथ डील करना तो तकरीबन नामुमकिन लग रहा है यहाँ पे। वो ओडी उसको एस्ट्रेट कर सकता था, बट बिल्कुल अली, जैसे जैसे आप कह रहे हो, मुझे भी यही नज़र आ रहा है कि स्पेक्टर को शट डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेड मेल को अगर फोर्स करते हुए आपको उसको मारना है तो आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि बाकी टीम आके आपको क्लियर अप कर सकते हैं। और टीम ने अभी जो टीम फाइट हारी थी वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन की वजह से हारी थी। 1 बाय 1 करके वो गए थे, पहले ओडी मरा, फिर पांडा मरा, तो ये सूरत हाल है। और स्पेक्टर जहाँ तक हमें देख रहे हैं उसने तकरीबन आई थिंक इस ग्रिमस्ट्रो को 2 शॉट या 3 शॉट किया है। उसके आइटम्स हमें पता चलेंगे तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा, बट आई हैव अ फीलिंग कि इसने अपना डिफ्यूज़ल ब्लेड भी कंप्लीट कर चुका है। और स्पेक्टर का डिफ्यूज़ल तो वही बात है, ऑप्टिमम की साइड के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, बिकॉज वही इंटेल डिपेंडेंट हीरोज़ है, मैना पूल काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, तो फिर उधर मैना लीक करना भी एक मसला ज़रूर बन जाता है। लेकिन इस वक्त टीम काफ़ी एग्रेशन का मुजाहरा करते हुए उस मिड टावर के ऊपर, आई थिंक स्पेक्टर की अल्टीमेट भी उनके पास रेडी है, वॉरलॉक की अल्टीमेट यहाँ पे तैयार है, और 4 हीरोज़ तकरीबन इनके पास मिड के ऊपर मौजूद है। और टीम ऑप्टिमम को अब देखना पड़ेगा, डू दे वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस, या वो अभी भी स्प्रेड आउट होकर फार्म करना चाहते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव ट्रेड करने की कोशिश की जाती है, ऊपर टियर 1 टावर को प्रेशर तो किया जा रहा है, लेकिन कॉप को केयरफुल होना पड़ेगा। इनिशिएशन अगर आ जाती है उनके ऊपर तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमें बचना। डेफिनेटली उसकी टीम पीछे तो है, लेकिन उसकी टीम नॉट एग्जैक्टली बचाने वाले हीरोज़ कॉप के पीछे स्टेशन हुए हैं। इट्स एन अर्थ स्पिरिट एंड डूम ब्रिंगर, तो वो वॉरलॉक के ऊपर ज़रूर जा सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, और वो जल्दी से वॉरलॉक मर भी जाएगा। अर्थ स्पिरिट अंदर जाता है और क्वीन ऑफ पेन भी है वहाँ पे, तो वॉरलॉक तो यहाँ पर गिरेगा, बट नॉट बिफोर वो अपनी अल्टीमेट खोल दे। और यहाँ पर अभी वो डिनाई की तरफ जाएगा वॉरलॉक, क्योंकि उसके पास अपना हील तो है नहीं। तो अच्छी किल थी बिल्कुल और तला वर्थ इट जैसे भी कि था, वॉरलॉक की अल्टीमेट गिरा दी। बिल्कुल वॉरलॉक की अल्टीमेट एक्सपेंड करने में कामयाब होते हैं, और साथ ही साथ कॉप के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है। कॉप हैज़ टू ब्लिंक आउट टू स्टे अलाइव वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे रेडिएंट के 2 हीरोज़ बिल्कुल फंस चुके हैं, और वही डबल डूम हमें यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन कैच नहीं कर पाता ओडी के ऊपर। और साथ ही साथ काउंटर इनिशिएशन आती है, एंड इट्स अ ब्लड बैथ। टीम एक दफ़ा फिर से टीम ऑप्टिमम के ऊपर कम्प्लीटली टीम फाइट्स इन द डोमिनेट करते हुए। और आई गेस अगर इस फाइट की कोई सिविल लाइनिंग थी तो वो ये थी कि शैडो स्ट्रीम इस फाइट में मौजूद नहीं थे और वो फॉर्म कर रहे थे। डेफिनेटली, और यही मसला है कि इतनी ज़्यादा एओई एबिलिटी के अगेंस्ट टीम के पास बहुत सारी कुछ चीज़ें डैमेज को सोक करने के लिए और डैमेज को रिटर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल पांडा के अगर आप ऊपर सब कुछ फेंक दो और आप उसको नहीं मार पाओ और पांडा अपनी अल्टीमेट खोल देता है, तो पूरी की पूरी टीम फाइट वहीं पे आपकी ज़ाया हो जाती है। मीनवाइल स्पेक्टर को तो मारना आई वुड से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है, नॉट अनटिल शैडो फील्ड अपनी एबिलिटीज़ और या अपने आइटम्स फार्म नहीं कर लेता। और शैडो फील्ड इवन देन 6 स्लॉटेड शैडो फील्ड वर्सेस 6 स्लॉटेड स्पेक्टर, एक काफ़ी बड़ा टॉस अप है कि कौन जीतेगा। 1-on-1 तो स्पेक्टर डोमिनेट करेगा उसे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट के साथ शायद शैडो फील्ड कुछ कर पाए। बिल्कुल, और स्पेक्टर अब रोशान लेकर आ गए मिड लेन में, लेकिन यहाँ पे एचपी काफ़ी कम मौजूद थी। अगर टीम की तरफ से अगर बाकी टीम वहाँ पे ना पहुँच पाती तो स्पेक्टर माइट हैव बीन इन अ वेरी रफ स्पॉट वहाँ पे। लेकिन अब टीम ऑप्टिमम के यहाँ पे इंतखाब करना चाहती हैं लड़ने का, लेकिन लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे फाइट हो पाएगी, स्पेशली विद दैट एचएस जो कि ओडी के ऊपर मौजूद है। शैडो फील्ड वॉज अराउंड, करीब थे क्या इन केस के अगर कोई एक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे अपनी टीम की हेल्प कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आता। कॉप्स टर्न आउट हो जाती हैं, लेकिन शी शुड हैव द ब्लिंक टू गेट आउट ऑफ देयर, और अर्थ स्पिरिट जंप्स इन जस्ट टू मेक श्योर कि कॉप वहाँ से सेफली बच के निकल जाए। स्पेक्टर के अगेंस्ट अभी ऑप्टिमम सिर्फ भाग ही सकते हैं, और ये स्पेक्टर अर्थ स्पिरिट को चेस तो डेफिनेटली कर रहा है। ओके नेवर माइंड, स्पेक्टर ने उसे ये जो अर्थ स्पिरिट ने अपनी उसे पुश किया था वो डेफिनेटली बैड डिसीजन। 13-1-1 नाउ,
स्पेक्टर की तरफ से, और उसे मारना। और आप देख सकते हैं कि टीम जो है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उनके स्पेक्टर को कोई नहीं मार सकता। उन्होंने अपनी एजिस ओडी को दी हुई है और स्पेक्टर को, और ये बिल्कुल सही डिसीजन है बिकॉज स्पेक्टर को निकालना तो इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। स्पेक्टर फ्रीली 3v1 जा सकता है, 4v1 जा सकता है। उसके ऊपर अगर आप सब कुछ एक्सपेंड कर दें तो ही जाके शायद वो मर पाएगा। बिल्कुल तला, स्पेक्टर को मारना तो इस वक्त ख्वाबों की बातें लग रही हैं टीम ऑप्टिमम के लिए इस वक्त। सो टीम काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी स्पेक्टर के साथ टॉप लेन के ऊपर पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अगर थोड़ी सी हम बात करें कि टीम ऑप्टिमम के लिए यहाँ पे जो कम बैक का राउट है वो किस तरीके से बनता है, तो आई थिंक थोड़ा सा वेल जो उनके तीनों कोर्स हैं उन्हें दिल हैव टू गेट वेरी फार्म राइट। उनको फार्म अपना काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही में जैसे ही मैं ये बोलता हूँ शैडो फील्ड को मैप के ऊपर पकड़ के मारा जाता है। और वही बात है कि स्पेक्टर लाइनअप के अगेंस्ट फार्म करना भी काफ़ी मुश्किल है। आप मैप पे अगर कहीं पे भी शो करें स्पेक्टर की अल्टीमेट रेडी हो तो जम करके आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एजेस ज़रूर ख़त्म कर दिया जाता है। ओडी के ऊपर से डबल डैमेज के साथ कॉप यहाँ पे मौजूद है फाइट करने के लिए रेडी। ओडी के पास अल्टीमेट मौजूद नहीं, यहाँ पे डैमेज ले लेते काफ़ी ज़्यादा एंड कॉप कैन फिनिश द ओडी ऑफ अगर यहाँ पे अग्रेसिवली अंदर की तरफ ब्लिंक किया जाए, और बिल्कुल यही करते हुए नजर आते हैं। डैमेज देकर उनको मारने में कामयाब, साथ ही साथ एक और हीरो यहाँ पे स्पेंड होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब स्पेक्टर वापस आ चुके हैं, मैना काफ़ी कम रह चुके हैं और ये वो डिफ्यूजल ब्लेड का इस्तेमाल नजर आ रहा है स्पेक्टर की तरफ से। कॉप को यहाँ पे ब्लिंक मौजूद होगा, टीपी आउट करने में कामयाब होंगे, लेकिन पीछे अर्थ स्पिरिट पकड़े जाते हैं। तो टीम की तरफ टीम ऑप्टिमम की तरफ से बल्कि मैं कहूँगा कि डूम भी काफ़ी गया। अच्छा प्ले यहाँ पे नजर आता है और डूम को भी मारने में कामयाब। तो उस एजिस तो उन्होंने ओडी के हाथों से निकाल लिया, लेकिन ये इनके लिए बहुत महंगा पड़ा है। मांटा स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है स्पेक्टर का, और अभी वो हार्ट की तरफ जा रहा है। आई थिंक 30 मिनट या 27 मिनट मार्क पे उसका हार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और नो लाइन ऑफ साइट, नो मतलब जिसे कहें ना कि आगे टीम ऑप्टिमम को क्या करने की ज़रूरत है जिससे वो स्पेक्टर को मार सकें, तो उस चीज़ के लिए कुछ नज़र में नहीं आ रहा। शैडोफिन फार्म इतनी तेज़ी से तो कर नहीं सकता, ना ही उससे एक्सपेक्ट की जाए ये चीज़। मीनवाइल अर्थ स्पिरिट रोल ओवर करते हुए वॉरलॉक को तो वो शायद रोल मार इन देंगे, करते लेकिन हुए ही विल पे। ओह नेवर माइंड, वॉरलॉक को बचा लिया गया है एस्ट्रल प्रिजन से। उसकी जगह वेंचुरल स्पिरिट मारा जाएगा। और अब शैडोफिन काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। बीके भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन अब उसके पीछे स्पेक्टर है। स्पेक्टर तो उसको डेफिनेटली मारेगा। और अब सिर्फ ग्रिमस्ट्रोक बाकी रहा है जो फाइट से निकल जाएगा। मीनवाइल कॉप ने बैक लाइन्स पे एक और हीरो को भी मार दिया है, बट अगेन शैडोफिन को मार दिया गया है। स्पेक्टर जिंदा है। जो कोर्स की बात की जाए तो कोर्स तो सरवाइव कर रहे हैं, और एक्चुअली क्वीन ऑफ पेन ओडी को भी मार देंगे। ओह नेवर माइंड, ब्लिंक आउट। ओह और क्या बेहतरीन गेम प्ले दोनों मिड के कोर्स की तरफ से नजर आता है। कॉप ओडी के ऊपर जंप करते हुए अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हैं। तला वही चेंज जो आप अल्टीमेट की बात कर रहे थे, ओडी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लिंक करके दरख्त की साइड पे निकल जाते हैं। लेकिन तला वही इशू है कि ऑल्दो बीके भी तो ऑनलाइन है शैडोफिन के लिए, वो दैट डज मेक हिम अ लिटिल मोर सर्वाइवेबल इन द टीम फाइट्स राइट। लेकिन मसला ये है कि द स्पेक्टर डजंट केयर अबाउट योर बीकेबी एंड उसी तरीके से वही बात है कि टीम ऑप्टिमम के पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है दैट मेक्स अ स्पेक्टर वरी। तो एंड दैट मेक्स मी वरी बिकॉज दैट मीन्स कि ये गेम काफ़ी मुश्किल इवॉल्व होती जा रही है टीम के लिए। लेकिन तला डू यू थिंक जिस तरीके से स्पेक्टर इस वक्त डोमिनेट कर रही है टीम उस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव्स को प्रेशर करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं? डेफिनेटली मैं एक्चुअली इसी को ब्रिंग अप करने वाला था। ऑब्जेक्टिव वाइज देखें, इन्होंने जैसे ही ब्रू मास्टर का लेवल 6 आया था तो उन्होंने टियर 1 टावर ले लिया था, फिर उसके 1 मिनट बाद मिड का टियर 1 टावर। लेकिन अभी भी ऑप्टिमम का टियर 1 टावर बॉटम लेन पे मौजूद है, वेरी क्लोज। बट 700-800 गोल्ड वापस से स्पेक्टर की तरफ शैडोफिन को मारते हुए। स्पेक्टर को एक पूरा लेवल मिला होगा उसके लिए। वॉरलॉक भी अब मर जाएगा नहीं, इनफैक्ट वॉरलॉक जिंदा है। क्वीन ऑफ वेंचुरल स्पिरिट का स्टन अर्थ स्पिरिट की जाते हुए टियर 1 टावर ऑप्टिमम ने ले चुके हैं टॉप का साइड का। और ऑब्जेक्टिव वाइज तो ऑप्टिमम ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं डिस्पाइट द डिसएडवांटेज जो उनके सामने है।
बिल्कुल तला कोर कोर डिसएडवांटेज तो है ही है इस तरीके से कि मैचअप में भी डिसएडवांटेज है। ज़्यादा मैं कहूँगा कि टीम टीम के कोर लाइनअप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देर शाइनिंग स्ट्रॉन्गर, लेकिन टीम ऑप्टिमम देर प्लेइंग द मैप मच बेटर, ऑब्जेक्टिवली भी वो मैप को काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। यहाँ पे एक और किल की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ ही साथ अल्टीमेट्स का ड्रॉप आ जाता है। स्पेक्टर पुश करते हुए आती हैं वापस और अपने ब्लेड मैन ऑन, लेकिन शायद ये वो मौका हो कि जिसके ऊपर वो स्पेक्टर को पनिश कर सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल एक अकेला डूम यहाँ पे कुछ कर पाएगा, और यही बात समझते हुए डूम को भी वापस होना पड़ता है। ओडी चेस कर रहे हैं, ब्रूलिंग भी, ड्रू मास्टर भी दूसरी साइड से आ रहे हैं, और यही होगा। एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो गया। टाइमिंग मीटी हैमर के ऊपर शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर। उनको टेक आउट करने में कामयाब, और क्योंकि ये किल बिल्कुल एक टियर 1 टावर के साथ हुई थी, तो दैट शुड बी देयर टावर एज वेल। डेफिनेटली मेरे जहन में आया था कि टावर लेंगे या उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ब्लू मास्टर क्रीप्स को मार रहा था, लेकिन आई एम श्योर टावर उनके नज़र में जब आ गया इवेंचुअली था तो टावर को वो उन्होंने इवेंचुअली तो उन्होंने टावर को ले लिया। विजडम रून भी वो अर्थ स्पिरिट सिक्योर कर देगा, बिकॉज वो हमेशा एक वरी होता है कि इतना करीब जो है अपोनेंट है तो वो शायद विजडम रून को स्टील करेगा। दोनों साइड के टॉर्मेंटर अभी तक मौजूद हैं। परहैप्स जो ऑप्टिमम है उनको शार्ड की ज़रूरत है। डैमेज जो है उनके पास शैडोफिन के ज़रिए वो उसको निकाल सकते हैं इससे पहले कि टीम उनका टॉर्मेंटर खा जाए। हाउएवर स्पेक्टर डेफिनेटली ऑप्टिमम उसके ऊपर उतना उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, और बार बार ये स्पेक्टर एज ऑफ डेथ से मतलब अपनी एचपी इनफैक्ट उसने एक हेक्स बना लिया है साइट ऑफ वाइस हार्ट के बजाय। बिल्कुल तला, आई थिंक ये वही बात है, स्पेक्टर फील्स के इट इज़ वेरी मच अनकिलेबल एट दिस पॉइंट, राइट? तो गोइंग फॉर एन अर्ली साइज, एक्स्ट्रा कंट्रोल फाइट्स के अंदर टीम ऑप्टिमल की ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल करते हुए, और साथ ही साथ आई थिंक जब वो स्कार्डी ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर उसकी सर्वाइवेबिलिटी भी वापस उस तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगी। लेकिन खैर इस वक्त तो सिर्फ एक ब्लड बैच चल रहा है, बिकॉज 4 किल्स टीम ऑप्टिमम के ऊपर ले ली जाती हैं टीम की तरफ से, और अब आई थिंक ये टियर 2 भी बॉटम का गिरता हुआ हमें नजर आएगा। और आई थिंक जो फिक्र थी मुझे अबाउट टीम ऑप्टिमम्स टॉर्मेंटर, आई हैव अ फीलिंग कि जो टीम है वो अभी उसको भी खा जाएगी। बिल्कुल तलहा, और अगर हम शार्ड्स और एग्स की बात करें तो गेम में आपके कौन से हीरोज हैं जिनके ऊपर आपको शार्ड वैल्यूबल लग रहा है या एगनिम्स वैल्यूबल लग रहा है? आई थिंक थर्ड रोश के अंदर हमारे पास एगनिम्स स्पॉन होता हुआ हमें नजर आएगा। तो इज दैट एन ऑब्जेक्टिव द टीम्स आर लुकिंग टू सिक्योर? किन किन हीरोज के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल, और आई थिंक जो क्वीन ऑफ पेन के सेप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आई डू थिंक कि मेटा के अंदर वो अभी बनाया जाता है, बट लिंकन स्फीयर को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है कॉप को। आई एम नॉट श्योर ये किस वजह से, बिकॉज इतनी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ हैं नहीं सिंगल टारगेट टीम के पास। आई मीन श्योर वेंचफुल स्पिरिट का स्वैप आउट है, बट कॉप इंस्टेंटली ब्लिंक आउट कर सकती है उसमें से। तलहा, ये शायद एस्ट्रल बट इम्प्रिजनमेंट से बचने के लिए आई गेस। हो सकता है डेफिनेटली, अगर एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट को परफेक्ट मीटियोर हैमर के साथ टाइम किया जाए तो फिर कॉप शायद मर जाएगी। बट उसमें भी अब ब्लिंक आउट के पास आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, पर्टिकुलरली जब आपके पास बीकेबी मौजूद हो। बीकेबी के मौजूदगी में लिंकन स्फीयर आप तो सिर्फ उस सिचुएशन में बनाओगे जैसे आपके पास कोई नलिफाइंग, जैसे कोई म्यूटिंग एबिलिटी हो, जैसे कि डूम की अपनी एबिलिटी है, तो उस सिचुएशन में लिंकन स्फीयर प्लस बीकेबी काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। बट इन दिस गेम थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है, पर्टिकुलरली जब आपके पास कोई इतना ज़्यादा डैमेज आउटपुट की इतना बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली जब आपका शैडोफिन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा। बिल्कुल तलहा, ये चीज़ नज़र आ रही है, और कॉप को पिक ऑफ करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ पे स्टन लगेगा, लेकिन बच पाते हैं बिल्कुल थोड़ी सी ही एचपी के ऊपर। कॉप थोड़ा से खतरों के खिलाड़ी की तरह यहाँ पे खेलते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन खैर स्पेक्टर के अल्टीमेट का इस्तेमाल नहीं, स्पेक्टर की अल्टीमेट तो खैर आएगा स्कूल डाउन के ऊपर पहले से टीपी करके वहाँ पे पहुँच के थे अपने टीममेट की हेल्प करने, और यहाँ पे एक बॉटम एक वॉरलॉक को स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन द रोल मिसेस आउट एंड 4 स्टाफ का काफ़ी बेहतरीन शानदार इस्तेमाल डॉज करके था, अपने आप को वहाँ से और निकाल वॉरलॉक देते हैं। ने बिल्कुल टाइम किया था कि वो जैसे ही 4 स्टाफ दूसरी डायरेक्शन में करेगा वो टीपी आउट कर लेगा और अर्थ स्पिरिट कुछ भी नहीं कर पाएगा।
स्टन की रेंज निकल जाएगी उसके लिए। अब शैडो फील्ड काफ़ी मुश्किल है कि ये शैडो सिल्वर एज फील्ड तो तला रेडी हो इतना गया। ज़्यादा डैमेज बनाए। सिल्वर एज, चलो ये तो एक अच्छी खबर है, सिल्वर एज रेडी हो गया है, लेकिन वो डिस्पर्शन के साथ कैसे डील करेगा सिल्वर एज से? नॉट टू मेंशन कि जो एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट आता है, अगर आपने स्पेक्टर पे ब्रेक अप्लाई कर भी दिया तो वो एस्ट्रल इम्प्रिजन करके उसकी पूरी ड्यूरेशन को आप निकाल सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। Dire's top tower is under और स्पेक्टर ने attack. अपना ब्लेड मेल बिल्कुल, आई भी आई थिंक थिंक सेल आउट Dire's किया है। structures are fortified. या और आई थिंक दूसरी साइड पे वो स्कार्डी भी स्पेक्टर के ऊपर रेडी हो चुकी है, तो इस कोर से डील करना जिसके पास एजिस भी है, जो आपके कोर से 2-3 आइटम्स एटलीस्ट आगे हैं इस वक्त हर तरीके से, राइट? तो ये एक काफ़ी मुश्किल चीज़ लग रही है। और अभी तो सिर्फ ब्रूलिंग्स ही के थ्रू टॉप स्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल भी हो जाएगा वहाँ पे, और मेरे ख्याल से आई थिंक दैट शुड बी द एंड ऑफ दैट उस साइड पे। लेकिन यहाँ पे एक और वॉरलॉक को फिर से ढूंढ लिया जाता है, साइलेंस अप्लाई होता है, अल्टीमेट इस्तेमाल करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉप ब्लिंक करते हुए अंदर जाती हैं, उनके पास लिंकन स्फीयर स्टन डॉज हो जाता है उस तरीके से, साथ ही साथ डीके भी ऑन करना पड़ता है, अल्टीमेट का इस्तेमाल हो जाता है डबल टारगेट पे, और यही मौका है उनके पास स्पेक्टर को किल करने का। हिट आ जाती है, ब्रेक भी अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन एजेस मौजूद है, दे शुड बी एबल टू गेट थ्रू द फर्स्ट लाइफ यहाँ पे थोड़ी देर में। साथ ही साथ एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट आ जाता है और ये पहली किल लेने में कामयाब। वेंजफुल स्पिरिट अभी भी काफ़ी लो एचपी के ऊपर मौजूद, लेकिन साथ ही साथ अल्टीमेट को टाइम किया जाता है। वेंजफुल स्पिरिट अपनी अल्टीमेट के थ्रू बचा लेती हैं, शैडो फील्ड के चैनल को रोक देती है, लेकिन शैडो फील्ड अब इस दुनिया के ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और लेकिन कॉप अभी भी मौजूद यहाँ पे, ओडी दे ट्राइंग टू मेक क्विक वर्क, लेकिन चीज़ ओडी के पास मौजूद थी। और अब जब ओडी वापस आएंगे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज ओडी डज अ लॉट ऑफ डैमेज विद दोज राइट क्लिक्स। और तलहा वो क्या स्पेक्टर ने किल फाइट यहाँ पे नजर अबैंडन आई। कर दी, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा था, बिकॉज ओडी के पास तो चीज़ भी मौजूद थी। ओडी के साथ अगर स्पेक्टर लड़ता एस्ट्रल के बाद, तो हो सकता है ओडी को वहाँ पे मरने की ज़रूरत ना हो, एज अपोज टू स्पेक्टर गोइंग इनटू द फाइट ओडी के मरने के बाद। बट डेफिनेटली इस चीज़ से तो ये डिस्प्ले होता है कि अगर वो अपनी ग्रिम स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए डबल डूम गिव ऑफ कर लेते हैं, तो वो इवन स्पेक्टर को भी मारने में कामयाब हो सकते हैं। अब डेफिनेटली ये चीज़ प्रूव हो गई है, सो आई थिंक टीम के लिए थोड़ा सा वरीइंग होगा कि उन्होंने अभी तक इतने ऑब्जेक्टिव्स लिए ही नहीं हैं, और अभी उन्होंने ऑप्टिमम के बैरिक्स को ज़िंदा छोड़ा हुआ है, जहाँ एज अपोज टू 35 मिनट्स इतनी ज़्यादा लीड उन्होंने जाने दी है इसी चीज़ के लिए। तो अभी आई वुड से कि ऑप्टिमम के पास एक बेहतरीन मौका है इस गेम को टर्न अराउंड करने के लिए। देखो ज़रा, ऑप्टिमम के पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे गेम टर्न अराउंड करने को। हमने देखा था वो सिल्वर एज के यूसेज हमें नज़र आया कि सिल्वर एज के उस हिट के बाद स्पेक्टर की पहली लाइफ के थ्रू गुजरना एटलीस्ट काफ़ी आसान हो गया था टीम ऑप्टिमम के लिए। तो अब आई थिंक विदाउट द एजेस अगर कोई एक थोड़ी सी फेयर रिलेटिवली फाइट ली जाती है ऑप्टिमम की तरफ से, तो दे कैन हैव सम लक विद इन दीज फाइट्स, राइट? स्पेक्टर शैडो को अगर फील्ड एलिमिनेट भी करने में बिल्कुल कामयाब रेड होते हैं। एचपी। स्पेक्टर ने जंप तो मारा था Sure. शैडो फील्ड के ऊपर, बट आई डू नॉट थिंक I think Shadow Fiend मरने वो लगे हैं। मरे होंगे। ओह, रेक्विएम का इस्तेमाल और साथ ही साथ टीममेट्स का सपोर्ट, और शैडो फील्ड स्पेक्टर को मारने में कामयाब। कॉप के पास तकरीबन 2000 गोल्ड जाता है तला उस 10 टाइम्स किल स्ट्रीक के लिए। डेफिनेटली, और आई थिंक अगर क्वीन ऑफ पेन अपना हेक्स बना देती है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो शिवास की तरफ जा रही है, बट हेक्स अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर आप स्पेक्टर को हेक्स कर लो और स्पेक्टर को उड़ा दो, तो स्पेक्टर के बगैर तो टीम के पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। बिल्कुल तला, काफ़ी मुश्किल फाइट उनके लिए बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर से वो अल्टीमेट का इस्तेमाल नज़र आ जाता है। वेंजफुल स्पिरिट को टेक आउट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन ग्रिम स्ट्रोक तो मेल्ट कर रहा है यहाँ पे अपहीवल के अंदर खड़े होकर। और साथ ही साथ फाइट बायबैक स्पेंड किए जाते हैं दोनों साइडों से। कॉप को हैक्स कर दिया गया है, लेकिन कॉप यहाँ से निकलने में कामयाब होगी। डबल डैमेज ओडी पुश करते हुए आते हैं, और इधर अर्थ स्पिरिट को भी मारने में कामयाब टीम ऑप्टिमम।
जैसे ही अच्छी फाइट लेते हैं वहाँ पे, लेकिन आई थिंक वहाँ पे स्पेक्टर ने भी बाय बैक स्पेंड किया है, तो अब टीम को थोड़ी देर के लिए काफ़ी केयरफुली खेलना पड़ेगा। डबल डैमेज यहाँ पे मौजूद है, ओडी की तरफ से हिट आती हैं यहाँ पे, और लुक एट दैट डैमेज द शैडो फिend इज डूइंग राइट नाउ। कितना ज़्यादा डैमेज का आउटपुट उनकी तरफ से आ रहा है, और जैसे कॉप अगर विजन रखती है ओडी के ऊपर, तो ओडी मरने में मर जाएंगे भी थोड़ी देर में, लेकिन साथ ही साथ हेक्स का इस्तेमाल आ जाता है शैडो फिend के ऊपर। शैडो फिend इज अबाउट टू डाई, एचपी बहुत कम मौजूद, और यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, और अब पीछे ज़्यादा डैमेज नहीं मौजूद। पॉप शी इज होल्डिंग हर ग्राउंड, हाई ग्राउंड पे खड़े हुए, हिट्स पे हिट्स आ रही हैं, लेकिन ये हिट्स कितनी कारआमद साबित होंगी हमें अभी देखना पड़ेगा। टोटम का इस्तेमाल करते हुए ब्रूलिंग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, और ओडी एटलीस्ट ओडी नहीं सॉरी यहाँ पे स्पेक्टर बचने में कामयाब होते हैं। ओह पोर वेंज। वो चलो शायद नहीं, ओके क्वीन ऑफ हाँ, पेन ने अपना वो वाह ज़ाया कर दिया स्क्रीम ऑफ पेन, और दूसरी तरफ ब्लिंक आउट किया। चलो खैर, ऑल इन ऑल आई थिंक ऑप्टिमम के लिए काफ़ी अच्छी टीम फाइट थी वो, इवन दो उनका स्पेक्टर सॉरी इवन दो उनका शैडो फिend मर जाता है, लेकिन स्पेक्टर ने बायबैक इस्तेमाल करते हुए टीम फाइट वापस रिजॉइन की है, जिस चीज़ की ज़रूरत उनको नहीं थी इनफैक्ट। तो अगर ये स्पेक्टर नेक्स्ट बायबैक से पहले मर जाता है तो काफ़ी मुश्किल होगा टीम को डिफेंड करने के लिए। और ब्रू मास्टर बिल्कुल भी अपनी अल्टीमेट को इस्तेमाल करके जैसे वो सीज कर सकते हैं ब्रू मास्टर के पीछे, क्योंकि ब्रू मास्टर को तो मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, सब आप डूम एक्सपेंड कर दो और हेक्स एक्सपेंड कर दो उसके लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अभी एबिलिटीज इस्तेमाल की जा रही हैं कॉप के ऊपर, कॉप को कैच आउट करने की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेट यहाँ पे मौजूद है, कॉप के पास जैसे ही स्पेंड करना चाहे, लेकिन दूसरी साइड पे अल्टीमेट्स का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और भागते हुए वापस चले जाएंगे। एस्ट्रल इम्प्रेजेंट किया जा चुका है, बीके भी पुल ऑफ कर सकते हैं, और यही होता है बीके भी इस्तेमाल करने में कामयाब, साथ ही साथ कॉप अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल, और अब वापस जाकर ब्लिंक आउट करके टीपी कर लेंगी वहाँ पे। तो आई गेस सिर्फ अर्थ स्पिरिट वहाँ पे मारे गए, और दूसरी साइड से वेंजी की कुर्बानी हुई। डिफरेंट स्कर्मिशेस हमें डिफरेंट एरियाज के ऊपर मैप के ऊपर नज़र आ रही हैं, लेकिन वही बात पता चला, दिस इज़ ऑल हैपनिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, राइट? कि ना कोई टियर 2 टावर के करीब लड़ाई लड़ी जा रही है, रोश के ऊपर फाइट नहीं हो रही, तो आई गेस टीम टीम ने जो कि बड़ी मैसिव एडवांटेज अपनी स्पेक्टर के साथ ली हुई थी, 6000 गोल्ड लीड अभी भी उनके पास है, लेकिन दे आर नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली, और आई थिंक ब्रू मास्टर के पास जो रिफ्रेशर है वो एटलीस्ट अपने रिफ्रेशर को स्पैम करते हुए दूसरे अपोनेंट का टावर तो डेफिनेटली ले सकते हैं। ब्रू मास्टर का अर्थ स्पिरिट अभी 200 प्लस डैमेज करेगा दूसरे अपोनेंट के स्ट्रक्चर्स को, तो वो अभी स्पैम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली लेवल 25 भी उनका आने वाला है और अब आ चुका है, तो ये देखा जाएगा कि वो बिल्कुल कैसे सर, अब इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। डेफिनेटली तरह, और जिस तरह आप कॉप के आइटमाइजेशन की अगर हम बात की जाए, तो शिवास गार्ड आ गए, और साथ ही साथ उसके ऑक्टरीन कोर, तो वो अल्ट्रा लो कूल डाउन अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर अल्टीमेट का मल्टीपल इस्तेमाल हमें नजर आएगा। ब्रू मास्टर यहाँ पे मारने में कामयाब, साथ ही साथ वेंजी स्पिरिट यहाँ पे स्पेक्टर भी पकड़ी जा चुकी है, जिनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश की जा रही है। स्पेक्टर को कैच करने में कामयाब, शैडो फिend फ्री हिट्स आ रही हैं, लेकिन हेक्स का इस्तेमाल हो जाता है स्पेक्टर के ऊपर, अल्टीमेट आती है, शी गेट्स टेकन आउट। ओडी अकेले यहाँ पे अपने बीकेबी के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करेंगे। एस्ट्रल का भी इस्तेमाल हो जाता है, ओ, शैडो फिend के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे वॉरलॉक की अल्टीमेट की तरफ से। ये गॉलम्स बहुत ज़्यादा डैमेज डील करते हैं, और साथ ही साथ वेंजी भी अलाइव हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील किया जा रहा है, लेकिन वेंजी शी वॉन्ट बी लॉन्ग फॉर दिस वर्ल्ड, अभी टेक आउट हो जाएंगे। साथ साथ उनकी इल्यूजन स्पॉन हो जाती है, ये अनोइंग हीरो इस तरह लगता है कि कभी मर ही नहीं जाता, लेकिन साथ वॉरलॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील किया जा रहा है। कॉप अंदर वापस जंप करते हुए नजर आएंगी, एबिलिटीज का इस्तेमाल करती हैं। वेंची बेहतरीन तरीके से गॉलम के साथ खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन कॉप ट्रिपल किल लेने में कामयाब, और अब देखना पड़ेगा कि एक और किल के लिए जाती है नहीं। एचपी बहुत कम मौजूद है, तला ऑल इन ऑल टीम वाइप आया है टीम ऑप्टिमम की तरफ से, और अब टीम की जो एडवांटेज लग रही थी वो स्लिप होते हुए नजर आ रही है। डेफिनेटली, और ये स्पेक्टर जितना कॉन्फिडेंटली अर्ली गेम में और मिड गेम में अपनी अल्टीमेट इस्तेमाल करते हुए इंगेज करते थे, अब उतने ही कॉन्फिडेंटली वो टीम फाइट से भागते हैं। आई हैव टू से कि वेंजी जो है वो काफ़ी ब्रेव
प्लेयर है उनकी टीम का, हमेशा फ्रंट लाइन पे हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉप्स का इस्तेमाल, अपने स्टंट्स का इस्तेमाल करते हुए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उस फाइट में शैडो फील्ड को नहीं मारा जाता वेंचफुल स्पिरिट और वॉरलॉक ने, तो शायद ये गेम अभी ख़त्म हो जाती, बिकॉज शैडो फील्ड के पास भी बाईबैक नहीं था। तो स्पेक्टर 120 सेकंड्स के लिए डिसेबल हुआ हुआ, क्वीन ऑफ पेन जिंदा, क्वीन ऑफ पेन को अभी कोई भी नहीं मार सकता। ऑक्टेडीन कोर उसने बनाया हुआ है, अगर वो सेप्टर बना लेती है तो आई थिंक गेम ओवर सिनेरियो होगा टीम के लिए, बिकॉज क्वीन ऑफ पेन ऑक्टेडीन कोर प्लस सेप्टर का मतलब ये होगा कि वो हर 2.5 सेकंड्स पे अपनी शैडो स्ट्राइक स्पैम कर सकती है। ब्लिंक, अच्छा शैडो स्ट्राइक स्पैम हो सकता है। मैं कहता शैडो स्ट्राइक के लिए साथ साथ वो टैलेंट भी है जो कि स्ट्रीम ऑफ पेन निकालता है, तो दैट्स अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ डैमेज, राइट? इतना काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो Exactly. जाता है अपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन अब आई थिंक स्मोक आ रहा है टीम की तरफ से, पुश करते हुए बॉटम लेन की तरफ जा रहे हैं। अब कौन सा ऑब्जेक्टिव इन माइंड? आई थिंक रोशान को चेक किया जा रहा है कि इफ़ द रोश हैज़ स्पॉन्ड, एंड इंडीड इट हैज़। थर्ड रोश, इसके ऊपर एगेनिम्स भी मौजूद होना चाहिए, लेकिन टीम ऑप्टिमम को अब इस रोश को तो एटलीस्ट कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है वो कर पाएंगे जिस तरीके से अभी टीम मिडल के ऊपर सेटअप है। डेफिनेटली, और ये सेप्टर किसको देते हैं ये देखा जाएगा। आई थिंक ये सेप्टर स्पेक्टर को दे देना चाहिए, लेकिन अब एक्चुअली वो ओडी की तरफ जाएगा सेप्टर, और जो एजिस है वो स्पेक्टर उठाएगा जाके। I think देखते थोड़ा हैं सा हाउ वेल interesting, दिस प्लेज आउट। आई थिंक एजिस जो हो, आई थिंक एजिस शुड गो टू द ब्रू मास्टर जस्ट टू मेक श्योर कि वो अपनी अल्टीमेट गिव ऑफ कर दे। स्पेक्टर वैसे भी फ्रंट लाइन पे, जैसे हमने देखा है, फ्रंट लाइन पे नहीं रहना चाहते, Radiant's middle क्योंकि tower is उनके under ब्रेक attack. मैकेनिज्म के बाद स्पेक्टर अभी जहाँ तक हमें 2-3 फाइट्स देखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब एजिस के साथ पुश करेगी टीम बॉटम लेन के ऊपर हाई ग्राउंड जाने की कोशिश की जा रही है, और आई थिंक यही काफ़ी अच्छा टाइम होगा उनके लिए। ब्रोलिंग की अल्टीमेट भी इस्तेमाल हो जाती है वहाँ पे, और उसके साथ साथ ये टावर बहुत जल्दी मेल्ट होता है, लेकिन काउंटर इनिशिएशन की कोशिश की जा रही है। डूम आए थे ऊपर, लेकिन ब्रोलिंग उनको हवा में उछाल देते हैं, और यही होता है। थोड़ी देर के लिए फाइट के बाहर मौजूद होंगे। शैडो पेन को केयरफुल होना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, लेकिन स्पेक्टर की तरफ पहुंच जाते हैं उनको डैमेज देते हुए। एजिस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद शैडो फील्ड जिंदा नहीं रह पाएंगे, और काफ़ी मुश्किल होगा उनका जिंदा रहना अनलेस वो हिट्स मारकर अपनी लाइफ स्टील अप कर लेते हैं। लेकिन यही होता है, ओडी की तरफ से अल्टीमेट इस्तेमाल होती है, और अब पॉप और बाकी टीम को यहाँ पे मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज एक शैडो फील्ड के बगैर उनका डैमेज बहुत हद तक यहाँ पे फाइट में मिटिगेट हो गया। हैक्स आ जाता है कॉप के ऊपर, स्टन, परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ लैंड होता है। ब्लिंक भी अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट होता है, और साथ ही साथ स्पेक्टर अल्टीमेट का इस्तेमाल करके उनको टेक डाउन कर लेंगी। अल्टीमेट्स आ जाते हैं, और वहाँ पे अगर Oh, meanwhile, Brew टीयर Master. 4 टावर्स के ऊपर ब्रू मास्टर जस्ट डूइंग व्हाट अ ब्रू मास्टर डज, राइट? सलाह बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करते हुए। और अगर हम वापस देखा जाए तो एंशिएंट की एचपी तो काफ़ी कम हो चुकी है। 3 हीरोज अलाइव है रेडिएंट की तरफ से। टीम पुश करते हुए पार्ट टीम ऑप्टिमम बेहतरीन डिस्प्ले ऑफ डिफेंस यहाँ पे नजर आता है। इट इज कॉल्ड डिफेंस ऑफ द एशियंस, राइट? और वही चीज़ टीम ऑप्टिमम यहाँ पे करेगी। डेफिनेटली, और ना सिर्फ टियर 4 टावर ब्रू मास्टर ने सबसे पहले टॉप का जो रेंज रैक्स रहता था उसको पहले डिस्ट्रॉय किया। तो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं, जैसे कि हम गेम्स के जैसे पिकिंग स्टेज पे हम बात कर रहे थे ब्रू मास्टर के बफ के बारे में, तो इससे ये साबित होता है कि ऑप्टिमम के पास अब ना टियर 4 टावर रहते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बेस के बाहर फाइट लेने से, स्पेशली एक प्रोलॉन्ग फाइट, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि ब्रू मास्टर आराम से रिफ्रेशर के ज़रिए उनका थ्रोन भी डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये एक डेंजर फैक्टर अब हम गेम के लिए हमेशा के लिए ऑप्टिमम के लिए मौजूद रहेगा। ओह बिल्कुल। लेकिन कॉप काफ़ी रिस्की प्ले करते हुए ओडी के ऊपर जाते हैं। ओडी एस्ट्रल इम्प्रिजमेंट के थ्रू अपने लिए टाइम क्रिएट कर लेते हैं। स्पेक्टर पुश करते हुए अपनी एबिलिटी अपनी अल्टीमेट के साथ ओडी के साथ ही साथ रिस्पॉन्स किया जाता है डूम की तरफ से। बेहतरीन इनिशिएशन, और इस ओडी के लिए अब बचना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे साबित हो सकता है, और पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। स्पेक्टर की अल्टीमेट जैसे ही इस्तेमाल की गई, साथ ही साथ टीम ऑप्टिमम की तरफ से एग्रेशन किया गया। आई वुड से कि ऑप्टिमल किस्म का एग्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन शैडो फेंट बिल्कुल भी यहाँ पे करीब मौजूद नहीं है, तो थोड़ा सा डैमेज लैक होते हुए नजर आ रहा है। स्पेक्टर
वापस फाइट के अंदर आ जाते हैं, पुश करते जाते हैं। शैडो फिन यहाँ पे करीब मौजूद और ओडी के ऊपर हिट निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो भी अपने एस्ट्रल रिप्रेजेंटमेंट के साथ बच जाएंगे। लेकिन शैडो फिन और तलहा, दिस शैडो फिन इज हिटिंग लाइक अ ट्रक। बटरफ्लाई भी अब ऑनलाइन आ चुकी है और जैसे ही एमके भी ऑनलाइन आएगा तो उसके बाद तो और ही मुश्किल साबित होगा। Dire's ancient is under डेफिनेटली वो बाईबैक्स आना शुरू हो गए हैं ऑप्टिमम की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो डील हुआ है, बट Dire's अगेन ancient is under ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट कर रहे टीम ऑप्टिमम जो है। और ये शैडो फिन आई थिंक अब मर चुके हैं। ब्रू मास्टर के पास अपनी अल्टीमेट अभी भी एक्टिव है, अभी भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उनको मिड लेन की तरफ जाने की देर है। शैडो फील्ड और ग्रिमस्टोर के पास तो बाईबैक भी नहीं है, तो वो अपेरेंटली 3v5 3v2 सिनेरियो। मीनवाइल ब्रू मास्टर को ज़्यादा कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ दूसरे अपोनेंट के टावर पर अपनी अल्टीमेट को एक्टिवेट कर सकते हैं और वो टावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं शुड ही चूज टू गो फॉर इट। बट वापस जो लीड हम देख रहे थे ऑप्टिमम की तरफ जा रही थी, अब वो वापस टीम के पास डाइवर्ट हो चुकी है। बिल्कुल तला, लीड तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल भी नहीं रही टीम ऑप्टिमम के पास। उल्टा टीम वापस लेने में कामयाब हो गए। आई थिंक प्लेयर्स को थोड़ा सा लैग के इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हम रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टीम्स। लेकिन तला, इस अभी जो हमें नज़र आया जिस तरीके से शैडो फिन को एलिमिनेट किया गया, ये थोड़ा सा वरीसम है टीम ऑप्टिमम के लिए, बिकॉज शैडो फिन की सर्वाइवेबिलिटी अभी बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे कि हम देख रहे हैं शैडो फिन इसके बाद एक एमकेबी के लिए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट अदर आइटम, राइट, जो कि आपको सर्वाइवेबिलिटी देती है, जो आपको इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ लाइफ स्टील देती है, तो वो भी अभी बाद में क्यूड है। तो वुड यू थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन? डू दे रियली लैक middle डैमेज tower आउटपुट is राइट under नाउ? attack. आई थिंक जो डैमेज आउटपुट का आई वुडंट से लैक है, लेकिन अबिलिटी टू क्लोज फाइट्स क्विकली, मतलब आप जैसे कि आपने टीम फाइट शुरू किए तो वी सी के फाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड जाती हैं, वो फाइट्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है, जिसके लिए शैडो फिन को अपना डैमेज आउटपुट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मीनवाइल कॉप अभी अपने सेप्टर की तरफ जा रही है, 6 स्लॉटेड कॉप हमें नज़र आ रहा है, Radiant's middle बट tower कॉप को is मारना आई थिंक इम्पॉसिबल हो चुका है। -2 सेकंड ब्लिंक विद द ऑक्टेडीन कोर, मतलब उसका ब्लिंक तो तकरीबन 3 सेकंड की ड्यूरेशन पे आ चुका है, तो उसको लिंकन स्फीयर के साथ बीकेबी के साथ कैसे मारा जाए, तो ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो आई थिंक उनको कॉप को इग्नोर करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। बिल्कुल, आई थिंक कॉप का भी गेम प्लान यही होगा कि वो उनके कोर्स को इग्नोर करेंगे और साथ साथ बैक लाइन पे सारे सपोर्ट हीरोज़ के ऊपर जाएंगे। स्पेशली वॉरलॉक को अगर अपने गॉलम्स कॉप के लिए एक्सपेंड करने पड़े तो इसका मतलब है कि वो शैडो फील्ड के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। शैडो फील्ड, ऑल्दो शैडो फील्ड को मारना इतना मुश्किल नहीं है अभी अभी के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आई थिंक टीम वांट्स के वो कुछ टैंक, कुछ एबिलिटीज टैंक करे शैडो फिन के लिए, बिकॉज वी सीन कि शैडो फिन के पास डैमेज तो बहुत ज़्यादा है। व्हेन ही गेट्स दैट टाइम टू बी एबल टू गेट दोज हिट्स ऑन टू हीरोज, तो बहुत ज़्यादा डैमेज की तरफ यहाँ पे बेहतरीन किस्म का गेम प्ले नजर आ रहा है। बेहतरीन अल्टीमेट का इस्तेमाल, यहाँ पे डूम भी इस्तेमाल हो जाता है और साथ ही साथ शैडो फिन बीच में आकर अपनी अल्टीमेट इस्तेमाल, और स्पेक्टर बिल्कुल एक ऑफ एंगल के ऊपर पकड़े जा चुके हैं और अकेले वहाँ पे मौजूद है। लेकिन आई डोंट नो हूज इन मोर डेंजर, ये शैडो फिन लग रहा है कि यहाँ पे टेक आउट हो जाएंगे और साथ साथ ब्रूलिंग एक और दफा फिर से अपनी अल्टीमेट इस्तेमाल, लेकिन की इज तरफ गोइंग स्ट्रेट फॉर द एंशिएंट तलहा। यहाँ पे इसको रोकना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। यहाँ पे शैडो फिन के पास तो ना ही डैमेज है, हेक्स्ड आउट है, एंड आई थिंक जी कॉल हो जाता है इसी तरीके से। टीम यहाँ पे बेहतरीन किस्म का गेम प्ले उनकी तरफ से तलहा नजर आ रहा था, लेकिन एंड पे इट वाज द ब्रूलिंग स्ट्रैट दैट दे यूज्ड टू क्लोज इट आउट। डेफिनेटली, और यही जिसके हम क्वीन ऑफ पेन की बात कर रहे थे, क्वीन ऑफ पेन को
हमने लिटरली 2 मिनट पहले ही जैसे मेंशन किया था, क्वीन ऑफ पेन को वो इग्नोर करना पड़ेगा उसको, और सीधा अपने ऑब्जेक्टिव या सीधा बाकी टीम की तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली उन्होंने यही चीज़ नज़र में रखते हुए उन्होंने अपनी अप्रोच आजमाई। एंड एज वी सॉ, ब्रू मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसका अर्थ ब्रूलिंग कितना ज़्यादा डैमेज करता है, और इन दी एंड स्पेक्टर जितना उसने डोमिनेट किया, इन दी एंड तो स्पेक्टर का आई वुड से इस्तेमाल नहीं हुआ गेम क्लोज आउट करने में। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि ब्रू मास्टर ने ही आखिरी ऑब्जेक्टिव लिया। बिल्कुल तला ब्रू मास्टर ही ऑब्जेक्टिव लेने में कामयाब हुए, लेकिन क्या एक्साइटिंग गेम हमारे पास आई देखने की तरफ से। गेम के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि बहुत ही मज़े का बैक एंड फोर्थ दोनों साइड से नज़र आया। टीम एक टाइम पे आपको एडवांटेज पे नज़र आ रही थी, साथ ही साथ टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट बैक किया, स्पेशली आफ्टर आई थिंक एंटरिंग इनटू दैट मिड गेम, राइट, हमें चीज़ें काफ़ी पेसिमिस्टिक नज़र आई थी ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन जिस तरीके से कॉप ने खेला, जिस तरीके से उनके शैडो फील्ड ने फार्म किया, उसी वजह से दे वर एबल टू ब्रिंग इट वेरी क्लोज बैक। लेकिन इसके बावजूद दैट्स नॉट इनफ। एट द एंड जो टीम एंशिएंट गिराने में कामयाब होती है वही जीतती है, और हमने देखा कि टीम के पास वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद थी ब्रू मास्टर की सूरत में, राइट। फाइट अगर थोड़ी देर प्रोलॉन्ग हुई, आगे पीछे हीरोज इंगेज हुए या कुछ भी इस तरीके से हुआ, तो ब्रू मास्टर पीछे से आपकी पूरी की पूरी बेस को एक डेमोलिशन क्रू की तरह गिरा के चला जाता है। डेफिनेटली। एंड आई थिंक जहाँ तक बात शैडो फील्ड की थी, आई डोंट थिंक हम इतना ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं शैडो फील्ड के यू नो आई वुड से लैक ऑफ डैमेज को, क्योंकि आइटम्स तो उसके आखिर में बन चुके थे। लेकिन आई थिंक आखिर में फॉल्ट यही था कि फ़ाइट इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहती थी कि क्वीन ऑफ पेन के पास वो आइटम्स आई वुड से नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा वैसे आइटम थे कि क्वीन ऑफ पेन कैन मेक श्योर कि वो फाइट में कभी भी मरेगी नहीं, राइट। ऑक्टेडीन कोर, लिंकन स्फीयर और बीकेबी के जरिए दैट मेड श्योर कि क्वीन ऑफ पेन विल नेवर डाई। लेकिन हाउएवर वो एक चीज़ एक कॉस्ट के ज़रिए आती है, वो उसका अपना डैमेज आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, अगर क्वीन ऑफ पेन अपना एक रिफ्रेशर ऑर्ब बना लेती तो एक डबल अल्टीमेट आउटपुट से वो शायद टीम को मार देती। एक सेप्टर बना देती तो शायद शैडो स्ट्राइक को स्पैम करके वो टीम फाइट्स को निकाल देती। बिकॉज एट द एंड तो वो क्वीन ऑफ पेन जो पूरी बैकलाइंस को डोमिनेट करते हुए आ रही थी अर्ली गेम से, आई वुड से जैस सून एज उसका लेवल 6 आया, तो एट द एंड तो वो ओडी को भी मारने के लायक नहीं रही। तो आई थिंक उसको एक हेक्स की ज़रूरत थी। आई थिंक कि अगर वो ब्रू मास्टर को एज अपोज टू वो वेट कर रहे हैं कि ब्रू मास्टर अपनी टीम को लेकर उनके हाई ग्राउंड पे आएगा तभी हम फाइट शुरू करेंगे व्हेन यू ओनली हैव 1 रैक्स रिमेनिंग, तो ये आई थिंक ये एक काफ़ी लैक लस्टर स्ट्रैटेजी है। आई थिंक अगर आपके पास मल्टीपल हेक्सेस मौजूद हैं, आपके पास रिफ्रेशर ऑर्ब मौजूद है, डूम मौजूद है, आपके पास ग्रिमस्ट्रोक मौजूद है, तो और आपको पता है कि दूसरी टीम आपकी बेस की तरफ आ रही है, तो आप मिड वे उनके साथ क्रैश करें, मिड वे आप उनके ऊपर इनिशिएट करें एज अपोज टू वेट करें कि वो आपके बेस के अंदर पहुंच जाएं। तो आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी। आई वुडंट से कि ये जो स्ट्रैटेजीज हमने दोनों टीम की तरफ से देखी थी ये सिंपली उनके हीरो कॉम्पोजिशन की वजह से एक फेवरेट्स निकल आए हैं इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। लेकिन हाउएवर आई थिंक कि ये दोनों टीम जो थी वो काफ़ी हद तक इक्वली स्किल्ड थी। आई थिंक मुकाबला दोनों का बराबर ही था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक टीम दूसरी टीम से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिकॉज दोनों साइड पे जो भी वीकनेसेस थी वो उन्होंने ओवरकम तो ज़रूर की थी। और काफ़ी हद तक मैं ये बोलूँगा कि जो पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 5 था, हर कोई अपना इंडिविजुअल रोल अच्छी तरीके से प्ले कर रहा था, अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। सबको पता था कि उसको उनके हीरो को उनकी पोजीशन पे क्या करना है, हर वक्त क्या करना है। रोटेशंस भी दोनों टीम से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हमें सामने नज़र आ रही थी। तो आई थिंक ये जो ज़रा सा हीरो कॉम्पोजिशन, ज़रा सा आइटम चॉइसेस की ये जो माइक्रो स्ट्रैटेजीज थी वो थोड़ी सी लैकिंग थी टीम ऑप्टिमम की तरफ से। बट आई डू थिंक कि ये सेकंड गेम में इसको ज़रा सा एडजस्ट करेंगे, अपने हीरोज़ को ज़रा सा एडजस्ट करेंगे कि कौन सा हीरो पिक करना है। तो आई डू थिंक कि ये एक कमबैक अभी भी मार सकते हैं। आई डू थिंक ये गेम 3 तक इसको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल तला, टीम ऑप्टिमम की तरफ से तो कमबैक लाजमी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी बात की जाए, आई नो आपने और आइटम्स पॉइंट आउट किए कॉप पे
और थोड़ी सी जनरल स्ट्रैटेजी जिसका इशू था। लेकिन जो चीज़ मुझे देखने को नज़र आई है, जो मैं चीज़ ज़्यादा नोट करने में हुआ तो वो ये था कि ग्रिमस्ट्रोक की अल्टीमेट के साथ डूम का जो कॉम्बो वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक फेल हो रहा था, रिलायबली उसको पुल ऑफ नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक उल्टा मैं कहूँगा कि उनकी इनिशिएशंस के ऊपर वो चीज़ ज़्यादा इशू कर रही थी, इन द सेंस ये कि व्हेन यू लुकिंग फॉर दैट आइडियल सिनेरियो, एक परफेक्ट इनिशिएशन आप जब ढूंढ रहे होते हैं, तो वो जब फेल हो रही थी, आई थिंक ग्रिमस्ट्रोक ने एक दफ़ा अल्टीमेट बी कर दी थी, और पांडा डूम की तरफ से फॉलो अप लेट आ रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रूलिंग था, जो ब्रू मास्टर था, ही वाज एबल टू गेट हिज अल्टीमेट आउट। लेकिन खैर, गेम की ज़रा हाइलाइट्स की तरफ अगर एक नज़र दोहराते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से टीम ने ये विक्ट्री सिक्योर की। डेफिनेटली ये हम देखेंगे कि पांडा ब्रू मास्टर जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेड की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने आखिरी लम्हे में अपनी अल्टीमेट गिव ऑफ कर ली। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि एक टीम फाइट विनिंग सिनेरियो की, तो पांडा को जब तक अपनी अल्टीमेट निकालने में वो कामयाब हो, तो टीम फाइट कम्प्लीटली ऑल्टर हो जाती है। और यहाँ पर भी अगेन ऑप्टिमम का एक टीम वाइप नज़र आया था। बिल्कुल, टीम वाइब्स तो होते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, और स्पेशली इस अर्ली गेम में, इन अर्ली पार्ट्स में हमने देखा था कि टीम काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहे थे, बल्कि कुछ टाइम बाद लेटर इनटू द गेम वो डोमिनेशन कुछ हद तक कम भी होगी उनकी तरफ से। लेकिन तला यही वो मिड के ऊपर था जब टीम ऑप्टिमम ने टियर 2 टावर लेने में कामयाब हुए थे, एंड आई थिंक अगर सिर्फ यहाँ तक होता तो एवरीथिंग वाज फाइन, यू जस्ट लॉस्ट वन हीरो। लेकिन साथ साथ फिर ग्रिम स्ट्रोक को भी एलिमिनेट कर दिया गया, और डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर टीम ऑप्टिमम, स्पेशली उनकी जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन थी। आई गेस अगर डूम, खैर माइडस गेम वेंट काफ़ी वेरी लॉन्ग, तो यू कांट रियली क्रिटिसाइज दैट माइडस चॉइस, बिकॉज उसकी तरफ जैसे ब्लिंक थोड़ा सा डिले हुआ था, आई थिंक ब्लिंक थोड़ा सा जल्दी आता तो शायद कुछ ना कुछ गेम का रिजल्ट थोड़ा सा अर्ली गेम एटलीस्ट डिफरेंट होता। डेफिनेटली आई थिंक डूम का ब्लिंक टैगर अगर ज़्यादा थोड़ा जल्दी आता तो वो उसकी रोटेशन में ज़्यादा कामयाब होता। उसका ब्लिंक टैगर काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, और हम हर दफ़ा इस चीज़ को, ये जो हाइलाइट्स में हर दफ़ा इस चीज़ को इसी स्ट्रगल को हम बार बार देख रहे हैं कि डूम का कभी भी फाइट डूम के साथ शुरू नहीं हुई है। हमेशा फाइट्स में डूम या हमेशा बीच में आया है या हमेशा आखिर के वक्त आया है, और उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो हाइलाइट्स में यही नज़र आ रहा है, मतलब कोई क्वीन ऑफ पेन डोमिनेट करते हुए जो उसने मिड गेम में डोमिनेशन अपनी शुरू की थी। स्पेक्टर, आई थिंक ये जो 2-3 दफ़ा हमने देखा है स्पेक्टर को कम्प्लीटली स्कॉट फ्री निकलते हुए, सोलो किल्स निकालते हुए, तो शायद अगर स्पेक्टर को पनिश किया जाता तो गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती अर्लियर ऑन देन लास्ट टाइम। आई थिंक वो जो 2 रैक्स ख़त्म किए गए थे पांडा ने, आई थिंक वो गेम का काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है तला कि टीम ऑप्टिमम को किसी भी पॉइंट पे आई गेस पूरी गेम में, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर वंस और ट्वाइस, आई कांट रियली रिकॉल, लेकिन दे डिड नॉट गेट दैट डूम इनिशिएशन ऑफ, राइट। डूम इनिशिएशन अगर होती, आप एक एक हीरो को इफेक्टिवली फाइट से निकालते, बेस्ट के सिनेरियो स्पेक्टर को निकाल देते, या इवन ओडी को भी निकाल देते, राइट। तो ओडी किसी टीममेट को बचा नहीं सकता, तो उसके बाद फाइट जीतना काफ़ी हद तक फेवरेबल हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये तला वो मोमेंट था, इसी स्पेक्टर भागते हुए आई थिंक सीक्रेट शॉप पे हाँ, गई थी, और सीक्रेट शॉप से वापस आई थी इस फाइट में। और इस वक्त अगेन स्पेक्टर सोलो किल की डेथ हुई थी। बट ये सारी चीज़ें तो एक्सेप्टेबल, काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल होती हैं। और इस पॉइंट पे अगेन डूम ने एक डबल डूम गिव ऑफ करने में कामयाब हो गए थे। आई थिंक ये वही फाइट है जिसमें वो उन्होंने ऑप्टिमम ने टीम वाइप किया था। बट मीनवाइल इस पॉइंट के बाद आई थिंक एवरीथिंग वेंट डाउन हिल फॉर टीम ऑप्टिमम उसके बाद, जब उन्हें 2 रैक्स ले लिए थे। बिल्कुल, चलो यूजुअली 2x डाउन से कम बैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम गेम देख रहे थे ऑप्टिमम के लिए काफ़ी हद तक लग रहा था कि वो ये करने में कामयाब होंगे। लेकिन खैर, गेम जो जिस तरीके से चली वो एक काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। और यहाँ पे अब देखें, जिस तरीके से अब स्पेक्टर उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रही थी जिस तरह स्पेक्टर थे, बल्कि उल्टा ये डाई बैक था स्पेक्टर के ऊपर। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शैडो फील्ड की सर्वाइवेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स में। आई थिंक उनके टीममेट्स जो
हीरोज़ थे, वो भी ऐसे हीरोज़ नहीं थे जिनके पास कोई ऐसी एबिलिटीज़ मौजूद हों जो कि शैडो फिएंड को रिलायबली बचा सकें। तो यही आई गेस स्ट्रगल नज़र आया। कैरी पिक तलहा वुड जस्ट से कि थोड़ी-सी क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि हमने खुद ही देखा कि टीम आई थिंक टीम टीम ने काफ़ी ज़्यादा कैरीज़ शुरू में बैन किए थे, राइट? या वाज़ दैट टीम ऑप्टिमम? डेफिनेटली नहीं, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वो टीम था जिसने काफ़ी ज़्यादा कैरीज बैन किए थे, तो हो सकता है कैरी का पूल ऑप्शन बहुत लिमिटेड लिमिटेड ना हो हो। गया हो। लेकिन शैडो फिएंड फिर भी उसके बावजूद पिक करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज हम जब स्कोर बोर्ड देखेंगे तो हम देखेंगे कि शैडो फिएंड ने असल में कितना ज़्यादा डैमेज किया, ऑफ कोर्स। लेकिन इस पॉइंट पे आके आई थिंक आखिर में कि जो ग्रीन वाला ब्रूलिंग है वो थ्रोन को मार रहा है, तो इस पॉइंट पे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और क्वीन ऑफ पेन कोशिश में तो जाहिर सी बात है लगी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक कोशिश ही थी। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव जिसने पहले निकाल लिए वो ही जीतते हैं। और ब्रू मास्टर, इवन अगर हम सपोज करें कि क्वीन ऑफ पेन बहुत ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रही थी उस पॉइंट पे, तो ब्रू मास्टर के पास तो एक रिफ्रेशर ऑर्ब भी था। ब्रू मास्टर तो आपकी बेस में हर दफ़ा आएगा, तो अगर आपने वो आइटम्स नहीं बनाए हुए हैं, वो डैमेज आउटपुट आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इनएविटेबल को डिले ही कर सकते हैं। आप इनएविटेबल को टर्न अराउंड नहीं कर सकते। बिल्कुल ज़्यादा वही बात है कि इनएविटेबल प्रोलॉन्ग ही हुआ। इट वाज दे जस्ट कुडंट टर्न इट अराउंड, राइट? और बेस डिसएडवांटेज, कंट्रोल की कमी थी, काफ़ी ग्लेयरिंग कंट्रोल की कमी थी। आई थिंक टीम हैड मल्टीपल हेक्सेस जिसके थ्रू वो फाइट्स के अंदर कोर्स को मल्टीपल, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट एक ब्रू मास्टर था जो कि कोर को इफेक्टिवली काफ़ी टाइम के लिए हवा में उछाल देता था, राइट? साथ ही साथ खैर स्कोरबोर्ड के ऊपर अब नज़र मारते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से शैडो फील्ड ने डैमेज डील करने में कामयाब हुए। स्कोर 5 फॉर 13 शैडो फिएंड के। कॉप तलहा वी डिड नॉट नोटिस 29 फॉर 4, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस नज़र आई कॉप की तरफ से। ट्राई टू कम्पीट ऑन पार एंड ऑन लेवल विद दैट स्पेक्टर, और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक करने में कामयाब भी हुए। डेफिनेटली, एंड आई थिंक यहाँ पर शैडो फील्ड एज अ हीरो उसका डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है क्योंकि उसके पास सिर्फ 21,000 नेटवर्थ अपने पास मौजूद है। एज अपोज टू हम अगर उसी की टीम में देखें तो 21,000 तो अपने ऑफ लेन डूम से भी उसका ज़्यादा कम है, डिस्पाइट हैविंग 391 लास्ट हिट्स। एंड वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा डेथ्स जो हैं, 13 डेथ्स उसको बार बार पिक ऑफ किया जा रहा था। अगर हम दूसरी टीम की तरफ देखें तो उनके कैरी के पास 35,000 नेटवर्थ है, उनके ब्रू मास्टर के पास 28,000, उनके ओडी के पास 29,000। तो शैडो फील्ड इन द एंड दूसरी टीम के तीनों कोर से, तीनों पोजीशन 1, 2 एंड 3 से नीचे आए हुए थे, जो कि एक कैरी के लिए थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल चीज़ होती है कि आपने अगर उसके आइटम स्लॉट्स देखें तो उसके पास ज़रूर उसने अपने कोर आइटम्स तो बनाए हुए थे, ब्लैक किंग बार, सिल्वर एज, बटरफ्लाई, लेकिन उसके आखिरी दो आइटम जो हैं वो सिंपल मास्क ऑफ डेथ और एक ड्रैगन लांस उसके पास है फॉर अ गेम जो कि आई बिलीव ये वाली गेम 50 मिनट से तो ज़्यादा ही चली ही थी। 60 मिनट वाले आइटम्स आई डोंट थिंक आए हुए थे। तो फॉर अ गेम जो कि 50 मिनट्स तक चली गई है, उसमें अगर आपने 6 स्लॉट्स नहीं बनाए हुए तो आप डेफिनेटली डैमेज आउटपुट निकालने में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। बट आई डोंट थिंक दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द प्लेयर। आई डोंट थिंक शैडोफिन ने लाइक आई वुडंट से कि उसको खेलना नहीं आता, उसने खेला तो बेहतरीन था। आई जस्ट थिंक उसकी हीरो की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि जितनी रोटेशन एबिलिटी है दूसरी टीम की तरफ, अगर आप उसमें शैडो फील्ड खेल रहे हैं तो आप कितना ही कामयाब हो पाएंगे। तो आई वुड से कि एक टीयर 1 प्लेयर भी अगर हो इस सिचुएशन में अगेंस्ट टीयर 1 टीम, तो वो भी इस चीज़ को स्ट्रगल करेगा। बिकॉज ये चीज़ तो आप अपने पब्स में भी देखते हैं कि अगर जैसे ही आपने एक शैडो फील्ड पिक किया तो आपने अपने आप को एक टारगेट बना लिया है फॉर द अदर टीम्स रोटेशंस। बिल्कुल सलाह। और शैडो फील्ड वही बात है कि एक ऐसा हीरो है कि, और स्पेशली आई से कि वो जो फिजिकल डैमेज बिल्ड है वो एक ऐसी बिल्ड है, आई से कि काफ़ी वन डायमेंशनल बिल्ड है, राइट? कि इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी कैपेसिटी में ग्लास कैनन से ही कंपेयर करूँगा इसे, बिकॉज शैडो फील्ड ऑल्दो अगर खड़े होकर इफ़ यू लेट द हीरो राइट क्लिक तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन वही बात है कि डोटा में इस तरीके से आपको कोई मुफ्त में राइट क्लिक्स नहीं मारने देता आपको काफ़ी। और आई थिंक एक अदर टीम फाइट में भी काफ़ी एग्जाम्पलरी था कि जैसे ही शैडो फील्ड अकेला रहा गॉलम्स के अगेंस्ट, 2 गॉलम्स थे और ओडी था, और आई थिंक और एक एक अदर और मिनट हीरो था, राइट? एंड लाइक
हाँ और वंजी थी राइट, तो दो सपोर्ट्स और उसके साथ दो कॉलम्स, तो वो शैडो फिएंड जस्ट कुड नॉट स्टैंड देयर एंड फाइट देम। एंड आई थिंक वो दैट्स वेरी एग्जाम्पलरी के आपको अपना लाइनअप एक एसएफ के अराउंड बनाना पड़ता है, अगर स्पेशली आप इस तरह का ग्लास शैडो फिएंड चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वही बात है, जिस तरीके से स्पेक्टर इनेबल की गई थी टीम टीम की तरफ से, तो दैट वाज जस्ट नॉट गुड न्यूज़ फॉर शैडो फिएंड राइट। स्पेक्टर आपके ऊपर जंप करे, ब्लेड मेल ऑन, साथ ही साथ आपका मैना ड्रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द आइटम देयर, तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन। वही बात है, वी वुडंट रियली ब्लेम द हीरो, बट आइड से इट वाज मोर ऑफ द टीम्स ओवरऑल स्ट्रेटजी। जिस स्ट्रेटजी के साथ वो चल रहे थे, जिस तरीके से वो गेम को लेकर जाना चाह रहे थे, वो विजन सही तरीके से अलाइन नहीं कर रही थी अपोनेंट्स की विजन के अगेंस्ट राइट। तो बट खैर आई थिंक टीम 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 बहुत अच्छा खेले, और जो द अपोजिट टीम, they didn't play bad, it was just that their overall plan was just not as easy to execute right, जितना वहाँ पे था। स्पेक्टर के अल्टीमेट कोई हीरो नजर आए, 4 रन जंप किया, 2 हीरोज ऑलरेडी मौजूद हैं, 2+1 3 ग्लोबल, आपके पास आउटरीच है, एंड देन फिर एक अर्ली गेम लाइनअप आपको वैसे ही इनेबल्ड है राइट। लेकिन दूसरी साइड पे the game plan wasn't that simple. We saw कि कॉप को huge network lead थी कॉप के पास, लेकिन the cop had to go for more survivable items than offensive items right। तो वो थोड़ा सा offense की कमी भी नज़र आई। लेकिन खैर अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से नेक्स्ट गेम में टीम्स अडेप्ट करती हैं, स्पेशली हमारे पास टीम टीम तो आई गेस अपना सक्सेसफुल फार्मूला आगे लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक एक मोर रिलायबल कैरी की ज़रूरत है दूसरी साइड पे। डेफिनेटली आई थिंक एक मोर रिलायबल कैरी की ज़रूरत तो है ही है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्टिमम के को एसएफ के बजाय वही स्पेक्टर दे देते, एज अ हीरो नॉट एज द प्लेयर, वो एक स्पेक्टर दे देते तो उनकी लाइनअप काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाती। तो लाइक उस लाइनअप से तो वो आगे जीत जाते, या फिर शैडो फिएंड को हटा के अगर आप कोई ऐसा हीरो दे देते लाइक मेड्यूसा ही रख देते आप, तो या अगेन वो सेम आउटकम ही रीच होता कि कोई हीरो जिसके पास सर्वाइवेबिलिटी हो, वो जो खड़े होके हिट, अगर ऐसा हीरो आपको पिक करना ही है कि वो एक स्टैटिक पोजीशन पे रह कर उसको हिट करना ही है, तो आप ऐसा हीरो लो जिसके पास सर्वाइवेबिलिटी है। गोलम्स मैनर शील्ड को तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली जब आपने शैडो फिएंड आई बिलीव उनकी 4th पिक थी, तो ज़्यादातर गेम तो आपके सामने आ चुकी है राइट। आपको आपके सामने उनके बाकी अपोनेंट्स की सारी हीरोज आ चुकी हैं, उनका स्पेक्टर भी आ चुका था, तो आपने एक्चुअली स्पेक्टर के इनटू एक शैडो फिएंड पिक किया है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत पनिश तो दूसरी टीम करेगी ही। आई थिंक इवन कैरी, जब आपको पता है कि अब तो आपको पता चल चुका है कि दूसरी टीम कैसे खेलेगी। अगर ये टीम्स पहले एक दूसरे के अगेंस्ट क्लैश नहीं हुआ इन टीम्स का, तो अब तो इनको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। सो आई होप, उम्मीद मेरी यही है कि वो इस चीज़ से सीखें, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अपना नेक्स्ट ड्राफ्ट फेज़, नेक्स्ट पिक्स सेलेक्ट करेंगे, और होपफुली ये इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे। बिल्कुल तला, आई एम होपिंग एज वेल कि थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन है दोनों टीम्स की तरफ से, एटलीस्ट ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स की तरफ से इन टर्म्स ऑफ देयर लाइनअप राइट। इट्स वन थिंग जब दोनों टीम्स का लाइनअप अच्छा हो, करीब हो, और फिर आपको एक सही अच्छा टफ कंपटीशन देखने को मिले, एंड देन फिर होता है कि यार कौन सी बेहतर टीम थी, किसने बेहतर खेला, वो आपको टॉप पे आते हुए नज़र आती है। लेकिन इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग जब एक टीम एक डिसएडवांटेज तरीके से पूरी गेम खेल रही हो, इन द सेंस कि ऑफ कोर्स वो डिसएडवांटेज किसी और वजह से नहीं था, इट वाज देयर ओन चॉइस, बट फिर भी एक मोर वेल राउंडेड ऑफ लाइनअप को देखने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, उनको कास्ट करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो वाली बात है। तो वे एक्सपेक्टिंग कि ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स शायद किसी कन्वेंशनल कैरी की तरफ जाएं, एक मोर रिलायबल कैरी, एक मोर लेट गेम कैरी, जिस तरीके से स्पेक्टर वेल लेट गेम तो खैर उनकी मर्जी, जिस तरीके से वो ड्राफ्ट करते हैं या प्लान करते हैं, लेकिन टीम टीम अब पहली गेम में लीड लेने में कामयाब हो गए हैं। टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स को अब कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इसको गेम 3 पे लेकर जाने के लिए, वरना जिस तरीके से भी नज़र आ रहा है, आई थिंक टीम टीम शायद ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाए। डेफिनेटली, बट मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि नॉर्मली जब आप टूर्नामेंट को देखते हैं, कोई भी कंपटीशन को देखते हैं, तो उसमें इनिशियल फेजेस में तो यूजुअली यही हो रहा होता है कि एक टीम दूसरी टीम को स्टॉम्प कर रही होती है।
स्पेशली अर्ली राउंड पे जहाँ तक मैं बोलूँगा तब। लेकिन मुझे इस टूर्नामेंट की, इस अरीना ई स्पोर्ट्स की जो कंपटीशन होस्ट किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में ये अच्छा लग रहा है कि ये जो दोनों टीम थी वो तकरीबन इक्वली स्किल्ड, इक्वल, इनका काफ़ी हद तक इक्वल मुकाबला हो रहा था। क्योंकि आप जैसे भी दोनों टीम्स ने खेला, जो भी मिस्टेक्स रहीं, आप ये नहीं कह सकते कि एक 50 मिनट या 55 मिनट का जो मैच हुआ है उसमें एक टीम एक क्लियर बेटर टीम थी या एक क्लियर वर्स ऑफ टीम थी। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो मुझे इस चीज़ की अच्छी उम्मीद है कि इस पहले मैच को देख नज़र में रखते हुए आगे की कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। बिल्कुल तला, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हो रही है इस गेम के लिए, इस बेस्ट ऑफ 3 के लिए, जो कि इन दोनों टीम्स के बीच में खेला जाएगा। लेकिन आई थिंक हमारी लॉबी सेटअप की जा रही है अभी, और कुछ ही देर में हम गेम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। पिक बैन फेज आएगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टीम ऑप्टिमम अब अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करती हैं। तला, जो मेटा में हीरोज़ इस वक्त आपको नज़र आ रहे थे, उनमें से आई थिंक ऑफ कोर्स एसएफ के अलावा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आपको नज़र आया इस पिछली गेम के ड्राफ्ट में। आई थिंक वेंची काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, जो आपका ब्रू मास्टर एक्सपेक्टेड था, कॉप एक्सपेक्टेड हो ना हो, लेकिन इट्स अ हीरो दैट्स ऑलवेज देयर, राइट? बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड हीरोज़ की अगर बात करें तो शैडोफिन के अलावा आई वुड से परहैप्स द ओडी थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी ज़्यादा मिड हीरोज़ हैं जो उनकी लाइनअप के साथ सूट करते थे, पर्टिकुलरली एक मीटियोर हैमर वाला ओडी। आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पांडा की ब्रूलिंग के साथ मीटियोर हैमर को इस्तेमाल करते हुए वो टावर्स को उड़ाएंगे, इवन दो उन क्वाइट क्लियरली उनका ऑब्जेक्टिव गेमिंग तो नहीं था फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम और द फर्स्ट आई वुड से 35 मिनट्स ऑफ द गेम। पिक्स काफ़ी हद तक कन्वेंशनल थी। आई वुड से बैन्स ज़्यादातर कन्वेंशनल थे बिकॉज बैन्स तो कम्प्लीटली मेटाफेस्ड बैन्स थे। पिक्स आई वुड से क्वाइट कन्वेंशनल पिक्स थी। थोड़ी बहुत आइटम्स में ऊंच नीच थी, इवन दो ओडी ने ओडी पिक कर लिया चलो आपने, लेकिन फिर ओडी के ऊपर एटलीस्ट टीम फाइटिंग आइटम्स बनाना आई थिंक ज़रूरी था। पर्टिकुलरली अगर आप शैडोफिन के अगेंस्ट फेस कर रहे हैं या फिर एक क्वीन ऑफ पेन के फेस कर रहे हैं, तो आपका स्पेक्टर क्यों हेक्स बना रहा है? आपको तो ये चाहिए या कि आपका ओडी एक हेक्स बनाए। स्पेक्टर को अगर आप एडिशनल सर्वाइवेबिलिटी दे दें तो शायद वो जो आखिर में टीम फाइट्स होती थी तो उसको सर्वाइव करने में ज़्यादा हेल्प हो जाती। एक हार्ट ऑफ टरास्क बिल्कुल। अगर उसके हाथ में होता, या फिर उसके हाथ में एक डेडलस, या फिर डैमेज ही, चलो सही डैमेज आइटम्स उसके हाथ में होते। रेडियंस इवन दो रेडियंस तो जब आप पहले बनाते हो तो वो एक फार्मिंग आइटम होता है, लेकिन रेडियंस अगेंस्ट शैडो फिend इज़ ऑलवेज हेल्पफुल बिकॉज उसमें वो एक मिस चांस फिर भी आ रहा होता है। और इवन लाइक एन एम के बी, बिकॉज शैडो फिend ने तो अपनी बटरफ्लाई बनाई हुई थी लेकिन स्पेक्टर के पास एक एम के बी मौजूद नहीं थी। और वो बनाएगा भी किस चीज़ को रिप्लेस करके, और वो तो 6 स्लॉट काफ़ी अर्ली ऑन हो चुका था। तो हो आई चुका थिंक था, इन बिल्कुल। चीज़ों की थोड़ी सी ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन चीज़ों पे दोनों साइड की तरफ। हमने काफ़ी बात की थी ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स ने आइटम्स में क्या गलती की हो, बट टीम की तरफ से भी काफ़ी गलतियां थीं जिनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पनिश किया गया था। बिल्कुल तलहा, थ्रू आउट द गेम हमने देखा कि ये पनिशमेंट आई थी दोनों साइडों से, लेकिन एक दफ़ा फिर से हमारे पास पिक बैन फेज स्टार्ट हो चुका है। ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स विसाज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी निकालते हुए, और दूसरी साइड पे एक दफ़ा फिर से हमारे पास बैन आ गया है डॉन ब्रेकर के ऊपर। डॉन ब्रेकर यूजुअली एक वो टीम फाइट इनिशिएशन और काउंटर इनिशिएशन दोनों हीरो दोनों की फॉर्म में मौजूद होता है। तो आई थिंक नो सरप्राइजेज देयर। शुरू वाले बैन्स काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमम किस तरीके से आगे अपने पिक्स एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आते हैं। डेफिनेटली, एंड आई थिंक एग्जैक्ट सेम बैंड्स नज़र आ रहे हैं दोनों टीम की तरफ से। डॉन ब्रेकर बैंड फ्रॉम टीम टीम एंड विसेज बैंड फ्रॉम ऑप्टिमम प्राइम, एंड अगेन आई थिंक रिस्पेक्ट बैंड नज़र आ रहा है। ब्रू मास्टर को बैन किया जा रहा है, ऑप्टिमम ने उसको गेम से निकाल दिया है, एंड फॉर गुड रीज़न बिकॉज उन ब्रू मास्टर ने जो हालत की थी ऑप्टिमम गेमिंग की तो वो तो हम सब ने देखी थी। बट अगेन टीम्स उन्हीं सेम कैरीज को बैन आउट कर रहे हैं। ऑप्टिमम प्राइम अगेन एक और बैन वेंचफुल स्पिरिट का, जो कि आई थिंक उन्होंने पिक किया था एज अपोज टू टीम टीम।
वेंजी आई गेस टीम की साइड पे ही थी पिछली गेम में, बट वही वाली बात है, उसको बैन आउट करते हुए डोंट वांट टू प्ले अगेंस्ट दैट हीरो अगेन। काफ़ी वेंजी ने चीज़ें मुश्किल थी। वेंजी वेंजी का इश्यू भी वही बात है तरह कि आप उस हीरो को मार भी दो तरह तो फिर वो फिर से वहाँ पे फुल एचपी के साथ खड़ा हो जाता है। तो लाइक यू कांट स्टॉप द हीरो फ्रॉम यूजिंग हर स्टन, यू कांट स्टॉप द हीरो फ्रॉम यूजिंग हर अल्टीमेट, राइट? तो वो एक सेव आता ही आता है, एक स्टन आता ही आता है। आई थिंक काफ़ी हद तक दैट वाज द रीज़न कि कॉप ने दैट एंड एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट, राइट, कि कॉप ने वो लिंगन स्फीयर भी बनाया था। तो आई गेस उस अनोयंस को गेम से निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से टीम की अप्रोच एटलीस्ट गेम की तरफ, सॉरी ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स की अप्रोच स्पेक बैन फेज की तरफ थोड़ी सी बदलते हुए हमें नज़र आनी चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर पिक्स, राइट? कि यहाँ पे वही हीरोज़ कैरी एटलीस्ट एक बेहतर पिक हो, लेकिन एक इन्वोकर नज़र आता है तला। यू नो हाउ मच आई लव दैट इन्वोकर, राइट? बिल्कुल शुरू में टीम ने फर्स्ट पिक कर दी इन्वोकर। वी नो दैट इन्वोकर कैन गो मिड, पोजीशन 4 इन्वोकर भी खेला जाता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव साबित होगा यहाँ पे। डेफिनेटली, और पर्टिकुलरली जो इन्वोकर को बफ किया गया है उसके ईएमपी को, उसका मैना डैमेज आउटपुट 90% फ्रॉम 50%, और उसका जो पुल होता है जिसकी वजह से आपको एक एस्केप एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है ईएमपी के बर्स्ट से बचने के लिए। तो डेफिनेटली इन्वोकर आई थिंक इन्होंने पहले पिक करके अच्छा किया है, क्योंकि अब आप इसको किसी भी तरफ फेज कर सकते हो, राइट? अगर आप देख रहे हो कि मिड इन्वोकर की गेम बन सकती है तो आप उसको उस तरफ भी भेज सकते हो। मीनवाइल ऑप्टिमम गेमिंग ने एक फिनिक्स पिक किया है, एक डेफिनेटली टीम फाइट अप्रोच वो आजमाना चाह रहे हैं इस जगह। हाउएवर जो फिनिक्स है वो एक तरह से इन्वोकर, एटलीस्ट एक सपोर्ट इन्वोकर से काफ़ी हद तक काउंटर हो जाता है, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं कि अपोनेंट फिनिक्स ने एग अपना एक्टिवेट किया, अल्टीमेट एक्टिवेट किया है, तो आप इन्वोकर के अलैक्रिटी के ज़रिए उस एग को निकाल सकते हो। पर्टिकुलरली अगर आपने एक अटैक स्पीड ओरिएंटेड कैरी अगर पिक किया हुआ है अपनी टीम में, तो अलैक्रिटी से तो उसका एग मेल्ट हो जाएगा। बस वो देखना पड़ेगा कि टीम ऑप्टिमम प्राइम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। परहैप्स वो एक टाइड हंटर भी पिक करें इस चीज़ के साथ साथ। बिल्कुल तला लैक्रिटी प्लस फोर्स स्पिरिट दोनों मेरे ख्याल से काफ़ी इफेक्टिव साबित हो जाते हैं फिर एग को एलिमिनेट करने में। लेकिन देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन्वोकर भी आपकी बात वही बात, एक फ्लेक्स पिक नज़र आ रहा है। यूजुअली आप इन्वोकर को एक्चुअली पोजीशन 3 पे भी लेके जा सकते हैं, 4 पे भी खेला जा सकता है, मिड पे भी चला जाएगा इन्वोकर। इट डजंट रियली हैव इश्यूज उस तरीके से। 5 पे ऑफ कोर्स नॉट एज इफेक्टिव, लेकिन ही इज़ द स्पेस क्रिएटर, द स्पेस मेकर। तो किस तरीके से ड्राफ्ट इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है। हमारे पास सेकंड पिक अब टीम ऑप्टिमम के लिए है, तो ऑल्दो कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे पोजीशन 5 या 4 नज़र आएगा, अनलेस द फिनिक्स इज़ वन ऑफ देम। तो दे टेकिंग देयर स्वीट टाइम। Tala, what do you think would be a good support to pair with Phoenix? Because Phoenix, although egg की सूरत में आपको काफ़ी अच्छी टीम फाइट अल्टीमेट तो देता है, लेकिन एज अ सपोर्ट प्लेयर, एज अ सपोर्ट, राइट, वो आपको स्टन एक मिसिंग है, कंट्रोल मिसिंग है। रूबिक, ओके, प्रॉब्ली रूपिक उन्होंने इसलिए पिक किया बिकॉज वो ये नहीं चाह रहे कि वो फिनिक्स की एबिलिटी स्टील कर पाए, क्योंकि फिनिक्स का एग स्टील करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको बस ये मेक श्योर करना होता है कि आप पहली स्टील कर लो एज सून एज एग के बाहर जब आप आते हो। हाउएवर रूबिक किस लिए पिक किया गया है, लाइक और अपोनेंट्स के पास क्या ऐसा कुछ है जिससे स्पेल स्टील काम आएगी, तो ये तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। इन्वोकर की एबिलिटीज़ तो ऑब्वियसली अच्छी होती हैं स्टील करने से, लेकिन इन्वोकर इज़ मोर ऑफ अ हीरो जिसके आप कॉम्बिनेशंस पे रिलाई करते हो रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। और आई थिंक अब स्काईराथ मैच भी पे कर लिया गया। टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स ने लास्ट गेम में इसे बैन किया था, तो आई गेस टीम के ऊपर कोई ना कोई स्काईराथ एक्सपर्ट हमारे पास ज़रूर मौजूद होगा जो कि इस हीरो को ऑन दैट पोजीशन 4, और वही बात है मिड भी जाया जा सकता है। लीजन कमांडर कम्स आउट ऑन द ऑफ लेन।
एग के थ्रू आई गेस ओके पोटेंशियली ड्यूल से भी लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि दैट डजंट हैपन टिल वेरी लेट इनटू द गेम, राइट तला? लेकिन लीजन कमांडर एक काफ़ी अच्छा हीरो है रूबिक और फिनिक्स को काउंटर करने के लिए। हाउएवर 5 लीजन कमांडर seconds remaining. को competitive डोटा में इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, पर हाँ, लेकिन कॉम्बिनेशन तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें एक लीजन कमांडर प्लस कायराथ मेज की अल्टीमेट अगर आपको कंबाइन करें प्लस तो इन्वोकर। ऑलमोस्ट प्लस इन्वोकर। इन्वोकर ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि अगर वो सन स्ट्राइक की तरफ जाता है इन विच केस तो उसे कोर इन्वोकर खेलना पड़ेगा, मिड इन्वोकर खेलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप तीनों चीज़ों को कंबाइन करें, वो प्योर डैमेज सन स्ट्राइक के जरिए स्काईराथ मेज का मैजिकल डैमेज और लीजन कमांडर का फिजिकल डैमेज, तो आप इस लीजन कमांडर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। और जहाँ तक बात कैरीज की है तो स्वेन अभी तक पूल में है। बिल्कुल, स्वेन अभी तक पूल में मौजूद है, और यहाँ पे दूसरी साइड से स्लाडर पिक किया गया है। तो स्लाडर आई गेस ऑफ लेन के ऊपर आपको वो एबिलिटी देता है, मोबिलिटी देता है। यूजुअली स्लाडर अभी तक इंटेल हीरोज़ के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा होता है, दैट नेगेटिव 5 आर्मर seconds remaining. तकरीबन मेल्ट कर देते हैं उन इंटेल हीरोज़ को। तो स्काई रैथ और इन्वोकर दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। साथ ही साथ स्लाडर की अल्टीमेट इन्वोकर की गोस्ट वॉक को भी काफ़ी हद तक डिसेबल कर देता है। लीजन कमांडर अगर ड्यूल करती है तो वो 4th हिट बैश मसला करता है, और वही बात साथ ही साथ लाइफ स्टीलर पिक किया जाता है स्लाडर के नेगेटिव आर्मर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिकल डैमेज। और दूसरी साइड पे ट्रोल वॉरलॉर्ड पिक होता है तला। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस ड्राफ्ट? आई थिंक दोनों टीम्स आर गोइंग ऑल इनटू दैट टीम फाइट एबिलिटी। लेकिन जहाँ तक द वरीइंग थिंग मेरे लिए ये है कि जो लीजन कमांडर है अगर उसने ड्यूल डैमेज पिक ऑफ कर लिया तो वो लाइफ स्टीलर को काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटर करता है, बिकॉज लाइफ स्टीलर की रेज तो किसी काम की नहीं होती अगेंस्ट लीजन कमांडर। क्योंकि ड्यूल भी आप लीजन लाइफ स्टीलर को कर सकते हैं रेज के दौरान, और अगर लीजन कमांडर ने लाइफ स्टीलर पर ड्यूल कर दिया तो लाइफ स्टीलर की जो पोटेंसी होती है, जो सबसे ताकतवर एबिलिटी होती है और जो वैल्यू लाइफ स्टीलर ब्रिंग करता है किसी भी टीम फाइट में, वो अपने रेज के थ्रू, वो अपने इन बिल्ट मैजिक इम्यूनिटी के थ्रू ही फाइट के अंदर लेकर आता है। तो अगर वो ड्यूल हो जाता है तो इनकी पूरी की पूरी टीम फाइट एबिलिटी वेस्ट ज़ाया हो जाती है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन हम एक सिमिलर सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने लास्ट गेम देखा था कि उनके पास जो डूम ब्रिंगर था तो टीम ऑप्टिमम उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे कि अगर उसने डूम निकाल लिया तो फिर तो टीम फाइट उनकी अच्छी जाएगी। लेकिन अगर वो डूम नहीं निकाल पाया जैसे हमने देखा था तो उनकी टीम फाइट कम्प्लीटली वो मेल्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह ऑप्टिमम के पास अभी यही सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है कि अगर लाइफ स्टीलर के ऊपर ड्यूल पड़ गया, उसने वो अपनी रेज एक्टिवेट नहीं कर पाया, तो उसको बचाने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। रूबिक, स्लाडर, फिनिक्स सेविंग एबिलिटी तो इनके पास नहीं है। उनके पास फिनिक्स और रूबिक तो या तो इनिशिएशन है या फिर आपके पास काउंटर इनिशिएशन है, लेकिन सेविंग मैकेनिक किसी के पास नहीं है। बिल्कुल तला, यूर कम्प्लीटली राइट। ये सेविंग मैकेनिज्म दोनों साइड उस तरफ से मिसिंग लग रहा है। तो आई गेस लास्ट कोर में अगर ओडी अभी भी ड्राफ्ट में है, नहीं ओडी तो बैन हो चुका है, तो ये कोई और इस तरह का कोर जो कि कुछ ना कुछ सेव अगर ऑफर अप कर सके तो ये काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकता है यहाँ पे। लेकिन दोनों टीम्स अब अपने फाइनल कोर पिक की तरफ जाते हुए आई गेस पॉज हुआ है हमारे पास पिक बैन फेज में due to maybe some technical problems that the players might be facing. लेकिन तला, how about you round off these drafts? क्या final picks आपके ख्याल से दोनों drafts को एक well of strong draft बनाएंगे? आई थिंक एक क्वीन ऑफ पेन टीम के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जोक्स साइड, क्योंकि आई नो मुझे क्वीन ऑफ पेन बहुत अच्छा लगता है एज अ हीरो, लेकिन क्वीन ऑफ पेन फॉर टीम वुड बी क्वाइट गुड बिकॉज उसका एक प्योर डैमेज निकलता है, प्योर डैमेज अगेंस्ट द लाइफ स्टीलर, चाहे आपकी रेज हो। एंड पर्टिकुलरली जो क्वीन ऑफ पेन का सेप्टर अपग्रेड है वो डिस्पेल पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज जब भी आप सेप्टर का शैडो स्ट्राइक डिस्पेल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लाइफ स्टीलर की रेज एक्टिवेट की तो आपके अराउंड वो स्क्रीन ऑफ पेन निकलेगी। तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है बोथ अगेंस्ट द रेज मैकेनिज्म एंड वो जो प्योर डैमेज निकलता है फॉर टीम।
बाकी अगर हम हीरोज़ देखें टीम ऑप्टिमम के लिए, तो अगेन उनको किसी न किसी तरह का सेव मैकेनिज़्म चाहिए, या फिर किसी न किसी तरह का स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन या क्लोजिंग मैकेनिज़्म, मेक श्योर द लाइफ स्टीलर स्टेज अलाइव। और जहाँ तक मुझे बैन्स का इनका लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि टीम ऑप्टिमम प्राइम या तो शैडो, या तो सॉरी स्टॉर्म स्पिरिट पिक करेगा, या फिर एक क्वीन ऑफ पेन पिक करेगा। हाँ, स्टॉर्म स्पिरिट और क्वीन ऑफ पेन के लिए आई गेस गेम तो थोड़ी सी बेहतर होगी विद नो लाइफ स्टीलर इन देयर। लेकिन देखना पड़ेगा, साइलेंस काफ़ी अननोइंग होता है स्काईराथ मेज की तरफ से इन दोनों हीरोज़ के लिए, और काफ़ी लॉकडाउन भी मौजूद है। लेकिन तला आई लव टू सी एन एम्बर स्पिरिट आई गेस कम थ्रू टीम ऑप्टिमम के लिए, क्योंकि वही बात है, आप डबलिंग डाउन ऑन दैट नेगेटिव आर्मर जो कि स्लार्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इफ़ यू गो फॉर फिजिकल डैमेज एम्बर, आई थिंक काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं टीम के लिए इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। लेकिन खैर, आई थिंक कुछ ही देर में हमारे पास बैन आ जाएगा, जिसके बाद हमें पता चल जाना चाहिए। हस्कार इंटरेस्टिंगली बैन किया हुआ है यहाँ पे टीम की तरफ से वो, और साथ साथ वाइपर, तो आई गेस वो ब्रेक मैकेनिक, एक किसी इन बिल्ट ब्रेक मैकेनिक हीरो के खिलाफ नहीं खेलना चाह रहे अभी, तो देखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम इस बैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसके बाद अगली पिक भी शायद इन्हीं की हो, सो दोनों चीज़ें एक साथ ट्राई टू डिसाइड कौन सा हीरो पिक करना है और उसके अगेंस्ट क्या बैट करना चाहिए। डेफिनेटली। और आई थिंक कि जहाँ तक कॉम्पोजिशन की, आई थिंक दोनों टीम्स की तरफ कॉम्पोजिशन तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। इस तरह का नहीं सिनेरियो है जहाँ पे हमने लास्ट गेम देखा था कि एक शैडो फील्ड पिक सॉर्ट ऑफ मैच जो नहीं कर रही थी कॉम्पोजिशन के साथ, वो इस गेम में नज़र नहीं आ रहा। टीम जो ऑप्टिमम है उनके पास मैजिक डैमेज प्लस जो फिज़िकल डैमेज आउटपुट है वो मौजूद है, और टीम टीम के पास भी सिमिलरली वो डैमेज आउटपुट मौजूद है। आई थिंक जो टीम ऑप्टिमम को जाना चाहिए वो एक कंट्रोल हीरो के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रोल वॉलआउट को काउंटर करने के या ट्रोल वॉलआउट के खेलने के अगेंस्ट तरीका तो कंट्रोल के ज़रिए ही होता है। अल्टीमेट के दौरान उसका टाइम वेस्ट करना और अल्टीमेट के दौरान उसको कंट्रोल करना। तो टीम टीम बिल्कुल। को चाहिए वो मोर डैमेज, मोर आई थिंक मैजिकल डैमेज एक्चुअली अगेंस्ट द स्लाडर एंड द लाइफ स्टीलर। इंटरेस्टिंग मैजिकल 10 seconds डैमेज, remaining. काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक ऐड कर देगा इनके लाइनअप के अंदर 5 seconds ऑनेस्टली। remaining. लेकिन वही बात है, 5 सेकंड्स रिमेनिंग, कोई हीरो हमें अगर देखने को यहाँ पे नज़र आता है कि क्या पिक Dire की team जाती है। Okay, लिच, so I तो think आई गेस ये दैट इज अ मिड इन्वोकर। I think this is a mid invoker as well. Lich actually, I think one of the strongest supports currently in the game, particularly जब आप स्लाइडर के अगेंस्ट फेस ऑफ कर रहे हो, तो वो गेज जो सिनिस्टर गेज होती है लिच की, तो वो कम्प्लीटली डिसऑरिएंट कर देती है अदर दूसरी टीम को। इतना ज़्यादा कंट्रोल है, आई थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट पावरफुल कंट्रोल एबिलिटी इन द गेम, गेम के अंदर करंटली वही एबिलिटी है। बिल्कुल, और दूसरी साइड से वही नज़र आया टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स, राइट। स्लारडार के नेगेटिव आर्मर के ऊपर बाकी दोनों कोर्स कैपिटलाइज कर रहे हैं इस वक्त। लाइफ स्टीलर का भी फिजिकल डैमेज आएगा, और टेम्पलर असैसिन तो खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आर्मर भी ले आती है और डैमेज भी करती है बिकॉज ऑफ द डेसो, लेकिन हो सकता है कि शायद डिफरेंट बिल्ड की तरफ चले जाए। तो ऑल इन ऑल तथा इट से कि काफ़ी वेल राउंडेड लाइनअप दोनों टीम्स की तरफ से नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आपके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है इन लाइनअप्स के बारे में दोनों टीम्स? व्हाट डू यू थिंक इज इन द फेवरेबल पोजीशन? आई थिंक टीम ऑप्टिमम ने अच्छा खेला। टीम ऑप्टिमम ने बेसिकली एक और ड्यूल टारगेट को सामने रख दिया है, तो उन्हें डबल डाउन किया अपने फिजिकल डैमेज पे। तो अगर इस टेम्पलर असैसिन ने फार्म कर लिया, और अगर इनके स्लाडर ने एक अच्छी रीजनेबल ब्लिंक टाइमिंग पे अपना ब्लिंक अक्वायर कर लिया, तो फिर टीम ऑप्टिमम काफ़ी अच्छी पोजीशन में इस गेम को लेने में। और अरे यार, तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेली हैं इसने, 7,000-8,000 प्लस 6,500 गेम्स। Tala, I think that should Prepare be for battle. that. Tala, I think you'll be just being impressed with the stream, right? तुम्हारी गेम्स तो इससे शायद काफ़ी ज़्यादा हो, डोटा 1 वाले पुराने प्लेयर्स में से मौजूद हो। हाँ, पर खैर, आई गेस
अब पुश आ रहा है, पुश तो नहीं है, स्मोक शुरू में वार्ड सेटअप करने की कोशिश की जाएगी मिड पे, और हमें फिर से एक अर्ली गेम क्लैश नज़र आ सकता है। टीम ऑप्टिमम इस पर फिर से डायर साइड के ऊपर एंड टेकिंग मोर कन्वेंशनल मेथड टुवर्ड्स दैट मिड। टीए के लिए मिड पे तलहा दैट विजन हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, और मिड पे मैचअप जो इन्वोकर के अगेंस्ट है वो कैसे होगा, लेकिन खैर उसकी तो बाद में बात की जाएगी। इस वक्त तो टीए मेरे ख्याल से अपनी जान खोने लगी है यहाँ पे, एंड देन और फिर लेवल अप भी लेवल 1 पे उनको लेना पड़ा अपनी शील्ड का, तो दैट इज गोइंग टू हर्ट इन लेन एज वेल। ओ वार्ड भी डिवॉर्ड कर दी 30 seconds to battle. और लिच को आई थिंक फर्स्ट ब्लड भी मिला है और वार्ड का गोल्ड भी मिला है, तो आई थिंक दैट्स 700 गोल्ड जो अब लिच के हाथ में। Well, that's a very rich lich to start off with. थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है यार, तला मैंने कभी सोचा नहीं था। Rich lich. डेफिनेटली खैर टीए, आई थिंक इन्वोकर रियलाइजिंग कि टीए को फर्स्ट लेवल जो लेना पड़े थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ऑल्दो शील्ड के साथ आएगी लेन में, लेकिन आई थिंक इन्वोकर को पहले लेवल में he'll have an easier time against the टीए। So टीम off to a good start again। पहले पिछली गेम में भी मिड पे आई रिमेंबर वार्ड डी वार्ड करने में कामयाब हुए थे अपनी बाकी टीम के साथ, और थोड़ी सी अर्ली गेम डोमिनेशन की थी। इन्वोकर गोइंग फॉर दैट वेक्स सेटअप, आई थिंक कॉस वेक्स इन्वोकर तला देखने को मिले शायद हमें। ओके चलो कॉस्टबैक्स एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देता है, लेकिन टीए के अगेंस्ट सीएस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इस इन्वोकर को। बिल्कुल सी एस कॉस वेक्स के ऊपर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट इतने ज़्यादा अगर डैमेज डिस्क्रिपेंसी हो आपकी अगले मिड के साथ, जो कि टीए और इन्वोकर मैचअप में हम अनडाउटेडली एक्सपेक्ट करेंगे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। और साथ ही साथ लेकिन लेन सेटअप्स के बारे में अगर तला बात की जाए, आई थिंक फिनिक्स और लाइफ स्टीलर डिसेंट कॉम्बिनेशन, कोई सेफ खास मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा अटैक स्पीड लोअर कर देते हैं एनिमीज की, जिस वजह से वो आई डोंट थिंक इस लाइफ स्टीलर के अगेंस्ट एलसी लड़ पाएंगे। थोड़ा सा मैजिकल डैमेज के बारे में केयरफुल होना पड़ेगा लाइफ स्टीलर को। डेफिनेटली एंड आई थिंक ये लाइनअप इतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगी जैसे हमने लास्ट गेम में देखा था विद द ब्रू मास्टर, तो थोड़ी सी पैसिव गेम आई थिंक इस तरफ चलेगी, स्पेशली इन दी अर्ली गेम। बिल्कुल गेम पैसिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने को नज़र आ रहे हैं बॉटम लेन पे, और आई थिंक फर्स्ट ब्लड यहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन जिस फर्स्ट ब्लड तो खैर मिड पे हो चुका है। ऑल्दो एलसी और स्काईरेथ मेज टॉप पे अपनी ज़िंदगियाँ गवा बैठते हैं, दोनों हीरोज़ को टेक आउट कर लिया जाता है, लेकिन खैर वापस आएंगे फुल एचपी के साथ और फुल मैना के साथ, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। डेफिनेटली लेकिन सेफ लेन पे लाइफ स्टीलर को इतना ज़्यादा एडवांटेज देना, गेम काफ़ी हेविली डिपेंड करती है कि इस एलसी ने अपना ड्यूल डैमेज बना पाए या नहीं, और एलसी की इनफैक्ट ब्लिंक टाइमिंग पर भी। बिल्कुल ब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम एलसी के ऊपर से एक्टिव होने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टीम का जो अर्ली गेम प्लान है, ये जो डोमिनेशन है, वो डिपेंड करती है एलसी प्लस स्काईरेथ मेज कॉम्बिनेशन के ऊपर, एलसी प्लस इन्वोकर कॉम्बिनेशन के ऊपर, और उस सब के लिए ब्लिंक का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और स्लार्डर पीछे हो गए, आई एम नॉट श्योर कि दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, लेकिन रूबिक इज़ एबल टू क्लीन दैट किल अप। तो ऑफ टू अ गुड स्टार्ट टीम ऑप्टिमम यहाँ पे टॉप लेन में डोमिनेट कर रहे हैं, बॉटम पे भी डोमिनेट कर रहे हैं, मिड लेन इज सेटअप फॉर सक्सेस। 13 लास्टेड, ऑल्दो इन्वोकर तला इज डूइंग वेरी वेल टू कीप अप, राइट? 13-11 CS अगेंस्ट द TS 15। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज डैमेज का डिफरेंस इतना ज़्यादा है दोनों के बीच में, पर्टिकुलरली बिकॉज दोनों ने बॉटल खरीदी हुई है, लाइक टेम्पलर असासिन ने बॉटल खरीदी हुई है, तो कांस्टेंट रिफ्रैक्शन तो आ रहा होगा उसकी साइड से। बिल्कुल रिफ्रैक्शन के ऊपर खास काफ़ी कम का फॉर्म है अगर हम गोल्ड पर मिनट या एक्सपी पर मिनट की बात की जाए, तो इतना ज़्यादा फार्म ट्रोल वॉरलॉर्ड, क्योंकि उसको कंटेस्ट करने के लिए तो इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लिच एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो एटलीस्ट ट्रोल वॉरलॉर्ड को स्पेस देने में कामयाब होगा।
बिल्कुल आई थिंक लिच कोशिश भी इस वक्त यही कर रहे हैं काफ़ी हद तक। लाइफ स्टीलर 20 लास्ट हिट्स के ऊपर, और ट्रोल वॉलर ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी 20 लास्ट हिट्स के ऊपर है, लेकिन आई थिंक किल्स की वजह से लेन में थोड़ा सा डिफरेंस इस वक्त मौजूद होगा। दोनों साइडों से वाटर रूम सिक्योर Radiant's कर middle ली गई tower हैं, is under attack. और ये वो टाइम है तला आई गेस 4th मिनट हमारे पास ख़त्म हो रहा है, इस तरह 5th मिनट के ऊपर हम ट्रांजिशन करेंगे थोड़ी देर में। साथ ही साथ आपके पास मिड के ऊपर वो पहला वार्ड ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद से कुछ रोटेशन भी हो सकती हैं। लेकिन ये लाइफ स्टीलर थोड़ा सा एनिमी टेरिटरी के अंदर मौजूद टावर के अंदर प्रेजेंट, और सब कुछ उसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ा गया, लेकिन ये बहादुरी कुछ काम नहीं आएगी। लाइफ स्टीलर वहाँ पे this isn't a rage quit, right, Tala? I don't think so. क्योंकि आई थिंक शैडो फिन भी लास्ट टाइम डिस्कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था उसको, लेकिन डेफिनेटली इस लीजन कमांडर डिड हैव मैं जिसको कहूँ ना फास्टर फिंगर्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हील आउटपुट उसका आया था, स्टिक आई थी, फिर आई थिंक आई बिलीव उसने लोटस भी इस्तेमाल किया था एंड अपनी सेकंड एबिलिटी। तो आई डोंट थिंक लाइफ स्टीलर इतना ज़्यादा हील एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड नाइदर वाज द फीनिक्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा कमबैक है टॉप लेन की तरफ। बिल्कुल टॉप लेन की तरफ तो बेहतरीन कमबैक आ गया, लाइफ स्टील को मार दिया गया। आई थिंक थोड़ी देर पहले ही दोनों हीरोज़ टीम के साइड पे अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन खैर सर्वर के ऊपर थोड़ा सा लैग हो रहा है और इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। पहला शुरू में जिस तरीके से लेनिंग फेज चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि टीम आर दे ऑफ टू अ गुड स्टार्ट यहाँ पे, या टीम ऑप्टिमम जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अर्ली गेम लाइनअप है, राइट? स्लाडर काफ़ी जैसी लेवल्स के साथ है, ही इज़ ऑनलाइन। दूसरी साइड पे आपके पास टीए मौजूद है, डेसो काफ़ी अर्ली आ जाता है 12-13 मिनट्स पे, शी इज़ रेडी टू गो एज वेल, और लाइफ स्टीलर डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स ही गोज़ फॉर, लेकिन वो भी जब पहले 1-2 आइटम मौजूद हो जाए तो वो कलेक्टिवली टीम ऑप्टिमम का एक काफ़ी अच्छा पावर स्पाइक 12-15 मिनट्स के अराउंड लग रहा है। डेफिनेटली, और आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ज़्यादातर ऑन ये जो ब्लिंक टाइमिंग्स हैं दोनों के लिए। एक तरफ स्टार्टर है, एक तरफ लीजन कमांडर है, तो दोनों की ब्लिंक टाइमिंग से काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा ये दोनों के कंट्रोल में, बिकॉज कंट्रोल अभी ऑप्टिमम के पास नहीं है। इवन इन द लेट गेम इतना ज़्यादा कंट्रोल उनके पास नहीं होगा। स्लाडर, टेम्पलर असैसिन, लाइफ स्टीलर, ये एक मैन फाइटिंग हीरोज़ हैं, स्पेशली लाइफ स्टीलर, और ये एक ट्रोल वॉरलॉर्ड के अगेंस्ट खेल रहे होंगे। तो इनमें से कौन ट्रोल वॉरलॉर्ड की अल्टीमेट के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकेगा, ये तो एक काफ़ी क्वेश्चनेबल जैसी चीज़ है, बिकॉज एट द एंड एक लीजन कमांडर सॉरी एट द एंड एक सिनिस्टर गेज लिच का होगा विच विल गिव द ट्रोल फ्री हिट्स ऑन हुएवर जिसके ऊपर वो एक्टिव है। बिल्कुल सलाह ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ट्रोल वॉरलॉर्ड को कंट्रोल किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। मे बी कोई यूल सेप्टर वगैरह इस तरह के कोई आइटम्स हमें बनाते हुए नज़र आए हीरोज़ अल्टीमेटली, लेकिन खैर आई थिंक फर्स्ट नाइट टाइम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, और वही बात है कि रोटेशन होते हुए नज़र आ सकती हैं। ऑल्दो ये फिनिक्स अगर इसके पास यहाँ पर डाइव मौजूद नहीं है तो ये थोड़ा सा ट्रबल में लग रहे थे, लेकिन बॉटम लेन में ट्रोल वॉरलॉर्ड इज एबल टू टेक आउट द स्लाडर। टेम्पलर असैसिन बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है। गेमिंग पॉज भी आती है, और ट्रोल वॉरलॉर्ड अगर उसको एक अच्छी लेन मिल गई तो ये दोनों साइड ये ऑप्टिमम के लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर्स होगा, बिकॉज इनिशिएशन की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ स्टार्टर के पास मौजूद होगी फॉर द मिड गेम एटलीस्ट, अप अनटिल टेम्पलर असैसिन का ब्लिंक डैगर बन जाए, जो कि काफ़ी दूर होगा। ड्रैगन लांस पहले आएगा उसके पास, देन डेसोलेटर, और फिर जाके एक ब्लिंक डैगर, अनलेस वो एक ब्लिंक डैगर पहले से बनाए, जो कि रिकमेंडेड नहीं होगा बिकॉज उनके अगेंस्ट जो लाइनअप है। दूसरी चीज़, लीजन कमांडर का काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2 जो डेथ्स हुई थी उसकी और स्काईराथ फिनिक्स की, और शायद वो फिनिक्स को भी मार दे अगर फिनिक्स के पास डाइव अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल फिनिक्स भी डेंजर में हमें यहाँ पे होते हुए नज़र आ सकते हैं। आई थिंक टेम्पलर असैसिन वापस रिकनेक्ट हो चुके हैं, तो द गेम शुड बी स्टार्टिंग बिल्कुल थोड़ी ही देर में, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से
हाँ, ये दोनों लाइनअप्स आपस में, लेकिन वही बात है तला, आई थिंक दोनों टीम्स के पास इस वक्त बहुत अच्छा चांस है। देयर लाइनअप्स आर रियली गुड, वेरी वेल राउंडेड ऑफ लाइनअप्स है दोनों साइडों पे। तो बात ज़्यादा अब फाइनली एग्जीक्यूशन के ऊपर ही आएगी कि कौन सी टीम्स बेहतर तरीके से अपने लाइनअप को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं। You were doing very well. I'm very proud of you. स्पीकिंग अली, ये तुम्हें वॉइस लाइन्स कैसी लगी, ये जो गैबिन हमारे जो ओवरलॉर्ड हैं, इनकी जो वॉइस लाइन्स आई हैं? I think the love I always appreciate Lord Gaben, although थोड़ा सा मेरा काउंटर स्ट्राइक कम्युनिटी के साथ ज़्यादा वाबस्ता है, तो वहाँ पे तो हम एक लाइन इस्तेमाल करना पसंद है हमें, जो है कि वेल प्लीज फिक्स। सो आई थिंक वो अगर ये डालें गेम में तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करूँ। लेकिन क्या टेम्पलर असैसिन को अगर आप देखें तो वही मेल स्ट्राइक्स के थ्रू इन्वोकर को थोड़ा सा लेन आउट करने की कोशिश करी, लेकिन तला आई थिंक इस इन्वोकर की तो वाकई हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। 25 लास्ट हिट्स टू द TS34, क्योंकि तला साथ साथ जंगल भी कर रही है टीए, लेकिन इन्वोकर ने लेन में अपना CS बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर किया। Blessings. लाइफ स्टीलर ऑन द अदर हैंड 30 क्रीप स्कोर, साथ साथ 10 डिनाइज भी करते हुए, तो आई गेस लाइफ स्टीलर मेक श्योर कर रहे हैं कि LC को एक काफ़ी रफ टाइम मिले। डबल डैमेज रून सिक्योर कर ली है लिच ने, और इन्वोकर चलते हुए आ रहे इस रून की लिए। इस रून के साथ साथ अगर इन्वोकर चाहे तो रोटेशन भी कर सकता है, जाके किसी को कैच आउट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन खैर इस टाइम रूबिक मेरे ख्याल से हमें अब हलाक होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज मिड के ऊपर जाकर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन स्लारडार फर्स्ट हिट रूट दैट RNG कमिंग थ्रू, और साथ ही साथ बीच में फिनिक्स गेट्स टेकन आउट। चला XP रून्स भी स्पॉन होने लगी 7 मिनट मार्क पे, और सपोर्ट्स टीम ऑप्टिमम के दोनों इस वक्त जिंदा नहीं है। एंड आई थिंक ये ट्रोल वॉरलॉर्ड बैटल फ्यूरी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल और आई थिंक इनफैक्ट लिच जाने वाला है विजडम रून के, और वो सक्सेसफुल हो गया विजडम रून को लेने में, एंड ही एक्चुअली विल सर्वाइव एज वेल। बट वो शायद ट्रोल वॉरलॉर्ड मर जाए इस क्योंकि उसका सपोर्ट भी आ रहा है, फिनिक्स भी मौजूद है, लेकिन विल ही बी एबल टू टेक आउट द स्लार्डर? अल्टीमेट उसकी एक्टिवेट हो चुकी है, उसके पीछे भाग रहे, और स्लार्डर के पास हिट, वन मोर हिट, और वो स्लार्डर मर जाएगा। बेहतरीन, आई वुड से काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट प्ले था, एंड आई थिंक ये काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रोल वॉरलॉर्ड प्लेयर है, होना भी चाहिए विद हिज 16,000 गेम्स। No, that's 16,000 games? तो 5,000 कुछ नहीं कह रहे थे। Dire's top tower Maybe is nine, under I attack. think 8,000, 9,000 wins and Bottom 7,000 tower is losses. under attack. Oh, so that's a lot of games of Dota. That is a lot of games of Dota. तो खैर इस वक्त टेम्पलर असैसिन जो कि बड़े मज़े से जंगलों के अंदर मौजूद थी, और डिफॉरेस्टेशन और एनिमल अब्यूज़ और सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करिए कि अपने टावर के पास पहुंच जाएं, और पहुंचने में कामयाब भी होती है। इन्वोकर और स्काईरैथ की अल्टीमेट के बगैर थोड़ा सा डैमेज वाली डिपार्टमेंट में लैक लस्टर साबित होते हैं, जिसकी वजह से टीए यहाँ पे जीत बचने में कामयाब। Invisibility. और ये किल इन्वोकर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती थी अगर किल मिल जाती, उन्हें अर्न चार्ज मिल जाते, और उसके साथ साथ हमें पता है कॉस्वेक्स इन्वोकर कितना तेज़ी से स्नोबॉल करना शुरू हो जाता है मैप के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ आपको कोड स्नैप प्लस अर्न कॉम्बो अगले कोर्स को और सपोर्ट्स को लाइक राइट काफ़ी ज़्यादा डिसेबल कर देता है। लेकिन खैर ऐसा होते हुए नहीं हुआ, और इन्वोकर को अब अपने अर्न चार्जेस कहीं और ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी साइड पे ट्रोल वॉलर का फॉर्म काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई थिंक ये 12-13 मिनट बैटल फ्यूरी हो जाएगी यहाँ पे लाजमी, लेकिन स्लारडार इज इन ट्रबल राइट नाउ। ट्रोल अगर चाहे तो अल्टीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ स्लो आ जाता है, और यहाँ पे इनकी किल लेने में कामयाब होंगे। दिस बॉटम टावर शुड बी गोइंग डाउन एज वेल।
बट फिनिक्स वापस आ गया और फिनिक्स के साथ साथ रूबिक भी आ रहा है। फिनिक्स के पास अपनी अल्टीमेट यूज़ करने के लिए कोई माना नहीं है। वो डाइव तो कर रहे हैं, फिनिक्स ने डाइव भी कर लिया है, लेकिन आई डू नॉट थिंक ये एक इतना अच्छा प्ले होगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी साइड पे स्काईराथ में लेवल 6 मौजूद तलहा और वही बात एलसी के साथ कंबाइन करते हुए लाइफ स्टीलर के ऊपर किल लेने में कामयाब होते हैं। एलसी को पहला ड्यूल डैमेज अपना मिल जाता है गेम का। एंड डेफिनेटली लाइफ स्टीलर का निकनेम भी काफ़ी आयरॉनिक है, उसने रखा हुआ है स्मेल्स लाइक क्रम्बल। तो डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज प्लेइंग आउट। Dyer's middle tower और लिच भी बच जाता है। दिस इज नॉट ideal. Okay, never mind. Phoenix coming in with the dive, लेकिन Phoenix will be paying for it. One more hit जो कि नहीं जा रहा। हाँ Phoenix will get the ultimate off as well. Skyrath Mage भी गिर जाएगा एंड इन्वोकर अपनी घोस्ट वॉक के जरिए बाहर निकलेंगे फाइट में से। बिल्कुल बेहतरीन प्ले But नजर I would आता है say यहाँ पे टीम। जी जी। दो लीजन कमांडर भी अब मर जाते हैं, लेकिन अली अब इनकी जो ड्यूल ऑनलाइन है और जो स्काईराथ में की अल्टीमेट ऑनलाइन है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मतलब सवाल इतना है कि वो मिड गेम तक कितना ड्यूल डैमेज हासिल कर पाएगा। अगर वो उसने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्यूल डैमेज हासिल कर लिया विच अलाउज हिम टू सोलो कैरी एनी ऑफ द टॉप 3 पोजीशंस ऑप्टिमम प्राइम के, तो फिर उनकी विन कंडीशन मीट हो जाएगी। और एंड एज वी कैन सी वो अभी वापस ड्यूल की तरफ जा रहा है लीजन कमांडर। ड्यूल निकालेगा लाइफ स्टीलर पे। बिल्कुल सारा ड्यूल के लिए सेटअप करने की तो कोशिश की जा रही है। लाइफ स्टीलर की पोजीशन को भी नापा जा रहा है। काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि किस तरीके से लाइफ स्टीलर जाते हैं और यहाँ पे लाइफ स्टीलर को तो हेल्प करने के लिए और कोई भी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये काफ़ी ट्रबलसम साबित हो सकता है, स्पेशली अगर लाइफ स्टीलर, आई थिंक लाइफ स्टीलर ने अल्टीमेट में भी पॉइंट नहीं लिया हुआ राइट, तो उसके पास वो एस्केप मैकेनिज्म भी नहीं है दैट इज़ इन बिल्ट टू दैट हीरो राइट नाउ। सो टीम को काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्यूल डैमेज लेके जाना पड़ेगा मिडिल गेम के थ्रू। आइड से कि 3 से 4 ड्यूल जीतना उनके लिए लाजमी है और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो कंबाइन कर सकेंगे अपनी टीम के साथ। मीनवाइल डिस्कनेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये दुबई सर्वर पे गेम खेली जा रही होगी मोस्ट लाइकली, कंसिडरिंग इट्स आई थिंक दुबई सो, टूर्नामेंट। आई होप सो। आई होप सो टू। तो या खैर आई गेस वही बात है, चलो यू नो ऑनलाइन गेम्स आर riddled with connectivity problems जिस तरीके से होता है हमेशा से। Although I do have a computer science major, I can tell you that networking isn't an exact science, right? तो बस या लाइफ स्टीलर अगर इस दूसरी कैंप की तरफ बढ़ते हुए आते हैं तो मेरे ख्याल से इनके लिए ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही लेन में जाते हुए रियलाइज़ करते हुए कि यू नो दिस इज़ a little too easy to be alone and up here. और इनकी स्मोक तो वेयर ऑफ हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा इंट्यूशन नज़र हम देख रहे हैं लाइफ स्टीलर का। डेफिनेटली इसी तरह खेलना है, अवॉइड करना है कि वो उसको कोई ड्यूल डैमेज दिया जाए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एडिशनल जंगल कैंप्स के बारे में, वो हम हमें नज़र आ रहे हैं। और ट्रोल वॉल्डर भी आ गया है बिल्कुल, और लाइफ स्टीलर को यहाँ पे कैच आउट कर लिया जाएगा और साथ ही साथ ड्यूल डैमेज लेने में कामयाब होंगे। फिनिक्स के एग तो इस वक्त इस्तेमाल शुदा है, तो यहाँ पे भागने की कोशिश की जाएगी। क्या बैश रूट आ सकता था वहाँ पे, लेकिन रूट कनेक्ट नहीं होता। और इस तरीके से टीम अब अपना पहला ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने में कामयाब होंगे और दैट इज़ द टियर 1 टावर। और साथ ही साथ मिड की तरफ मैसिव रोटेशन आती हैं। लिच इफ़ यू कैन गेट क्लोज इनफ और यही सिनिस्टर गेज लगाने में कामयाब होते हैं। लाइफ स्टीलर पुश करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक टीए को अब अंदाज़ा हो चुका है कि वो इस दुनिया के लिए ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रही। टेक आउट करने में कामयाब होंगे और टीम तला क्या बेहतरीन रोटेशन। पहले लाइफ स्टीलर बॉटम से टॉप पे गए और साथ ही टीपी करके मिडिल की तरफ, और ये एक और टावर अभी हमें गिरते हुए नजर आ सकता है। Radiant's bottom tower is under attack. ओके एंड नाउ फिनिक्स का एग भी जाता है स्टार्टर विज कमिंग इन विद द बैश विद द स्टन एंड दिस लुक्स लाइक कि लिच को मर जाना चाहिए यहाँ पर। ऑल इन ऑल मैं तो कहूँगा कि ये काफ़ी वर्थ इट था टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने एक टेम्पलर असैसिन को मारा है और टावर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील किया है। और
फिनिक्स की अल्टीमेट एक्सपेंड हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही मेजर अल्टीमेट है टीम ऑप्टिमम के लिए, वो है फिनिक्स की अल्टीमेट। और अगर वो डाउन होगी तो फिर टीम टीम के पास एक ओपन प्लेइंग फील्ड, खुली प्लेइंग फील्ड उनको मिलेगी, जिस पर वो रोटेट कर सकते हैं। लीजन कमांडर का मेरे ख्याल से उसको 2 सक्सेसफुल ड्यूज मिल चुके हैं दोनों लाइफ स्टीलर पे। उसका ड्यूल अब वापस ऑनलाइन आ रहा होगा। तो अब बस सवाल इतना सा है, इंतज़ार इतना सा है रादर, कि फाउंटेन में जाके हील किया जाए और फिर वापस से रिंस एंड रिपीट स्ट्रेटजी के ज़रिए वापस ड्यूल डैमेज लेने की कोशिश की जाए। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से अगला ड्यूल टारगेट वो पहचान चुके हैं कि किसके लिए जाना था, लेकिन खैर दोनों साइडों से टीम्स तैयार थी एक दूसरे के लिए। टेम्पलर असैसिन और रूबिक भी बॉटम की तरफ मौजूद थे कि अगर कुछ यहाँ पे आता है ट्रोल वॉरलॉर्ड को बैक करने की इंट्यूशन बहुत अच्छी थी। और तला एलसी भी अपने ब्लिंक डैगर से अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो चंद ही देर में जैसे ही एलसी के पास ब्लिंक आ जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन इनका और ही इफेक्टिव साबित होते हुए हमें नज़र आ सकता है। लेकिन इस वक्त टीम ऑप्टिमम बेहतरीन तरीके से मैप को खेलते हुए इतनी हैवी प्रेजेंस थी बॉटम के ऊपर टीम की, और दैट गिव्स देम अ फ्री अपॉर्चुनिटी टू टेक द मिड टावर। एंड आई थिंक टेम्पलर असैसिन, ओह एक्चुअली लीजन कमांडर ने वापस से ड्यूल, आई डोंट नो अगर उसका ड्यूल सक्सेसफुल था। हमें वो ज़रा थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। बट जहाँ तक मुझे पोजीशन लग रही है मिनी मैप से, स्काईराथ मेज मौजूद था वहाँ पे, तो डेफिनेटली आई थिंक ड्यूल निकल गया होगा और ये एक स्नाइप कोरियर भी होगा। लेकिन ट्रोल वॉरलॉर्ड के पास अपने सारे आइटम तो मौजूद हैं और कोरियर का इंतज़ार तो वो कर ही सकता है। एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ऑप्टिमम ने अच्छा किया लेकर, वो था उनका मिड टावर। और टेम्पलर असैसिन ने एक ब्लिंक डैगर भी ले लिया है, तो डेफिनेटली वो जो एक इनिशिएशन या एक बर्स्ट एबिलिटी का इंतज़ार था, स्लाइडर का वो इंतज़ार नहीं करना चाहते इस मामले में। और लिच, आई थिंक ये लिच वही वेंजी है। आई थिंक ये काफ़ी ब्रेव प्लेयर है, आई मस्ट से। ज़रा लिविंग ऑन द एज थोड़ा सा लेच की तरफ से नज़र आ रहा है, लेकिन आई थिंक एज से थोड़ा सा और आगे चले गए, बिकॉज अब यहाँ पे हमें गिरते हुए नज़र आते हैं। रोटेशंस आ रही हैं और आई थिंक एलसी शायद ब्लिंक के साथ ही रोटेट करते हैं। अल्टीमेट का इस्तेमाल आ जाएगा यहाँ पे और देश सक्सेसफुली यहाँ पे अपना और डैमेज लेने में कामयाब, लेकिन साथ ही साथ एबिलिटीज़ का इस्तेमाल आता है। फिनिक्स की तरफ से एग आ जाता है, लेकिन तला अभी तक इस गेम में हमने जब भी फिनिक्स की तरफ से एग देखे तो वो एक डिफेंसिव एग है, राइट? वो भागने के लिए यूजुअली या टीम फाइट को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि यूजुअली फिनिक्स एग इस्तेमाल भी होता है। तो कुछ ज़्यादा कारआमद नहीं साबित हो पा रहा ये एग अभी तक। एंड एक्चुअली फिनिक्स ने एक माइडस बनाया हुआ है, जो कि आई एम नॉट श्योर कितना इफेक्टिव होगा इस गेम में पर्टिकुलरली, बिकॉज वो एक सपोर्ट माइडस है। और उनकी टीम तो कम्प्लीटली मिड गेम फोकस्ड लाइनअप है। तो डेफिनेटली एटलीस्ट आई कैन से कि इस गेम में ज़रा सा लैक लस्टर शॉर्ट साइटेड अप्रोच में बोलूँगा इस चीज़ को, क्योंकि एक अगर उनके पास अर्न होता तो मैं कहता कि यू नो दैट्स डेफिनेटली एक आइटम जो कि उनके पास काफ़ी यूज़फुल हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चनेबल माइडस इज कमिंग आउट दोनों गेम्स में। लीजन कमांडर अच्छा रिकनेक्ट हुआ है, मुझे लगा कि डिसकनेक्ट हुआ है, लेकिन खैर मिड के ऊपर अब एग्रेशन आ रहा है। लिच विल बी टेकन आउट, यहाँ पे उनके बचने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। लेकिन तला प्रेशर मेरे ख्याल से इस वक्त ज़्यादा टीम के ऊपर है, स्पेशली इस मिडल गेम का, कि वो इस मिड गेम के अंदर दे मेक समथिंग हैपन, राइट? ऑल्दो लीजन कमांडर को भी ड्यूल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं कहूँगा कि टीम को थोड़ा सा एक एडवांटेज बिल्डअप करनी पड़ेगी मिड गेम में और उसको कैरी ओवर करना पड़ेगा एज द गेम प्रोग्रेसेस लेटर। वरना टीम के लिए ट्रोल वॉरलॉर्ड में वो विन कंडीशन है, इन्वोकर बहुत अच्छा अप स्केल करता है और एक और ड्यूल आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट पे जो कि टीएसी फिनिक्स का एग आई थिंक ऑन कूल डाउन था, ऑल्दो इट वाज स्टिल क्वेश्चनेबल, डाइव करके वापस उसी पॉइंट पे आना एलसी के सामने। तो दिस एलसी तलहा इज हैविंग अ गेम एंड अ हाफ टुडे। डेफिनेटली, और आई थिंक जब 100 डैमेज पे पहुंच जाएगा तो ये सोलो किल की एबिलिटी इसके पास होगी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट टेम्पलर असैसिन। एंड
अगर इनके पास आर्मर रिडक्शन भी आ गया या फॉर एग्जांपल इन्वोकर की अलैक्रिटी हो तो फिर वो तो लाइफ सीडर और स्टैडर को भी उड़ा सकता है। और नॉट टू मेंशन कि ये जो ट्रोल वॉरलॉर्ड है इनका, ये तो फ्री फार्म कर रहा है। तो लाइफ सीडर के पास जितना भी फार्म है अभी डेफिनेटली आर्मलेट उसकी बनी हुई है, तैयार है, और डेसोलेटर भी तैयार है, लेकिन वो कितना ओ ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साला यहाँ पे देखिए काफी सारे हीरोज रिस्पॉन होते हुए वापस इस जगह पे आते हुए लड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अल्टीमेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक कोई मेजर दोनों साइडों से, लेकिन स्काईरेथ में एलिमिनेट हो जाते हैं। ट्रोल को अपनी अल्टी पॉप करके एग को फोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे उनकी एचपी बहुत कम मौजूद है और कोई लाइफ स्टील भी नहीं हो रही, लेकिन ओह लाइफ स्टीलर दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चनेबल डिसीजन था इस तरीके से एक ट्रोल वॉरलॉर्ड के ऊपर जाना जब उनकी अल्टीमेट ऑन है। लेकिन साथ ही साथ आगे पुश आएगा। टेम्पलर असैसिन भी हमें यहाँ पे वाइप आउट होते हुए नजर आ सकती हैं। लिच गेट्स टू क्लोज टू द टीए, और टीए जो कि अब काफी टाइम तक यहाँ पे फार्म करी थी, काफी बिल्ट टीए से यहाँ पे गोल्ड लूज करते हुए तकरीबन 800 गोल्ड उन्होंने दिया। रूबिक की तरफ से एक बायबैक आया, लेकिन आई एम नॉट श्योर रूबिक क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रहे थे उस बायबैक के साथ। और दोनों टीम्स की बहुत अच्छी टीम ऑप्टिमम की तरफ से एक अच्छी चीज़ इस गेम में ये देखने को मिली कि तला उन्होंने रोशान फाइनली कॉन्टेस्ट किया, बिकॉज पिछली गेम में तीनों रोशान पे उन्होंने बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट नहीं किया था। बिल्कुल अली, लेकिन किस कीमत पे ट्रोल वॉरलॉर्ड को एक प्लेटर पे उन्होंने वो 2 किल्स दी थी। बस ज़रा सा टाइम था, वो ट्रोल वॉरलॉर्ड नीचे गिर जाता, लेकिन फीनिक्स वापस उसका डाइव वहीं पे एंड अप किया था अनलकीली, जिसकी वजह से ट्रोल वॉरलॉर्ड ने वो भी किल ले ली। और अब लीजन कमांडर 3200 गोल्ड लीजन कमांडर के हाथ में, 86 ड्यूल डैमेज। वो अगर अभी चाहे तो एक पब स्ट्रैट जैसे जैसे कहते हैं एक डेसोलेटर बना दे, और उसने बना दिया इनफैक्ट, तो अब तो वो किसी को भी मेल्ट कर सकता है। बिल्कुल उसूलन तला देखा जाए तो उसको एक हेल्पर्ड की तरफ से जाना चाहिए, बिकॉज वन वुड थिंक कि 200 डैमेज के साथ उसे और डैमेज की ज़रूरत नहीं है, बट वन वुड बी रॉन्ग। वन वुड बी वेरी रॉन्ग। लेकिन खैर दोनों टीम्स को अब इस रोशान की इम्पोर्टेंस का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, स्पेशली टीम ऑप्टिमम आई थिंक इज इन द ऑप्टिमल पोजीशन टू बी एबल टू गेट दैट रोशान विद द नेगेटिव आर्मर जो स्लाडार और टीए के टेस्टो की वजह से उनके पास मौजूद है। लेकिन दूसरी साइड पे टीम टीम भी ये चीज़ रियलाइज़ करते हुए अल्टीमेट का इस्तेमाल, थोड़ा सा मिक्सअप, कुछ अल्टी साथ इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे ड्यूल लेने में एलसी कामयाब, और एग के वजह और एग के इस्तेमाल से एक दफ़ा फिर से सिर्फ टीम को कुछ चंद लम्हात के लिए पीछे भेजा जाएगा। एलसी ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रहते, और इन्वोकर भी यहाँ पे हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं। उनके ऊपर अल्टीमेट स्लाडार्ट के इस्तेमाल और ट्रोल वॉरलॉर्ड टीए उनका फाइनल टारगेट बनते हैं, और लाइफ स्टीलर एक दफ़ा फिर से काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक अल्टीमेट टीए ट्रोल वॉरलॉर्ड के सामने जंप मार लेते हैं, लेकिन ट्रोल वॉरलॉर्ड विल मेक क्विक वर्क ऑफ दैट लाइफ स्टीलर। पहला जिस तरीके से ये लाइफ स्टीलर ये ट्रोल वॉरलॉर्ड अब फेल हो रहा है और अपने नेटवर्क्स बढ़ा रहा है, मेरा नहीं ख्याल लाइफ स्टीलर किसी भी पॉइंट पे इसको 1v1 और कर दूसरा सकेगा। विजन रूम भी, Dyer's तीसरा bottom रादर ओ विजडम विजन रूम भी रूम, उनकी तरफ। तो श्राइन तला सोने टॉर्मेंटेड पे भी उनका वो सुहागा। खा सकते हैं। आई थिंक दे आर इंटरेस्टेड बट इन द जिस तरह ये रोशान टीम राइट फाइट्स नाउ। हार रहे हैं, 100 प्लस ड्यूल डैमेज लीजन कमांडर का, हाँ डेफिनेटली वो रोशान की तरफ ही जा रहे हैं। ट्रोल वॉरलॉर्ड का सेप्टर भी बन चुका है, बट आई थिंक सिनेरियो काफ़ी ब्लीक है, सूरत हाल काफ़ी नाजुक हो चुकी है डायर साइड के लिए। बिल्कुल तरह दायर साइड के लिए हालात तो मुश्किल से मुश्किल होते ही जा रहे हैं। और लेकिन वही बात है, उनके पास जो जितना नेगेटिव आर्मर है, जो एबिलिटीज़ है उनके साथ, वो शायद कुछ कर पाएँ। लेकिन टीम ऑप्टिमम आई थिंक यही टाइम है, यही विंडो है उनके पास एटलीस्ट थी जिसके अंदर वो कुछ कर पाते। लेकिन अब इस एजेस के साथ चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। थोड़ा सा सोलो पिकअप के ऊपर उन्हें फोकस करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टीलर से हट के या लाइफ स्टीलर को इन्फेस्ट करके लेकर जाकर टीए के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं किल्स निकालने की कोशिश करनी पड़ेंगी। बिकॉज जिस मोमेंटम को साथ टीम इस वक्त खेल रही है, अगर वो कंटिन्यू करते रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ऑप्टिमम को इवन कोई मौका मिले इस गेम के अंदर कम बैक करने का। डेसोलेटर अब हालबर्ड की तरफ जा रहे हैं। लाइफ स्टीलर डेफिनेटली एन आइटम दैट इज़ नीडेड, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि
गलत हीरो पे बनाया जा रहा है वो, क्योंकि लाइफ स्टीलर को अपना डैमेज मैक्सिमाइज करना है और अब उसने हेल्बर्ट बना तो दिया है, लेकिन वो अगेन एक कॉस्ट के लिए आएगा कि वो अपना डैमेज आउटपुट को ट्रेड कर रहे हैं ऑप्टिमम वाले। ऑफ कोर्स तला, लेकिन डू यू थिंक दिस डिसीजन इज स्टिल कि ये डिसीजन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल शायद ना साबित हो, क्योंकि स्लार्डर और टीए भी उनके पास मौजूद हैं, तो ऑफ कोर्स उतना डैमेज तो नहीं होगा जितना होता, Radiant are scared. लेकिन इज इट स्टिल एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल तो अली है, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट लाइफ स्टीलर इज एबल टू यूज द हेल्बर्ट, Dire's क्योंकि top tower is लीजन under कमांडर attack. अगर ड्यूल कर देगा उसको तो फिर हेल्बर्ट का कितना ही फ़ायदा निकाल पाएंगे वो। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। हेल्बर्ट तो आई वुड से कि एक फिनिक्स के पास अगर होता तो वो बेहतर होता कि फिनिक्स देखे हेल्बर्ट का इस्तेमाल करना है तो वो डाइव इन करके हेल्बर्ट इस्तेमाल कर सकता है। आई थिंक दैट्स वेरी राइटली सेड, राइट तला कि फिनिक्स आ सकता है डाइव के साथ, हेल्बर्ट कर सकता है सही टारगेट को, लेकिन इस वक्त इन्वोकर काफ़ी ट्रिकी टेरिटरी में गुजर रहा है, टीए जंगल के अंदर छुपे हुए, इस इन्वोकर की गोस्ट वॉक के साथ उन्हें आइडिया हो जाना चाहिए, बल्कि खैर अब तो पूरे सारे हीरोज़ भी मौजूद हैं और नज़र आने चाहिए, इसलिए टीम ऑप्टिमम की तरफ से इस वक्त रिप्लाई की कोशिश की जा रही है, प्लेयर्स रोटेट करते हुए आ रहे हैं, कोशिश करें कि यहाँ पे अगर फेवरेबल फाइट ली जा सके उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन रूबिक Dire's तला top tower is under फ्रंट लाइन attack. करने अपनी टीम के लिए इसको। ऑल डिपेंड्स वो कौन नजर आए ओ उनको, और वो एक रूबिक अनफॉर्चुनेटली इवन दो उनको पता था कि वो उस तरफ है तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल डिसीजन निकला, Radiant's bottom tower और बगैर ड्यूल के तो लाइफ स्टीलर टीपी करके निकल जाएगा, लेकिन विदाउट द रूबिक और विदाउट पूरे 5 बंदों के मौजूदगी के बगैर ये टावर तो गिर जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आई बिल्कुल तला, और थिंक 5 ये तो Radiant's bottom tower is under attack. वही बात है, यहाँ पे 2 और प्लेयर टीम मेंबर्स लूज करते हुए यहाँ पे, लेकिन ट्रोल वॉरलॉर्ड तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा उनकी टीम के लिए, तो वापस उस टियर 2 टावर को फिनिश ऑफ करने में कामयाब होंगे। इस वक्त अल्लाह टीम की तरफ से फिजिकल डैमेज की तो बहुत ज़्यादा भरपाल है, और बल्कि उनके पास वो इंट्रिकेट बैलेंस भी है, इन्वोकर, लेच और स्काईरैथ आपका मैजिकल डैमेज कर रहे हैं, जबकि एलसी और ट्रोल वॉरलॉर्ड के पास वो फिजिकल डैमेज मौजूद है, तो टीम ऑप्टिमम के लिए ऑलरेडी रेडियंस की तरफ भी जा रहा है, फॉर दैट आई बिलीव दैट मिस चांस जो रेडियंस देता है फॉर द एंटायर टीम। बिल्कुल रिफ्रैक्शन मिस होगी, लाइफ स्टीलर के राइट क्लिक्स मिस होंगे और फिर स्लार डार्ट के भी क्लिक्स मिस होंगे, लेकिन ये फिनिक्स Top tower is under attack. बहुत आगे की तरफ बढ़ के आगे, और आई थिंक ये इन्हें एक क्लियर हाई ग्राउंड के लिए मौका दे देगा टीम ऑप्टिमम को, और बल्कि टीम को मौका मिलेगा। ऑप्टिमम तो अभी भी बॉटम साइड पे मौजूद है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर डूइंग देयर, उनकी बेस जा रही है इस वक्त, टॉप बैरक्स आर बीइंग टेकन डाउन, और ये लाइनअप तो बैरक्स बहुत जल्दी लेता है और बिल्डिंग्स भी बहुत जल्दी तरीके से गिराता है, बिकॉज एलसी के पास बहुत ज़्यादा डैमेज है, और ट्रोल वॉरलॉर्ड की तो अटैक स्पीड की क्या ही कहने, यहाँ पे इन्वोकर की तरफ से वॉइस लाइन स्पैम की जा रही है, फिनिक्स के रिस्पॉन होने में अभी भी चंद सेकंड मौजूद है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अगर फिनिक्स स्पॉन हो भी जाता तो उसके बाद ये क्या करने में कामयाब होंगे। स्लार्डर लाइफ स्टीलर इज इन्फेस्टेड सॉरी, जंप अगर यहाँ पे करने की कोशिश की जाए एजिसलात तो शायद किसी को कैच कर सकें। Dire's top barracks नहीं, इनफैक्ट आई थिंक स्लाडर की टीपी कैंसिल कर दिया था इन्वोकर ने, जिसकी वजह से उन्होंने टावर ले लिया। बिल्कुल टीपी कैंसिल हो गई, फिनिक्स को भी एलिमिनेट कर दिया, फिनिक्स को बाय बैक करना पड़ेगा, ये वो जंप थी जिसका हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन गोस्ट सेप्टर्स ऑनलाइन है, दोनों टीम के राइट क्लिक्स अनल कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे एलसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एलसी को टेक आउट कर लिया जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे टीए भी नहीं बचती। इस वक्त अभी भी ट्रोल वॉरलॉर्ड के पास अल्टरनेट मौजूद है, फिनिक्स साइलेंस है, लेकिन दैट विल नॉट मैटर,
वापस होने में कामयाब होते हैं और ट्रोल वॉरलॉर्ड को अब केयरफुली खेलना पड़ेगा। फिनिक्स अंदर की तरफ जंप करते हैं और साथ ही साथ अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे स्टन कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ से मीटियोर का इस्तेमाल किया जो कि रूबिक का आता है। ट्रोल वॉरलॉर्ड थोड़ी सी एचपी के ऊपर यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कामयाब होंगे और कामयाबी से वहाँ पे बच के निकल जाते हैं उस एग को डिस्ट्रॉय करने के बाद। फिनिक्स पर डाई बैक आ गया, स्लार्डर को टेक आउट करने में कामयाब है और अब टीम के पास कोई वजह नहीं है कि वो इस बेस को पीछे छोड़कर जाएं, स्पेशली जब टीम ऑप्टिमम के पास कोई भी जिंदा नहीं बचा। काफ़ी डिजास्टर्स था ये। एक तो रैक्स लूज़ करना और दूसरा फिर टीम फाइट हारना इस तरीके से, पर्टिकुलरली 2 बाईबैक्स करने के बाद रैक्स लूज़ करना और उसके ऊपर से ट्रोल वॉरलॉर्ड सिर्फ 100 या 150 एचपी से ज़िंदा रहना। तो आई थिंक ये एक गेम एंडिंग सिनेरियो की तरफ हो चुका है, क्योंकि अब आई डोंट थिंक उनको रोकने के लिए उनके पास कुछ भी है। ट्रोल वॉरलॉर्ड 24,000 24,000 नेट वर्थ और लाइफ स्टीलर ही उसके आसपास है विद 16,000 नेट वर्थ। बिल्कुल तला, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी। और अभी हमने देखा कि जो आइडियल इनिशिएशन थी टीम ऑप्टिमम के लिए, ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के लिए, बल्कि उनको वो मिली। स्लार्डर के अंदर इन्फेस्टेड था लाइफ स्टीलर, उन्होंने बैक लाइन के ऊपर कोर्स के ऊपर ही जंप किया, लेकिन कोर्स के पास गोस्ट सेप्टर्स मौजूद हैं, उनके पास आई थिंक बीच में एक और आइटम भी है डिफेंस के लिए, राइट। तो लाइफ स्टीलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूजुअली इन्फेस्ट के ड्यूरेशन के दौरान एक अदद कोर या किसी सपोर्ट हीरो को टेक आउट कर ले, और ऐसा अब होते हुए बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। एंड आई थिंक उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दो गोस्ट सेप्टर बाहर आएंगे। बोथ लिच एंड स्काईराथ मेज के पास गोस्ट सेप्टर मौजूद है और उन दोनों ने पहली फुर्सत में उसको एक्टिवेट कर लिया एज सून एज दे सॉ कि स्टार्डर ने ब्लिंक इन किया है, जिसकी वजह से वो टीम फाइट इतने सिंगल हैंडेडली जीतने में कामयाब हुए थे। बिल्कुल, लेकिन ट्रोल वॉरलॉर्ड अब यहाँ पे अकेला घूमते हुए नज़र आ रहा है, अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल करेगा और आई गेस वो ही डिसआर्म यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अब बाकी का स्क्वाड भी यहाँ पे पहुँच रहा है। फिनिक्स का एग फाइट को सेग्रीगेट कर देता है, ट्रोल को टेक आउट करने में कामयाब और साथ ही साथ लिच भी वहाँ पे मारे जाएंगे। तो टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स बेहतरीन गेम प्ले के मुजाहिरों की तरफ से रियलाइज़ करते हुए कि टीम थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो रही थी और कैच आउट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लार्डर भी अकेले मौजूद है, बाकी की टीम उनके ऊपर कोलैप्स तो नहीं कर रही। सो आई गेस ये यहाँ पे चल, लेकिन ड्यूल इस्तेमाल करते हुए एलसी थोड़ा सा और ड्यूल डैमेज अपने सिक्योर करते हुए। स्काईराथ मेज सिर्फ अभी खेल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर स्लार्डर उनके लिए एक शिकार है या नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन किससे शिकार कर रहा है यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि एलसी के पास तो ड्यूल नहीं मौजूद, लेकिन जितना डैमेज उनके पास अब मौजूद है आई थिंक ड्यूल की डज नॉट मैटर उस तरीके से। स्लार्डर इज स्टिल आउट ऑफ द फाइट। सो टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स काफ़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पे चार्ज करते हुए जा रहे हैं और वही अनोइंग गोस्ट सेप्टर्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से नलिफायर अब तैयार है लाइफ स्टीलर के ऊपर। आई थिंक दैट शुड मेक थिंग्स अ लिटिल ईजियर। अपने ब्लेड में का इस्तेमाल करके अस्सी अंदर जंप कर लेते हैं। ड्यूल के लिए ना उनके पास मैना है और ना ही मेरे ख्याल से शायद ड्यूल कूल डाउन के ऊपर भी मौजूद है, लेकिन अल्टीमेट का इस्तेमाल लाइफ स्टीलर की तरफ से, लिच की तरफ से कोशिश की जाती है। फिनिक्स शायद यहाँ पे ना बच पाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लिच भी बचने में कामयाब होंगे। सनस्ट्राइक ऑफ द मार्क देयर। ओह, इन्वोकर, मैं सरप्राइज हूँ कि इन्वोकर ने उसका कोल्ड स्नैप नहीं किया या उसके पीछे नहीं गया। परहैप्स ही वो सोच रहा होगा कि लाइफ स्टीलर वहीं पे है या फिर फिनिक्स की अल्टीमेट हो, लेकिन स्पेशली ट्रोल वॉरलॉर्ड भी वापस रिस्पॉन हो गया था, राइट। तो आई गेस ही कुड हैव यूज्ड दैट अल्टीमेट देयर। लेकिन टीम तरह कुछ हद तक हमें जो पिछली गेम में भी नज़र आया उनकी तरफ से कि अननेसेसरली अपनी एडवांटेज को थोड़ा सा थ्रो अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोशान स्पॉन हो गया, आई थिंक दे आर गोइंग टू वेट कि एलसी और लिच भी आ जाएं उनके सपोर्ट के लिए, बट आई गेस नॉट, बिकॉज ट्रोल अकेले तो रोच को आराम से यहाँ पे मार सकता है। लेकिन तला वो आइटम जो ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स को चाहिए था इस वक्त, नलिफायर, अब मौजूद है लाइफ स्टीलर के पास और अब उसकी वापस एबिलिटी उन सपोर्ट्स को मारने के लिए वापस आ गई। हमें नज़र आया किस तरीके से टीम फाइट काफ़ी डिफरेंटली एक डिफरेंट रुख ले सकती है अगर वो आइटम सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
डेफिनेटली आई मीन गोल्ड सेप्टर काम नहीं करेगा और फिर यूल सेप्टर काम नहीं करेगा, तो कोई भी बचाने वाला आइटम इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता नलफायर के अगेंस्ट। बट अगेन नलफायर या ये जो लास्ट टीम फाइट जीते भी थे तो वो एट द बैक ऑफ स्प्लिटिंग द अपोनेंट के, मतलब एक तरीके से टीम टीम जो थी वो बिखर गई थी, इधर उधर हो गए थे सब उनके हीरोज़। तो उसी के बेसिस पर टीम ऑप्टिमम वो फाइट जीती थी। अगर इकट्ठी रहे ये टीम तो फिर टीम फाइट जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती है। या फिर अगर आप कहें कि अगर टीम ने इनिशिएट किया है उनके ऊपर तो फिर टीम फाइट जीतना टीम ऑप्टिमम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ये जो लीजन कमांडर है ये जिसको भी ड्यूल करेगा वो हीरो तो मर रहा होगा, क्योंकि इसके पास मार रहा तकरीबन हूँ। 360 एडिशनल डैमेज है और 130 बेस डैमेज है, तो 400 डैमेज पर सेकंड और लेस देन पर सेकंड रियली। 0.3 इसकी अटैक स्पीड होती होगी, तो अराउंड 1200 डैमेज पर सेकंड ये डील करता है। Hello, honestly, काफी impressive mathematics, bro. Like, I that's some quick maths right there. चला. But खैर, quick maths तो खैर quick game यहाँ पे होते हुए हमें नजर आ सकती है because Phoenix ने कोने पे जाकर अपने egg का इस्तेमाल कर लिया और Invoker और LC को फाइट से निकाला जा चुका है। तो बेहतरीन इनिशिएशन नजर आई है ऑप्टिमम ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन टीम को आप केयरफुल होना पड़ेगा। दो ओपोनेंट्स को निकालने में कामयाब हुआ है यहाँ पे लाइफ स्टीलर और स्लॉडर के बीच में हमें एंगेजमेंट नज़र आ सकती है एक और किल लेते हुए। 2 कोर्स के बाय बैक भी आ जाएंगे टीम की तरफ से, मेकिंग श्योर कि उनका जो एजिस ट्रोल वॉरलॉर्ड है वो यहाँ पे जिंदा रह पाए और कोई जिंदा रहता है नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एलसी वापस आती है ड्यूल की इनिशिएशन हो सकती है और यहाँ पे लाइफ स्टीलर को कैच आउट कर लेंगे फिनिक्स अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिनिक्स भी टेक आउट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लैग आ रहा है और दोनों प्लेयर्स लैग कर रहे हैं, दोनों टीम्स लैग कर रही हैं, लेकिन कोई हल यहाँ पे अब इस चीज़ का नहीं हो सकता। द गेम इज़ व्हाट इट इज़ एंड उसकी जो पोजीशन है वो भी है जो कि है। तला एक लेन ऑफ रैक्स अब मौजूद है ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के पास। Dire's middle tower. डेफिनेटली, बट लेकिन ये टीम फाइट काफ़ी अच्छी खेल रहे हैं। आई वुड से इनकी कैचिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये किसी तरह से डाईबैक तो आई बिलीव टीम की वजह से हुआ था की तरफ से, लीजन कमांडर ने बायबैक करके वो मरे। बट अब लाइफ सीलर के बगैर कैसे वो बैरिक्स को डील करें। बिल्कुल, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ट्रोल वॉरलॉर्ड काफ़ी लो एचपी के ऊपर मौजूद वहाँ से वापस भागते हुए जाते हैं, लेकिन चेस इज़ ऑन। इनवॉकर भी वहाँ पे मौजूद हैं और डिसआर्म कर दिए जाते हैं। अल्टीमेट का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन इनवॉकर की तरफ से बेहतरीन डेफनिंग ब्लास्ट आता है और साथ ही साथ मीट बॉल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ट्रोल वॉरलॉर्ड ही इज़ गेटिंग क्रेजी, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हैं, एक रूबिक को मारने में कामयाब, लेकिन अगला कोई टारगेट उनको नज़र नहीं आ रहा है। लाइफ स्टीलर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आगे पुश करते हुए जाएंगे। ट्रोल वॉरलॉर्ड इनके पास अभी भी एजेस मौजूद है, पुश करते हुए आ रहे हैं। इनवॉकर को टेक आउट करने में कामयाब हो गई है टीम ऑप्टिमम और ट्रोल वॉरलॉर्ड यहाँ पे डिसाइड करते हुए कि कोई एलाई मौजूद नहीं है, वहाँ से भाग जाते हैं। एक 4,500 गोल्ड लाइफ सीलर के पास ही मौजूद है और वो जब असॉल्ट क्वार्टर्स बना लेगा तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिटिगेशन को मिल जाएगी। अटैक स्पीड स्लो प्लस आर्मर प्लस ऑरा और आर्मर, तो उसको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ट्रोल वॉरलॉर्ड का डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हो रहा है, इवन दो उसकी जब एजेस जाएगी तो वो एक एडिशनल आइटम बनाएगा, परहैप्स सैटेनिक, क्योंकि आप आइटम तो एक्टिवेट कर सकते हो। बिल्कुल तलहा, और आई थिंक काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि दोनों टीम्स को इतने ज़्यादा कनेक्टिविटी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। होपफुली वी डोंट हैव दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। लेकिन तलहा राइट नाउ विन कंडीशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको दोनों टीम्स के लिए? टीम तो आई गेस हाई ग्राउंड जाने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी साइड पे ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स इस गेम में कम बैक करना बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है उनके लिए। आई मीन इट ऑल
डिपेंड्स, अगर वो ट्रोल वॉलडॉट को मारने में कामयाब हो गया और उसके पास बायबैक नहीं हुआ तो फिर तो डेफिनेटली वो मार सकते हैं, क्योंकि रैक्स लेना उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनके पास एक डेसोलेटर भी है और एक टेम्पलर असैसिन भी है, तो रैक्स तो काफ़ी जल्दी फॉल करेगा। इट ऑल डिपेंड्स वेदर और नॉट कि वो टीम फाइट इसी तरह खेल पाएँ, टीम को डाइवर्ट करके, टीम को इधर उधर पहुंचा के, लाइक ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। इवन तो टेम्पलर असैसिन के पास इतना ज़्यादा डैमेज है नहीं आइटम्स की, अगर हम सिर्फ बात करें। हरिकेन पाइक, सिल्वर एज और एमके भी बनाने जा रही हैं वो, बट नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। लेवल 25 पे जब वो टेम्पलर असैसिन आएंगी तो एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव पावर स्पाइक मिलेगा उनको। Because I guess Talha, this is a testament to how rough the game was, right? Optimum Esports के लिए for especially उस middle game के through जब वो LC duels और वो सब की domination चल रही थी, कि टेम्पलर आई थिंक सिल्वर एज तो काफ़ी टाइम से बना और उसके बाद कोई नई आइटम नहीं पिक कर पाए। बट खैर एम के भी 3000 प्लस गोल्ड है उनके पास ऑलरेडी, 1000 गोल्ड के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस एजेस का और इस्तेमाल करने की कोशिश करनी पड़ेगी टीम को यहाँ पे, बिकॉज एजेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम रह गया और उसको लेवरेज करके कुछ ना कुछ यहाँ पे लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन खैर अभी तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ होता हुआ नज़र आएगा। शायद अगले एजेस के लिए इंतज़ार किया जाए, स्पेशली जब एजेस के ऊपर 40 सेकंड मौजूद हैं। लिच, एलसी और स्काईरैथ, द आइकॉनिक ट्रियो वापस बॉटम के ऊपर मौजूद है। कोशिश करें कि एलसी के ऊपर अगर और ड्यू डैमेज फॉर्म किया जा सके, लेकिन एलसी को तनहा आई गेस अब इस पॉइंट पे सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है ड्यूल जीतने के लिए। डेफिनेटली, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अगर उसके ऊपर हेलबर्ट लगा दिया जाए या नहीं। और मीनवाइल डायर पूरे सेंटर हो चुके हैं नेक्स्ट रोश के लिए। अब डिपेंड करता है कि रोश कब रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि 38 मिनट्स इन तो हो सकता है रोश बॉटम पे ही आए रादर देन टॉप। बिल्कुल, आई गेस ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स इस रोश के लिए रेडी है, इनफेस्ट रेडी है स्लार डार्ट के अंदर, और उन्हें मिडल के ऊपर भी ट्रैप की वजह से कुछ ना कुछ विजन नज़र आई होगी। तो इस टॉप टावर के ऊपर टियर 1 टावर कुड भी कंटेंशन का पॉइंट बन सकते दोनों टीम्स के लिए, लेकिन इस वक्त दोनों टीम्स बहुत ही ध्यान के साथ इस मैप को ट्रैवर्स कर रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को कैच आउट कर लें यहाँ पे किसी तरीके से। स्लार डार्ट अपोनेंट नजर आ जाते, ट्रोल वॉरलॉर्ड अपनी टीम से काफी दूर और लेच को तो जिंदा चबा लिया जाता है, साथ ही साथ स्काईरैथ मेज को, और यही चीज अब नजर आ रही है। साथ ही साथ एलसी को भी खत्म कर दिया जाएगा और अब ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स का वो पोटेंशियल नजर आ रहा है, वो डैमेज आउटपुट उनकी तरफ से नजर आ रही है तला, जिसकी हम बात कर रहे थे। वो सारा नेगेटिव आर्मर जब स्टैक होता है स्पेशली उन थोड़ी सी एचपी वाले सपोर्ट्स के ऊपर, तो वो तो फौरन गायब होते हुए नजर आते हैं। और मुझे नहीं पता कि एलसी ने वापस री इंगेज क्यों किया अपोनेंट टीम को, जब वो हालांकि वो निकल चुके थे वहाँ से। बट गोल्ड लीड एडवांटेज, सारे हर तरह के एडवांटेज, एक्सपी लीड एडवांटेज सारा वापस जाते हुए हम देख रहे हैं। Radiant structures are fortified. प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमम इज़ कि उनको सिर्फ एक ही टीम फाइट हारने की देर है। ट्रोल वॉरलॉर्ड के पास जब इनिशिएशन एबिलिटी आ जाएगी स्विफ्ट ब्लिंक के ज़रिए, तो फिर क्या करते हैं वो, मीनवाइल जो टेम्पलर असैसिन है वो अपना हेक्स फार्म कर रही है। तो गेम आई थिंक कैन गो मतलब दोनों तरफ से कि कहीं भी जब भी जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनिशिएशन कौन पहले करता है। ऑप्टिमम ने भी वो क्रिटिकल मास रीच कर लिया है कि जब वो गेम जीत सकते हैं। इनिशिएशन उनकी, जैसे कि हमने लास्ट फाइट में देखा था कितनी तेज़ी से वो मेल्ट करते हैं दूसरों के हीरो को। ये I think that was damage coming 500 gold. bounty runes. What? It's a casual 500 gold for the entire team, I guess. I guess ये भी कभी कभार होता है कि जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं और आप दूसरी टीम के हाफ ऑफ द मैप पे खेल रहे होते हैं, तो sometimes you don't get that chance to go back and pick up the bounty runes. That's not a good thing though. लेकिन खैर यहाँ पे तरह पुश तो अभी दोनों साइड नहीं करनी, काफ़ी सावधान केयरफुली खेलना चाह रहे हैं मैप को।
although Phoenix का जब axe complete होगा तो फिर वो that ability to save anyone from that duel और counter initiation टीम के लिए और भी मुश्किल होगी। लेकिन तला में इन्वोकर की तरफ से आई गेस कुछ खास अभी तक हमें प्लेस नहीं नज़र आए, उस वक्त की यूसेज नहीं नज़र आई जिस तरीके से वी वुड एक्सपेक्ट अ फ्लैशी इन्वोकर टू बी। कॉस्वेक्स पिक की वजह से आई गेस। हाँ, लेकिन अब लेवल 22 पे तो उसने सब कुछ ही बना लिया होगा, उसके सारे ही एग्जॉर्ट मैक्स एंड क्वास मैक्सिमाइज हो गए होंगे अब तक। तो हैक्स इन्वोकर भी अब हैक्स की तरफ जा रहे हैं, तो अब इनिशिएशन की गेम बहुत ही ज़्यादा गेम इनिशिएशन पे ही काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। मेरे ख्याल से एजिस अभी रोशान इस दफ़ा तो डायर साइड की तरफ ही जाएगा अनलेस वो कंटेस्ट करने की कोशिश करें, बट उनको थोड़ा सा तेज़ी से करना पड़ेगा ये। मेरे को तला एजेस ऑफ द utmost importance राइट नाउ और बॉटम की तरफ और रोटेट करते हुए टीपी जा रही कौन है करेगा टीम। अंदर? ट्रोल वॉरलॉर्ड तो चले गए हैं लेकिन वहाँ पे कौन रोटेट एलसी की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस, लेकिन चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहाँ पे ब्लेड मेल इस्तेमाल हो चुका है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव कर सकें, लेकिन और दो सपोर्ट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी अपनी जान गंवा बैठेंगे। भागने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ये लेकिन भागना बिल्कुल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टेलीपोर्ट्स थे ये, I couldn't agree बट with आई you थिंक more. गेम में लैग काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा दोनों साइड के लिए। ट्रू आई गेस तलहा कभी कभार गेम में लैग होता है, कभी कभार ब्रेन में लैग होता है, लेकिन कोई पता नहीं कि इस बार क्या चीज़ हुई हो। लेकिन जिस तरीके से आई गेस ट्रोल वॉरलॉर्ड वाज अ लिटिल स्मार्ट अबाउट इट, वो टियर 2 के ऊपर उन्होंने टीपी की, लेकिन बाकी तीनों हीरोज़ ने जिस तरीके से टेलीपोर्ट के थ्रू गए, स्पेशली पता होते हुए कि उनके पास टॉप मैप का कंट्रोल है, सो द अदर साइड इज़ प्रोबेबली टुवर्ड्स द बॉटम, तो वो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। I guess Team Optimum Esports, it's their game to lose now, Tala. Would you say that? डेफिनेटली, आई मीन उनके हालांकि उनके पास अभी भी 2 रैक्स मिसिंग हैं, तो वी विल हैव टू सी कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। बट जहाँ तक हम बात करें कि ज़्यादा बेहतर एडवांटेज किस टीम में, तो आई थिंक टीम जो है वो एक इस सिनेरियो में फोर्स है कि वो उनको एज 5 प्ले करना पड़ रहा है। मीनवाइल ऑप्टिमम जो है उनके पास एस्केप भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। एलसी का मैं बोलूँगा वो अभी के सिनेरियो में लाइफ स्टीलर को या टेम्पलर असैसिन को इतनी आसानी से सोलो किल नहीं कर सकता। रूबिक और फीनिक्स को डेफिनेटली कर सकता होगा, एंड स्लाइडर का एक आई वुड से क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि स्टार्टर के पास असॉल्ट क्वेलिस तो मौजूद है। तो टीम ऑप्टिमम जो है वो सेपरेट खेल सकती है, वो ऑल ओवर द मैप रह सकती है, बट टीम जो है उनको ज़रा सा स्टिक टुगेदर करना पड़ेगा। इन्वोकर का भी हैक्स अभी मौजूद है। या द कंट्रोल एबिलिटीज़ आ रही हैं ऑप्टिमम टीम के पास ऐसा तरीके से, तो आई गेस वो दैट विल गिव देम दैट नेक्स्ट लेवल दैट दे नीड, राइट, कि टीम फाइट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें, कोई भी जो पेस्की हीरोज़ जिनके ऊपर इनिशिएट कर रहे हैं एटलीस्ट हैक्स कर सकें। आई थिंक अगर स्लारडार की इनिशिएशन को सक्सेसफुली काउंटर कर पाते हैं तो वो काफ़ी मेजर हो सकता है थ्रू अ हैक्स या थ्रू अ ड्यूल, किसी भी तरीके से अगर उस हीरो को कैच ऑफ कर लें। लेकिन खैर आई थिंक बॉटम पे अब रोश के लिए फाइट होने लगी है और ये थर्ड रोश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोश है। इट माइट डिक्टेट कि कौन सी टीम ये गेम जीतते हुए नज़र आती है, बिकॉज स्पेशली टीम को एक और एजेस के साथ पुश करना है और अगर वो फाइनल लेन ऑफ बैरिक्स लेने में कामयाब होते हैं तो ये गेम उनके लिए ख़त्म, जीत सकते हैं। यहाँ पे रोश मौजूद है, टेम्पलर के ट्रैप्स भी अंदर मौजूद हैं जिनकी वजह से उनको विजन मिल चुकी है कि रोश हो रहा है। टीम ऑप्टिमम choosing to play it a little more defensively because ये रोश तो बहुत ही जल्दी से पिघलेगा in front of the magical damage जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और एक्स से इन्वोकर के ऊपर, ओह इंटरेस्टिंग, I thought the axe just goes to invoker, right? क्योंकि alacrity
और फाइट इनिशिएट हो चुकी है यहाँ पे दोनों टीम्स की तरफ से। लाइफ स्टीलर इनिशिएट कर रहे हैं, लिच को टेक आउट करने में कामयाब, लेकिन दूसरी साइड पे टेम्पलर असैसिन 3 हीरोज के बीच में अकेले पकड़ी जाती है और एलिमिनेट हो जाएंगी यहाँ पे बाकी हीरो। स्लाडर वापस जाना पड़ेगा, लाइफ स्टीलर अभी भी मौजूद है और यहाँ पे सारे के सारे हीरो चलती हैं। अगर हैक्स उनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि बेहतरीन प्ले करते हैं ट्रोल वॉरलॉर्ड को ऊपर डिसआर्म करके वहां से टीपी आउट कर लेते हैं। लेकिन नेवरदलेस ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स 2 हीरोज वहां पे गवा बैठते हैं। तला रोश भी कंटेस्ट करने ऑप्टिमम वहां पे नहीं गए, मुझे नहीं समझ आया वहां पे इतनी देर लिंगर करने का क्या मकसद था। आई गेस शायद कोशिश कर रहे थे कि टीम अगर स्प्लिट अप करती है रोश के बाद तो किसी को कैच आउट कर ले। Dyer's ancient is डेफिनेटली आई मीन वो ज़रा सा एक मिस्टेक हुआ था उनसे डेफिनेटली। और फिनिक्स भी सॉ कि कितना डेस्परेट हो गए थे ऑप्टिमम वाले रोश के, परहैप्स उन्होंने टाइमिंग सिंपली मिस कर दी थी और या उनके जहन में नहीं रहा था। बट ये तो इनको काफ़ी बुरी तरीके से कॉस्ट करेगा। टेम्पलर असैसिन के पास बाईबैक अवेलेबल नहीं है, 1000 गोल्ड टूवर्ड्स बाईबैक और इनका आखिरी रैक्स है। किसी तरह अगर इन्हें ये रैक्स निकाल लिया तो गेम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और वो उसी की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टर के पास एक डबल डैमेज है, लेकिन वो एक सिंपली एक और ये there's that duel। एलसी ने बिल्कुल ड्यूल जरूर, करके जैसे टीम रूबिक उनके वापस लिए निकाल दिया। नो बायबैक और अवेलेबल ऑन रूबिक। टोर वॉलरोड भी एंगेज रहा है, लाइफ स्टीलर भी ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई एंड ही विल आल्सो फॉल। नो बायबैक ऑन, ओ इनफैक्ट बायबैक है लाइफ स्टीलर के पास। फिनिक्स एग एक्सपेंडेड, मेगा क्रीप्स अब हो गए हैं और थ्रोन पे भी उनके क्रीप्स मौजूद हैं। टेम्पलर असैसिन अभी रिस्पॉन्ड करने वाली है। लिच विल फॉल एज वेल बट देयर रनिंग आउट ऑफ दी एनर्जी, मतलब उनके पास अभी लड़ने के लिए और कोई तरीका नहीं है। और एंड एज वी सॉ लास्ट गेम के तरीके से थ्रोन के ऊपर भी है, एज इज एक्सपेंडेड, ट्रोल वॉर्लर गोइंग टू बी रिस्पॉन्डिंग और अब पूरा फोकस इनका थ्रोन के ऊपर है एंड द थ्रोन भी अब गिर जाएगी। बिल्कुल तला, द थ्रोन हैज फॉलन और टीम इस सीरीज को 2-0 जीतने में कामयाब होते हैं। स्पेशली एंड पे टीम के लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा था गेम क्लोज आउट करना, लेकिन रोश के करीब ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स दे लिंगर्ड अराउंड फॉर टू लॉन्ग, थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे मौजूद रहे और इस चीज़ का बेहतरीन फ़ायदा उठाया टीम ने और 2-0 करके ये सीरीज़ जीत ली। ऑल्दो दोनों गेम्स तला इट से कि टीम एक बहुत अच्छी एडवांटेज के ऊपर थे, लेकिन कुछ ना कुछ होता है तो एंड की तरफ थोड़ा सा वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदलता हुआ नज़र आ जाता है और फिर जब इस तरीके से होता है तो फिर हालात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी, हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी टीम की, जो कि दोनों गेम्स में अर्ली टू मिड गेम डोमिनेट करते हुए नज़र आए। बीच में थोड़ी सी लीड उनसे स्लिप हो जाती थी, लेकिन they were able to close both the games out और वही बात है तला एक काफ़ी कन्विंसिंग फैशन में। काफ़ी कन्विंसिंग फैशन में। ऑल्दो टूवर्ड्स द एंड ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स इनफैक्ट पिछले गेम की तरह ही वो जब 40 मिनट मार्क आता है उसके आसपास जो टाइम मार्क आता है तो वो उसमें एक बेहतरीन किस्म का कमबैक क्रिएट करते हैं, बट वो बस उस कमबैक को मेंटेन नहीं रख सकते और उसी में वो लूज़ आउट कर जाते हैं। और टीम जो है उन्होंने एक्चुअली काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की। जब वो स्लिप करना शुरू होते हैं तो वो इंस्टेंटली कमबैक करते हैं, इंस्टेंटली इतने ज़्यादा प्रेशर में व्हेन देयर जब जीत के इतने करीब होते हैं वो, जब उनके हाथ में ऑलमोस्ट विक्ट्री होती है तो वो एक तरीके से अपनी पूरी टीम को पुल टुगेदर भी कर लेते हैं। अपनी टीम की मिस्टेक उसी वक्त एवेल्यूएट करते हैं और उसी वक्त they become stronger and more united as a team. बिल्कुल तरह वो एक सर्टेन इंट्रोस्पेक्शन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी वहाँ पे। और लेकिन वही बात है कि तला दोनों टीम्स की तरफ से बहुत बेहतरीन गेम प्ले नज़र आया। हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी दोनों टीम्स की, उनके प्लेस की, जिस तरीके से उन्होंने मैप को रीड किया, अपने हीरोज़ को रीड किया। और स्पेशली मैं वही चीज़ देखना चाह रहा था कि ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स आई गेस पहली गेम में SF एज अ कैरी एक ह्यूज डिसएडवांटेज थी। और वही बात आपको एक उस तरह के हीरो के साथ इतनी चीज़ों के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ता है थ्रू आउट द गेम कि आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से है ना प्लेयर या क्या एक्चुअल पोटेंशियल है टीम का, लाइनअप का, प्लेयर्स का, राइट। लेकिन दूसरी गेम में एक ज़्यादा क्लोजर मैं कहूँगा लाइनअप था दोनों साइडों से। स्पेशली आई वुड से कि टीम ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें तब बदली जब हमारे पास वो नलिफायर नज़र आया, राइट। नलिफायर के बाद काफ़ी मुश्किल हो गया था
बाकी प्लेयर्स के लिए वहाँ पे बच पाना, जो सपोर्ट प्लेयर्स थे टीम की तरफ से। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गेम मुश्किल हुई, थोड़ी सी गेम वापस ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के हक में स्विंग होना शुरू हुई, तो ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स वी सॉ देम क्रम्बलिंग अंडर द प्रेशर थोड़ा सा। आई थिंक वही बात है, वो रोश कॉल शायद क्लियर होनी चाहिए थी, या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऑल्दो उन्हें विजन तो मिली थी राइट ट्रैप से, दे सॉ द टीम गोइंग फॉर द रोश। तो आई गेस शायद थोड़ा सा एग्रेसिवली उस एरिया को अप्रोच करना चाहिए था, या कॉल क्लियर होनी चाहिए था, आइदर फाइट फॉर द रोश एंड द गेम और जस्ट गिव अप द रोश, राइट। डेफिनेटली। और आई थिंक टीम जो ऑप्टिमम है उनको लाइक ज़्यादा, जैसे उर्दू में कहते हैं, दिल पर नहीं लेनी चाहिए ये बात। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक डेफिनेटली मिस्टेक्स वर मेड हेयर एंड देयर, लेकिन ओवरऑल उन्होंने परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रखी थी। लाइफ स्टीलर ने जो लाइक पिछली गेम में जो कैरी की परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने मिटिगेट की थी। अब कुछ एरियाज में डिफ़िकल्टी आई थी। आई थिंक माइडस वाज अगेन एक चीज़ जिससे मैं अग्री नहीं कर रहा था, स्पेशली एक सपोर्ट फिनिक्स पे। वो एगोनिम्स अगर उसका पहले आ जाता शायद वो ज़्यादा और हेल्प आउट करता, पर्टिकुलरली इन अ लाइनअप वेयर आप देख रहे हो कि लीजन कमांडर को इतनी ज़्यादा किल्स मिल रही हैं, इतने ज़्यादा ड्यूल डैमेज, 100 ड्यूल डैमेज विद इन आई वुड से 10 मिनट्स ऑफ हिम अक्वायरिंग लेवल 6, या फिर इतनी जल्दी जब उसका ब्लिंक डैगर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की थी। एट द एंड उन्होंने कम बैक माउंट करने की कोशिश की थी, एंड इवन वो ऐसे पोजीशन में आ गए थे जहाँ पे वो गेम को जीत सकते थे, बट अगेन वो एक दो रैक्स के डिसएडवांटेज पे खेल रहे थे, एंड क्वाइट सिंपली वो डिसएडवांटेज इंसरमाउंटेबल, या वो डिसएडवांटेज में यही सब होता है। टीम काफ़ी अच्छी थी, उनके अपोनेंट्स जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, लाइक पर्टिकुलरली ट्रोल वॉलॉर्ड जो जैसे कहते हैं ना अली, वो रिस्ट्रेंट के आपका ट्रोल वॉलॉर्ड हाई ग्राउंड पहुंच गए और वो वहाँ से वापस पलट जाए, ये मैंने काफ़ी रेयरली देखा है अपनी ज़िंदगी में, एंड आई एम श्योर तुमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रेयरली देखा होगा। तला जिंदगी का नहीं पता, लेकिन मैंने पब्स में बहुत ही कम देखे कि ऐसे कुछ होते हुए। लेकिन खैर, while we're on the topic, right, मैं I saw this on a streamer stream, right, which is it's called the Amar trick. I didn't know it was a thing, लेकिन जब troll अपनी ultimate on करता है, तो you can't really control troll anymore, right? He just goes off on like a tangent. Well, I wouldn't say a tangent, but like he goes off and he kills whoever he wants, right? लेकिन ये चीज़ हमें नजर आ रही थी कि if you click on a tree while you're in the ultimate, तो काफ़ी हद तक you can sort of control troll. I'm not sure if that was part of it, but here we do have the game highlights, so let's go on over to that. बिल्कुल, और जैसे कि हाइलाइट्स हम की तरफ अगर देखा जी 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 तला। जिस तरह हम देख रहे थे, ये जो लीजन कमांडर है ये बार बार ड्यूल में सक्सेसफुली कैरी कर रहा था, ड्यूल्स बार बार सक्सेसफुली ले रहा था, और टेम्पलर असैसिन मतलब बार बार इनके जो कोर हीरोज थे ऑप्टिमम के उनको शट डाउन कर रहा था। बिल्कुल, और शट डाउन तो कितने ही खूबसूरत तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पे किया गया, बल्कि थ्रू आउट दिस गेम लीजन कमांडर ने, वेल आई थिंक आई कांट रियली से एनीथिंग अबाउट द एलसी, राइट। तला ही प्लेड द प्लान टू द डॉट, जस्ट गेट द ड्यूल्स। लाइफ स्टीलर की तो स्पेशली अर्ली गेम में ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल की हुई थी लीजन कमांडर ने। एज अ कैरी आप चाहते हैं कि आपके पास सोलो लेन हो, आप फार्म करें और उस फार्म की एडवांटेज पे बाद में अपनी टीम को कैरी करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल ही नामुमकिन बना दिया था मैं कहूँगा लीजन कमांडर ने। Although the life stealer again a professionल player was able to get that farm going, लेकिन उसके बावजूद तो खैर बेहतरीन प्ले यहाँ पे आई वुड से थोड़ा सा हमें एक क्वेश्चनेबल चीज़ नज़र आई थी टॉप पे, जहाँ पे हीरो वापस जाकर इंगेज करने की कोशिश की उन्होंने, एंड वेल वी सॉ व्हाट हैपेंड, ही वाज पनिश्ड फॉर दैट काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट का इस्तेमाल, लाइफ स्टीलर वापस एलसी ड्यूल करते हुए, फिनिक्स का एग इस्तेमाल हो गया। ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स के लिए तला एक और भी काफ़ी मसला था आई वुड से, राइट, कि फिनिक्स के एग के बाद उनके पास कोई ह्यूज टीम फाइट अल्टीमेट नहीं होती थी, जबकि दूसरी साइड बिल्कुल। पे
ट्रोल वॉरलॉर्ड का अल्टीमेट मौजूद है, लिच का अल्टीमेट मौजूद है, स्काईराथ का अल्टीमेट मौजूद है, एलसी का अल्टीमेट मौजूद है, एंड दे आर ऑल वेरी लो कूल डाउन अल्टीमेट्स, राइट? बिल्कुल, मतलब कोई हाई लेवल अल्टीमेट नहीं है टीम फाइट एबिलिटी के पास। एंड इवन रूबिक ने अपना एक सेप्टर अपग्रेड नहीं किया हुआ है। एंड रूबिक ने जो एज फार मैंने जो नोटिस किया था, रूबिक ने कोई ख़ास स्पेल स्टील करने में वो कामयाब नहीं रहा था। फॉर एग्जांपल अगर वो लिच की चेन फ्रॉस्ट स्टील कर ले, या फिर स्काईराथ्स मेज का साइलेंस स्टील कर ले, तो वो तो आप ट्रोल वॉर्डर को साइलेंस ही कर दो, तो ये काफ़ी, या इन्वोकर को साइलेंस कर दो। पर्टिकुलरली आपके पास इनिशिएशन हीरोज इतने ज़्यादा हैं, स्टार्टर के पास ब्लिंक डैगर है, टेम्पलर असैसिन के पास ब्लिंक डैगर है, तो आप साइलेंस अगर करोगे तो वो तो गारंटीड डेड होंगे। तो ये सारी एबिलिटीज़ रूबिक ने नहीं स्टील की थी, जो चीज़ लैकिंग थी काफ़ी ज़्यादा। इवन दो उसके पास स्पेल रेंज तो उसके पास थी, उसने एक एथर लेंस भी बनाई हुई थी, एंड उसके पास न्यूट्रल आइटम भी था, जो कि आपको स्पेल रेंज ग्रांट करता है। तो टाइम एंड टाइम अगेन हमने हाईलाइट्स में भी, जैसे आप लोग ने भी देखा, हमने भी देखा कि वो टीम वर्क ज़्यादा जो था, जो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे गेम के, जिसमें पूरा मोमेंटम गेम का डिफाइन हुआ था, वो तो सारा टीम ने डिफाइन किया था। वो तो सारा बिकॉज ऑफ द ड्यूल डैमेज, बिकॉज ऑफ द हीरो कॉम्पोजिशन, बिकॉज ऑफ हाउ दे चोज टू प्ले अराउंड देयर लीजन कमांडर शुरू में, एंड देन अराउंड देयर ट्रोल वॉरलॉर्ड लेटर ऑन। तो दैट उस चीज़ ने पूरे गेम को डिफाइन किया था। उस चीज़ में टीम वर अ लॉट बेटर। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि टीम ने अपना नाम क्यों रखा है, बिकॉज दे दैट गुड एज अ टीम। Tala, I didn't have that realization now that you're saying it, right? But you're absolutely right. They were playing as a team quite well, right? You could see the chemistry that they had. जिस तरीके से they were backing each other up, जिस तरीके से एक दूसरे के off of खेल रहे थे, right? And just making Exactly. sure कि the entire team or everyone functioned as a team, right? So let's take a look at the scoreboard and try to see what was the complete picture throughout the game. If you look at it, the team Troll Warlord, Tala, what a massively farmed Troll Warlord that was. 12 for 3, 40,000. I think ये तो वही बात है, स्पेक्टर भी इन्होंने खेली थी पिछली गेम, तो काफी सिमिलर स्टैट्स नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली अदर एंड आई थिंक yeah. बाकी जो हीरोज़ हैं वो सिमिलर नेटवर्थ पे लाइक ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। एलसी जो इतना अच्छा स्टार्ट था, ओनली विद 17,000 नेटवर्थ, इन्वोकर विद 23,000। तो नेटवर्थ की अगर बात की जाए, तो नेटवर्थ एट द एंड आई थिंक दोनों टीम्स का इवन ही होगा, अगर आप दोनों टीम्स का निकालें। लाइफ सीडर 25,000, टेम्पलर असैसिन 27,000, एंड बाकी सारे आर अ बिट बेटर देन जो सपोर्ट्स हैं टीम के। बट देन बात वापस आइटम चॉइसेस के बारे में भी आती है। आइटम तो बिल्कुल टेम्पलर असैसिन जो हेक्स बनाया था उससे तो आई कम्प्लीटली अग्री। लाइफ सीडर ने जो सैटानिक और नलिफायर बनाया था उससे आई कम्प्लीटली अग्री। एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा लैक था उनके आइटम्स में, बिकॉज हेक्स आई डोंट थिंक कि मैंने हेक्स इतना ज़्यादा यूज़ देखा था उनका ऑन दी एनिमी हीरोज। लाइक ट्रोल में मैंने कभी नहीं देखा कि उसको हेक्स करके उसको मारा गया हो, या इन्वोकर को मारा गया हो, या लीजन कमांडर को मारा गया हो। एवरी टाइम या तो लीजन कमांडर उसको डिबफ कर देता था, या फिर उनके पास वो इनिशिएशन कैपेसिटी या इनिशिएशन का मौका कभी उनको मिला ही नहीं कि वो उन आइटम्स को इस्तेमाल किया जाए। नलिफायर का तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, बट बात अगर हेक्स की आती है तो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी हेल्बर्ट का इस्तेमाल डेफिनेटली हुआ, बट व्हेन इट काउंट्स तो मतलब ऐसा है लेट गेम में जब आपको एक हीरो को टेक आउट करके, लाइक अगर आप हेक्स का इस्तेमाल करके ट्रोल वॉर्डर को मार देते, तो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको गेम जितवाएगा, रादर देन हेल्बर्ट इस्तेमाल करना, या रादर देन नलिफायर इस्तेमाल करना। बिकॉज नलिफायर तो आप सपोर्ट पे ही इस्तेमाल करोगे, नलिफायर से आप कोर को तो कभी नहीं मार पाओगे, तो इन चीज़ों की वजह से आई थिंक जो पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ था, तो दैट्स वाई टीम डायर साइड लॉस्ट, गेम हार गए थे। बिल्कुल तलर, आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट अगर दोनों गेम्स के अक्रॉस देखा जाए तो आई गेस टीम वाज द गेम जो कि वाज द टीम जो कि एग्रेसर्स हो रहे थे दोनों गेम्स में, राइट? दे वुड डू द इनिशिएशन, दे वुड मेक द मूव्स ऑन द मैप, दे वुड सॉर्ट ऑफ डिक्टेट द पेस ऑफ द गेम थ्रू आउट, कि किस तरीके से गेम को लेकर चलना है, सारा कुछ टीम बेहतर कर रही थी। और दूसरी साइड पे थोड़ी सी आई गेस the other team did end up losing, right? So we have to point things out जिसकी वजह से वो हारे गेम को। और अगर उन चीज़ों की मैं बात करूँ तो उनमें कुछ चीज़ें इस तरीके से नज़र आती हैं कि
सपोर्ट्स उस तरीके से ज़िंदा नहीं रह पा रहे थे, अपने कोर्स को इनेबल नहीं कर पा रहे थे, या वही आपकी बात है, रूबिक की तरफ से कोई इम्पैक्टफुल स्पेल स्टील नहीं नज़र आया। फिनिक्स का एग्स बहुत लेट आया, आई एम नॉट श्योर व्हाई ही वेंट फॉर दैट माइडस, राइट? क्योंकि स्केल आपकी, इट वुड बीन अनदर थिंग अगर फिनिक्स के जो बाकी कोर लाइनअप है वो काफ़ी लेट एक्टिवेट होना था, तो फिर आपको पता है कि यार हमारा तो टाइमिंग 40 मिनट के बाद है, तो माइडस मेक सेंस वहाँ पे, राइट? बिकॉज माइडस कैन गेट यू योर एग्स। लेकिन माइडस का 2000 गोल अगर आप रिप्लेस करते एक बूस्टर के साथ और एक एग्स बन जाता है, और वो एक एग्स आई थिंक शुरू में फिर एलसी किसी के ऊपर इनिशिएट करती है, तो फिनिक्स कैन डाइव इन एग्स के साथ, सेव दैट हीरो, गिविंग हिम एन इफेक्टिवली सेकंड चांस, तो वो सेव इन्हें चाहिए ही चाहिए था, राइट? और Yeah. वो काफ़ी लेट आया, तो आई गेस थोड़ी सी थ्योरी क्राफ्टिंग है, लुकिंग बैक एट द गेम ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द टाइम नहीं होता, लेकिन आई गेस वो यू नीड टू फिगर आउट कि आप किस तरीके से बेहतर गेम को खेल सकते थे, और किन किन जगहों पे किन एरियाज में लैकिंग थी। तो आई थिंक एक चीज़ जो मैं कहूँगा टीम को कि दे हैड टू थोड़ा सा इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है, राइट? कि यू नीड टू बी द एग्रेसर्स, आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि यार अब हमारी स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है, अब हम दूसरी टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब हमें जाकर उनके जंगल में स्मोक करके जाना चाहिए, या अब हमें जाकर फ्लां ऑब्जेक्टिव को कंटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, 2 बैरिक्स डाउन है जो भी है, लेकिन आई थिंक वही बात है, इफ़ यूर 2 बैरिक्स डाउन ऑलरेडी और आप बस फिर अपनी तीसरी लेन ऑफ रैक्स को हक करके खड़े रहो, तो शायद आप तीसरी लेन ऑफ रैक्स 4-5 मिनट के लिए बचा लो, लेकिन देयर इज नो वे आप गेम जीतने Yeah, वाले हो, राइट? तो definitely. आई थिंक वही बात है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत थी टीम को। लेकिन खैर, आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू टीम, दे डेफिनेटली डिड अ वंडरफुल जॉब। बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेम को खेला, दोनों गेम्स में अर्ली गेम कम्प्लीटली डोमिनेट किया, थ्रू आउट द मिडिल गेम भी काफ़ी हद तक डोमिनेट किया। अ, थोड़ा सा कमबैक की अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाए मेरे ख्याल से। तो खैर तला, आपके कोई और क्लोजिंग रिमार्क्स अबाउट द गेम, अबाउट द सीरीज, अबाउट द टूर्नामेंट? I mean, आई होप कि जितने भी लोग देख रहे थे दे हैड फन। आई पर्सनली तो डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी मज़ा आया कास्ट करते हुए अली के साथ। एंड आई थिंक जो हमारी एक्साइटमेंट थी गेम देखने से पहले कि कि हर ऑब्वियसली हर किसी को उम्मीद होती है, कास्टर्स को उम्मीद होती है कि हम एक अच्छी गेम कमेंटेट करेंगे, होपफुली व्यूअर्स के लिए एक्सपीरियंस को अच्छा करेंगे। और व्यूअर्स को ऑब्वियसली यही उम्मीद होती है कि गेम मज़ेदार होगी, गेम को देखने में मज़ा आएगा। सो आई पर्सनली थिंक वो क्राइटेरिया तो मीट हो गया है। तो आई पर्सनली थिंक कि जो अरीना ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें आगे भी काफ़ी सारी गेम्स लाइन अप हैं, काफ़ी सारे ई स्पोर्ट्स के टाइटल्स लाइन अप हैं आप लोगों के लिए। सो आई डेफिनेटली थिंक एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है इस इवेंट की, कि आगे की भी गेम्स का इतनी ही ज़्यादा कंपेरेटिव, इतनी ज़्यादा टीम फाइट पैक्ड होंगी आप लोग के लिए, इतनी ही ज़्यादा 40-50 मिनट लॉन्ग गेम्स, जिसमें विच आर आगे पीछे चल रही हैं दोनों साइड्स, एक के पास एडवांटेज है फिर एक के पास डिसएडवांटेज है। ऐसी बैक एंड फोर्थ चलती रहें, ऐसी बैक एंड फोर्थ एक्शन पैक गेम्स आप हमें कास्ट करने के लिए मिलें और आपको देखने के लिए मिलें। बिल्कुल तला, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सम अप कर दिया इस एक्सपीरियंस को भी, हमारी एक्साइटमेंट को भी, और जितना मज़ा आया हमें गेम्स कास्ट करने का। बट खैर गाइस, आई थिंक ये हम दिस इज़ द एंड ऑफ द स्ट्रीम। हमारे पास अरीना ई स्पोर्ट्स की तरफ से एंड पावर्ड बाय एतिसलात एंड एंड टूर्नामेंट आपके पास मौजूद है। ये सीरीज थी, द विनर्स फॉर टीम। आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज एज वेल। आई वाज योर कास्टर अजूस, और मेरे साथ मौजूद थे तला। इट्स बिन अ प्लेजर। सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
check out this dope shit, man. Pay is another guy, we getting paid. Another day, another dollar living in the bay.